इस बात पर भी फोकस है। अब हम जितने भी एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 2014 के अंदर लगभग 75 के आसपास एयरपोर्ट थे देश के अंदर। प्राइमरीली बड़े शहरों में आप एयरपोर्ट्स पाते थे, लेकिन पिछले 8 सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर ठीक है अरुण, आपको रोकना चाहूंगा, आप सीधे वहां का रुख करते हैं और देखते हैं शिवमोगा एयरपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं मंच पर। ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮಡಿಲು, ಸಿಹಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಒಡಲು, ಸಿಹಿಮೊಗ್ಗೆ. ಸಿಹಿಮೊಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾರಾಟ. ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಇದರ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸುದಿನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಿದು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭವಿದು. Well, ladies and gentlemen, boys and girls, today is indeed a historic day for the Malnad region. Opening of gates of big opportunities for development to the Malnad. Today, the Honorable Prime Minister is here for the dedication to the nation and foundation stone laying for various projects worth rupees 3,600 crores. On behalf of the entire organizing team, very hearty welcome to all of you. Tamagellarigu swagata, suswagata. ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ, ಗೌರವ ಸೂಚಿಸೋಣ. We request all of you to kindly rise for Jaya Bharata Jananiya Tanujate, Jaya He Karnataka Mate, Nadagite.
ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕರುನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಒಲವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕರುನಾಡ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷತಃ ಮಲೆನಾಡ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. On behalf of the entire citizen fraternity of Malnad, we request the Honorable Prime Minister to kindly accept the felicitation. We request Sri K. S. Ishwarappa to kindly present the shawl to the Honorable Prime Minister. The garland will be presented by Shri B.Y. Raghavendra. ಬೃಹತ್ತಾದ ಅಡಿಕೆ ಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಂಪು ಪೇಟವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. We request the Shri B.S. Yadurappa ji to present the peta to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. We request Shri Hartalu Halappa, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೇನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅರಗ ಗಣಾನೇಂದ್ರ ಇವರು 3 ಜನರು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಮೆಮೆಂಟೋ. ಶ್ರೀಗಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಗರದ ಕಲಾವಿದ ಜಿ ಆದರ್ಶ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ದಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದಿ Shivamogga Airport being presented to the Honorable Prime Minister. We thank the Honorable Prime Minister for accepting the felicitation. ಇನ್ನು ದಣಿವರಿಯದ ನಾಯಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೂವಾರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. We request the Honorable Prime Minister to kindly felicitate Shri BS Yadurappa ji. ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಉಸಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು. ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹಸಿರು ಶಾಲಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. A true statesman, indeed a mass leader. Farmers, the Chief Minister who presented the budget for Krushi. ಇನ್ನು ಅಡಿಕೆಯ ಈ ಮಾಲಿಕೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುವ ಅಡಿಕೆಯ ಹಾರ, ಅದರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಖುದ್ದು ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿ ದ ಪ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂಥವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆ, ನೇಗಿಲಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಮರಣ ಕಾಣಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ. A farmer's leader, a statesman who has built the party from grassroots. Thank you very much, Honorable PM and Honorable Shri BS Yadurappa ji. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆಶಯದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. Ladies and gentlemen, creation of new Karnataka for Nava Bharata under the able leadership of Shri Basavaraj Bommai with the guidance of the Honorable PM. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೂತನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ತ
ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ನೂತನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರು, ರೈತ ಬಂಧು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರು, ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಯುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ BY ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನ, ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ದಿನ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಲಾಗಿರುವಂಥ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಹಿವಾಟ, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾಗಲು ಆಗಲಿದೆ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ತಾವೊಂದ್ಸತಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, 2014 2014 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳೆಷ್ಟು? ಇವತ್ತು 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು 2014ರಿಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10-15 ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಆಗಿರುವಂಥ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಿಂತ 2014ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅವು ಇವತ್ತು 2014 ನಂತರ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ 70 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹರ್ ಘರ್ ಗಂಗಾ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 2014 ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅದರ 2 ಪಟ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿತ್ತು, ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ G20 ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಇರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. G20 ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹತ್ವ G20. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು G20. ಅದರ ನಾಯಕತ್ವ ಇವತ್ತು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ
ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ, ಹಾಸನ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರವಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಮಾಲಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 7 ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್, ಕಾರವಾರ ಪೋರ್ಟ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ, 64,000 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 34,000 ಕೋಟಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ IIT ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಕಳೆದ 6-7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ ಹುಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಮರಣಾಂತಕ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ತಡಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುಡ್ದೆದ್ದು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ 7 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಗರ್ ಹುಕಂ ಹೋರಾಟ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ 10 HP ವರೆಗೂ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆಜ್ಞೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು 2ನೇ ಆಜ್ಞೆ. ರೈತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಭೂಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಸದಾಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. 2 ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ 100 ಕಾಲ ಬಾಳಿ 100 ಕಾಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ತಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The Honorable Chief Minister has thanked the Honorable Prime Minister for the tremendous amount of leadership, and the double engine government will go a long way towards making Karnataka the number 1 state in the country. Let's all give a round of applause. Sanmanya Mukhyamantриಗಳಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. Thank you, sir. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು, ಆ ಕನಸು ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದೇ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನದ ಮಾತೇನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಅವರೇ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜೋರಾದ ಕರ್ತಾಡನದೊಂದಿಗೆ put your hands together and welcome, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಿ.
बोलो भारत माता के ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮ, ಆನಂದ ತಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸನೇ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಆ ದಿವಸ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು ಹೊಸನಾಡೊಂದನ್ನ, ರಸದ ಬೀಡೊಂದನ್ನ ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಈ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು. ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತಾ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ದಿನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಬರೀ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಶುಭ ಸಂಕೇತ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದು ಆಗಸದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒತ್ತಾಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಂತಾಗ 3,65,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 55 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 7 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು, ಸಮಬಾಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪಡ್ತೇನೆ.
ಕರ್ನಾಟಕವೆಂದರೆ ಶರಣರ ನಾಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಸಾರಿದ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರುನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕ ತತ್ವ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ನಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ 2005ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪುರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸವಲತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರ್, generally I am not interested in celebrating birthdays, but when my 60th birthday was organized at Bangalore, Shri Atal Bihari Vajpayee ji graced the event and said that he generally does not attend any such birthday events, but mine was an exception. I still cherish that fond memory, sir. And today, yet again, my 80th birthday is also memorable because of you. Your precious time was allocated to inaugurate historical projects which Shumaga district never witnessed since independence. Modi ji, I also want to share you a piece of information that Jnanapida Award, Rashtrakavi Kuvempu had mentioned about the importance of the one becoming Vishwamanava 1930s in his books. Sir, and I am humbled to express my opinion in front of this August gathering that you turned out to be the one and only Vishwamanava of this decade by making the rest of the world to realize what exactly means Vasudhaiva Kutumbakam. ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ರೈಲು ಯೋಜನೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 16 ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕೈ ಎತ್ತೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Well, ladies and gentlemen, it's indeed a matter of great pride that the Honorable Prime Minister himself has stood and congratulated the great leader, mass leader, Shri B.S. Yediyurappa ji. Nivelru onsala jorada kartaಡದೊಂದಿಗೆ put your hands together and let's all thank Shri B.S. Yediyurappa ji for his leadership and dynamic leadership.
ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಗಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. We request the Honorable Prime Minister to kindly unveil the plaque to mark the inauguration of Shivamogga Airport. Ladies and gentlemen, the historic occasion is here. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಿದು. The entire population of Malnad will be benefited by this airport. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುರಿತು ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರ. We'll now have a short film on the airport. Let's have the video, please. ಭಾರತ ದೇಶ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುಯಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 2014ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಯಾತ್ರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 160 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 341 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 74 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2022ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡು 147ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪೂರ್ವ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅನನ್ಯವಾದ ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ. हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಕದ ತೆರೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯುಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅನೇಕ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದೆ. 775 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ 450 ಕೋಟಿ. ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 300 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಇಂದು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. Indeed, under the able leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Shivamogga Airport will open door of opportunities and race towards further development and growth. ಈ ವಿಶೇಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. Several projects are going to be inaugurated, dedicated and laying of the foundation stone. First of all, we'll have the inauguration of Shivamogga Smart City projects. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿಮುಲ್ನ ನೂತನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. Laying of foundation stone for Shivamogga Shikaripura Rani Bennur new railway lane and Kote Ganguru railway coaching depot. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇದೀಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. We now request the Honorable Prime Minister to kindly unveil the plaque signaling the inauguration, the dedication to the nation, laying of foundation of stone of all these projects. Your round of applause. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣ. Inauguration of Shivamogga Smart City projects.
ಶಿಮುಲ್ನ ನೂತನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಘಟಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. Inauguration of Shimul new milk packing unit. ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ, ನೂತನ ಕೇಂದ್ರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ. Inauguration of Mamco's administration block. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ. Foundation stone of Shivamogga Shikaripura Ranebennur new railway line. ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. कोटेगंगूर रेलवे कोचिंग डिपो का शिलान्यास. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. Another developmental step, foundation stone laying of national highway projects. ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಹು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ. Inauguration and laying of foundation stone of Jal Jeevan Mission scheme projects. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆದರಣೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. Ladies and gentlemen, we would like to thank the Honorable Prime Minister for inaugurating, unveiling and laying of the foundation stone. We will now have short films on all the projects. Let's have the video, please. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ SCM ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಗರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है. ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ನಗರಗಳಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ತಲಾ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಧನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು 100 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸುತ್ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಡಿ 71 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 63 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 93.5% ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗಳು. ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೋಟಾರು ರಹಿತ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಇದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ SSCL ಹಸಿರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಬರಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ 2.8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಮೋಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಎಲ್ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಎಲ್ ಐಸಿಟಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 3.6 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಸಿರು ನಗರೀಕರಣದ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿಸುವ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. Indian Railways in the last 8 to 9 years has changed for better, has become faster, safer and more people-friendly. The transformation in railways under the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, is a testimony of India's collective strength and resolute efforts. रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है. Karnataka has become a strong partner in the unprecedented growth journey of railways. In the last 9 years, railway projects worth rupees 45,000 crore have either been completed or are in various stages of completion in Karnataka. Continuing this process of nation building, people of Karnataka get a new gift of railway projects worth rupees 1,100 crore, as foundation stones are being laid for 2 key rail connectivity projects by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Shivamogga-Shikaripura Ranebennur New Line project, worth rupees 1,000 crore, will ensure strong rail connectivity in Shivamogga, Davanagere and Haveri districts. It will enable direct connectivity of Shivamogga with Bengaluru, Mumbai main railway route, thereby boosting trade and commerce in the entire region. Due to abundant paddy fields, areca nut and spice farms, Shivamogga is known as food cradle of Karnataka. Ranebennur, the gateway to North Karnataka, has a robust commodities market famous for agri-seeds, spices and cotton. Farmers and artisans of this region will benefit immensely, as it will be convenient and cost-effective for them now to transport agri-products, spices and handicrafts to distant markets across India. This line will boost ecological and cultural tourism in the region also. The railway line will be fit for trains to run at 160 km per hour. It will be level crossing, gates free. For this, 21 road over bridges and 57 road under bridges are planned, which will ensure high-speed train movement as well as safety of road vehicles. The project is a fine example of how double-engine government speeds up progress. Government of Karnataka is sharing 50% of construction cost with Government of India. State government is also facilitating land acquisition for the project. Foundation stone for coaching depot at Kote Ganguru is also being laid by the Honorable Prime Minister. This project, worth over rupees 100 crore, will upgrade the small halt station of Kote Ganguru with 4 railway lines and 3 platforms. It will have facilities for maintenance and safety checks of coaches. This will enable starting of new trains from Kote Ganguru, thereby promoting greater regional connectivity of Malnad region. It will also decongest KSR, Bengaluru and Mysuru railway stations by easing the load of long-distance originating trains. These railway projects will boost railway connectivity to cultural, educational and tourist destinations in Karnataka and contribute to the resolve of Nava Karnataka for Nava Bharat.
India has evolved as a strong, progressive, confident and economically powerful nation under the dynamic and visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। मैं जानता हूं कि जब तक देश का एक भी जिला विकास के पैमाने पर पीछा रहेगा, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। As a gratitude to the people of Karnataka, Shri Narendra Modi ji has initiated more than rupees 2 lakh crores of road infrastructure projects in the last 8 years. Today is a historic day as Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for 3 national highway projects costing rupees 219 crores. These projects are widening of Megaraballi to Agumbe on Tirthahalli Malpe section and road safety and curve improvements work from Bharatipura near Tirthahalli on Shimoga Mangalore section. These projects will give better connectivity to educational hub of Karnataka, Manipal and famous pilgrim centers of Sringeri, Udupi and Karkala. Construction of Shikaripura bypass will decongest traffic in Shikaripura town by bifurcating highway traffic from city traffic. It will immensely improve in transportation of paddy and jawar grown in this region to bigger agriculture mandis and give smooth and fast connectivity to famous tourist spots like Jog Falls and temples of Sigandur, Kollur and Udutani in Shimoga district. These projects will provide future-ready road infrastructure which will transform urban and rural landscape, encourage investments and generate employment in the state of Karnataka and lead the way in making India self-reliant. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರವೂ ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ನಳಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ದಿನ ಬಳಕೆಯ ನೀರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕೋಟಿ ದಾಟಿತು. हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। इसलिए इस मिशन के केंद्र में भी हमारी बहन बेटियां ही है। ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅನೇಕ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 64 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹನಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜಲಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವತ್ತ ನಡೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌತಮಪುರ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯು ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಆಂಬ್ಳಿಗೋಳ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 91 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು 64 ಗ್ರಾಮಗಳ 46,000 ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಗೃಹ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಿದೆ. ಇಂದು ಇನ್ನೂ 3 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಆವಿನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಜನಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಗರ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗಳು. 860 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ 500 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಗರ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಜನತೆಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒದಗಿಸುವ, ಜನರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ತಂದಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷತಃ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಇಂಥ ದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಗಮನ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತೀಗ
ಅವರಾಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Ladies and gentlemen, we are all eagerly awaiting to listen to the words of Vishwa Manava, Shri Narendra Modi ji, the world leader. So please put your hands together. Swagat kijiye, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his words. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ, जय भारत जनजातीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते. एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ऐसे समर्पण भाव को रखने वाले राष्ट्र कवि कुवेंपु की धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं. आज मुझे एक बार फिर कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है. अभी अभी शिवमोगा में हूं और यहां से मुझे बेलगावी जाना है. आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है. लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है. शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है. इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है. और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है. आज रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है. हर घर नल से जल के प्रोजेक्ट में काम शुरू हो रहा है. विकास के ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए मैं शिवमोगा के और आसपास के सभी जिलों का, वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है. आज कर्नाटका के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है. मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं. उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है. येदियुरप्पा जी ने
अभी पिछले हफ्ते कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येडियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। साथियों, मेरी आप सबसे एक विनती है, आप करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येडियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। येडियुरप्पा जी के सम्मान में सब लोग, हर एक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए, येडियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। 50-60 साल का सार्वजनिक जीवन, अपनी पूरी जवानी एक विचार के लिए खपा दी है। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चालू करके आदरणीय येडियुरप्पा जी का सम्मान करे। शाबाश, शाबाश। भारत माता की। जब मैं भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटका की विकास यात्राओं को देखता हूं तो पाता हूं कर्नाटका अभिवृद्धिया रथादा मेले, ಈ ರಥವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದ ಮೇಲೆ। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। भाजपा की डबल इंजन सरकार एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है। पहले जब कर्नाटका के विकास की चर्चा होती थी तो ये बड़े शहरों के आसपास वहीं तक सीमित रहती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टियर 2 सिटी तक, टियर 3 सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिवमोगा का विकास इसी सोच का परिणाम है। भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी
तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आने वाले समय में हजारों विमानों की जरूरत भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एविएशन सेक्टर में रोजगार के लिए अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। साथियों, आज भारत में हवाई यात्रा का जो विस्तार हुआ है, उसके पीछे भाजपा सरकार की नीतियां और निर्णय है। 2014 से पहले देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट पर फोकस था। छोटे शहर भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े एक कांग्रेस की सोच ही नहीं थी। हमने इस స్థితి को बदलने అయినా బ్యాంక్ లాకర్ అయినా మీరు కూడబెట్టిన డబ్బు మీరు నిర్ణయించిన వారికి అందేందుకు అందులో నామినీ పేరు తప్పకుండా నమోదు చేయండి. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. నమస్కారం. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. నేను మాధురి. ముందుగా కరోనా నియంత్రించేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలతో వార్తలను ప్రారంభిద్దాం. కరోనా నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ను తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు నోరు కప్పించేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్క్ను ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలను పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. గిరిజన గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుందన్న ప్రధాని పోస్ట్ బడ్జెట్ వెబినార్లో రీచింగ్ ది లాస్ట్ మైల్ అనే అంశంపై ప్రసంగించిన మోదీ. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న ప్రధానమంత్రి శివమొగ్గలో 450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నూతన టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించిన మోదీ. మేఘాలయ, నాగాలాండ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగనున్న ఓటింగ్ ప్రక్రియ. యువ ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరిన ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా. నెల్లూరు జిల్లాలో ఘోర పడవ ప్రమాదం. చెరువులో పడవ బోల్తాపడి 6 యువకులు గల్లంతు. నష్టాల్లో కొనసాగుతున్న దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు. 358 పాయింట్లు నష్టపోయిన సెన్సెక్స్, 133 పాయింట్లు నష్టపోయిన నిఫ్టీ. మహిళా టీ20 ప్రపంచ కప్ విజేతగా నిలిచిన ఆస్ట్రేలియా జట్టు చివరి పోరులో దక్షిణాఫ్రికా జట్టుపై 19 పరుగుల తేడాతో నెగ్గిన ఆసీస్. వార్తల్లోని వివరాలు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కర్ణాటకలోని శివమొగ్గలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు నిర్వహించారు. 450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన విమానాశ్రయ టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు శివమొగ్గ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు పనులను, సిమల్ నూతన మిల్క్ యూనిట్ను,
మమకాస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ శివమొగ్గ సికారిపుర రాణేబెన్నూర్ నూతన రైల్వే లైన్ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. అనంతరం కోటెగంగూర్ రైల్వే కోచ్ డిపో, నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్, జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టు పనులకు మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ కర్ణాటక అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం పూర్తి తోడ్పాటును అందిస్తుందన్నారు. आज मुझे एक बार फिर कर्नाटका के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। अभी अभी शिवमोगा में हूं और यहां से मुझे बेलगावी जाना है। आज शिवमोगा को अपना एयरपोर्ट मिला है। लंबे समय तक जिसकी डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है। इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है। आज रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है। हर घर नल से जल के प्रोजेक्ट में काम शुरू हो रहा है। विकास के ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए मैं शिवमोगा के और आसपास के सभी जिलों का, वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। आज कर्नाटका के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। అంతకుముందు శివమొగ్గ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ 450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నూతన టెర్మినల్ భవనాన్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు టెర్మినల్ భవనం విశేషాలను ప్రధానమంత్రికి వివరించారు. దేశం సమగ్రాభివృద్ధి చెందేందుకు ప్రభుత్వాలకు కేవలం సుపరిపాలనపైనే కాకుండా అభివృద్ధి ఫలాలను చివరి వ్యక్తికి అందించాలన్న సంకల్పం కూడా అవసరమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. అమృత్ కాల్ బడ్జెట్పై నిర్వహిస్తున్న వెబినార్లో రీచింగ్ ది లాస్ట్ మైల్ అనే అంశంపై ప్రధాని ప్రసంగించారు. ఈ వెబినార్ ద్వారా పన్ను చెల్లింపుదారులు ఇస్తున్న ప్రతి పైసా ఏ విధంగా ఉపయోగించబడుతుందో ప్రతి ఒక్కరికి అవగతమవుతుందన్నారు. సమాజంలో చిట్ట చివరి వ్యక్తికి కూడా అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలను అందించాలన్న సంకల్పం మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కరోనా మహమ్మారి విస్తరించినప్పుడు అందించిన వ్యాక్సిన్ల విధానాలను పరిశీలిస్తే తెలుస్తుందన్నారు. ప్రతి పౌరుడికి ప్రాథమిక సౌకర్యాలను అందించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించినప్పుడు వివక్షతకు, అవినీతికి చోటు ఉండదని మోదీ వివరించారు. గిరిజన, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి పనులకు తమ ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుందన్న ప్రధాని జల్ జీవన్ మిషన్ కోసం వేల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించామన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 60,000 అమృత్ సరోవర్ల నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించగా ఇప్పటికే 30,000 వరకు పూర్తయ్యాయన్నారు.
ఇవి పూర్తయితే సుదూర ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న వారికి కూడా కుళాయి ద్వారా సురక్షిత నీటిని అందించవచ్చని మోదీ వివరించారు. పేదలకు పక్కా గృహాలను నిర్మించేందుకు 80,000 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించామన్న ప్రధాని నూతన సాంకేతికతతో ఇళ్లను నిర్మించేందుకు ప్రణాళికాబద్దంగా ముందుకు వెళుతున్నామన్నారు. తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదివాసీల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామన్న ప్రధాని ఏకలవ్య రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను బలోపేతం చేసేందుకు అధిక నిధులు కేటాయిస్తున్నామన్నారు. ఆకాంక్షాత్మక జిల్లాల్లో నిర్మాణాత్మకంగా చేపట్టిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయన్నారు. गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन, जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं. इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा. अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है. जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा. सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है. जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी. నాగాలాండ్, మేఘాలయ రాష్ట్రాలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఈ పోలింగ్ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగనుంది. నాగాలాండ్లో 59 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు గాను 183 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే బీజేపీ ఒక స్థానాన్ని పోటీ లేకుండా ఏకగ్రీవంగా కైవసం చేసుకుంది. పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అదనపు పారామిలిటరీ బలగాలను మోహరించారు. ఇండో మయన్మార్ సరిహద్దుల్లో కూడా నిఘాను ముమ్మరం చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అస్సాం, మణిపూర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ల్లో అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దులను మూసివేశారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించి భద్రతను పటిష్టం చేశారు. నిష్పక్షపాతంగా స్వేచ్ఛగా పోలింగ్ జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు నాగాలాండ్ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి శశాంక్ శేఖర్ తెలిపారు. శాంతియుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. మేఘాలయ, నాగాలాండ్ ఓటర్లు పెద్ద ఎత్తున పోలింగ్ ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కోరారు. తొలిసారిగా ఓటు వేస్తున్న యువత రికార్డు స్థాయిలో ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రధాని సూచించారు. మేఘాలయ ఓటర్లు అవినీతి రహిత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను తమ ఓటు హక్కును తప్పనిసరిగా వినియోగించుకోవాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కోరారు. అవినీతి రహిత ప్రభుత్వం ఉంటే ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులందరికీ అందుతాయన్నారు. నాగాలాండ్ ఓటర్లు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ప్రస్తుతం నాగాలాండ్లో అభివృద్ధితో కూడిన శాంతి ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని, దాన్ని కొనసాగించేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ఓటర్లపై ఉందన్నారు. రాజస్థాన్లోని బికనీర్లో జరుగుతున్న సంస్కృతి మహోత్సవ్ 14వ ఎడిషన్ను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఈరోజు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సంస్కృతి మహోత్సవాలు మార్చి 5 వరకు కొనసాగనున్నాయి. ఈ ఉత్సవాల్లో జానపద నృత్యం, జానపద సంగీతం, నాటకం, సూఫీ సంగీతం ఆధారంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన 1000 మంది కళాకారులు ప్రదర్శనలు ఇవ్వనున్నారు. దీంతో పాటు ఇసుక శిల్పం, చేతి పనుల ఆధారంగా ఇతర కళల ప్రదర్శన కూడా నిర్వహించనున్నారు.
భారత పర్యటనలో ఉన్న డెన్మార్క్ యువరాజు ఫెడరిక్ ఆండ్రే హెన్రిక్ క్రిస్టియన్ యువరాణి మేరీ ఎలిజబెత్లు ఢిల్లీలోని రాజ్ఘాట్ని ఈ రోజు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ సమాధి వద్ద వారు పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులర్పించారు. విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ ఢిల్లీలో భారత పర్యటనలో ఉన్న డెన్మార్క్ యువరాజు ఫెడరిక్ ఆండ్రే హెన్రిక్ క్రిస్టియన్ యువరాణి మేరీ ఎలిజబెత్లతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు వర్గాల నాయకులు, అధికారులు పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి కృషి చేయడం లేదని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్ అన్నారు. హైదరాబాద్లో నిన్న మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నో హామీలను విస్మరించిందన్నారు. కేసీఆర్ సర్కార్ అవినీతిమయమన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు ఎక్కడ అమలవుతున్నాయో చెప్పాలన్నారు. ఉచిత ఎరువుల పంపిణీ గురించి మాట్లాడుతున్నారని, అయితే హామీలు ఎక్కడ అమలు కావడం లేదన్నారు. मोदी जी ने 2,15,000 पक्के मकान अर्बन हाउसेज नहीं दिए होते तो आज तेलंगाना में जो वायदे थे वो कहाँ जाते केसीआर जी के। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देना था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 3,116 रुपए यही था पर मंथ। क्या ब्याज समेत केसीआर पैसा देंगे? क्या ब्याज समेत तेलंगाना की सरकार तेलंगाना के युवाओं से किए हुए वायदे को पूरा करेगी? इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या दलितों के किए हुए वायदे पूरे करेगी? वहां पर रिकॉर्ड एफडीआई आती है या वहां पे इन्वेस्टमेंट 1,60,000 करोड़ की बात की जाती है तो यहां पे केवल 12,000 करोड़ तेलंगाना में क्यों आता है? पुणे जैसा शहर भी अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ले आता है तो हमारे तेलंगाना में क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर तो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम करप्शन हो रहा है. ఇప్పుడు వార్తల్లో స్వల్ప విరామం. పూలవాడు, కేటరింగ్ వాడు, బ్యాండ్ వాడు, ఇదిగోండి బాబు. వాయింపుడైపోతుంది అన్న, పొరపాటు జరిగితే డబ్బు పోతుంది. అరే కాదురా, బ్యాంక్ జాగ్రత్త పడుతుంది. ఎలాగా? నేను పాజిటివ్ పే సిస్టమ్ పై రిజిస్టర్ చేసుకున్నా. బ్యాంక్ కి చెక్స్ ఇంకా బెనిఫిషరీస్ వివరాలు ఇచ్చాను. బ్యాంక్ చెక్ చేసి పరీక్షిస్తుంది. డీటెయిల్స్ మ్యాచ్ కాకపోతే క్లియరెన్స్ చెయ్యదు. అలాగా? ఏది నాకివ్వండి. ఫోటోల వాడు, లైట్ల వాడు, మండపం వాడు. ఆర్బీఐ ఉంటుంది. విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. భలే బాగా చెప్తున్నారు వీరు. కర్నూలు మున్సిఫ్ కోర్టులో జిల్లా ఫోక్సో కోర్టును హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా డిజిటల్ విధానంలో ప్రారంభించారు. చిన్నారులపై జరిగిన అత్యాచారాల కేసులు ఫోక్సో కోర్టులో త్వరగా విచారణ చేసి తప్పు చేసిన వారికి శిక్షలు విధించి బాధితులకు న్యాయం చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు, జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీనివాసరావుతో పాటు పలువురు న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా గారు స్పెషల్ మన ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ పోక్సో యాక్ట్ కింద ఒక కొత్త కోర్టుని మన కర్నూలు జిల్లాలో కర్నూలులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కోర్టులు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అది 2012 ఈ యాక్ట్ 2012లో వచ్చింది. మొత్తం జిల్లాల్లో అన్ని జిల్లాల్లోని ఈ కోర్టులు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఈ యొక్క చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చిన్నపిల్లకాయల మీద అత్యాచారం జరిగితే దాన్ని త్వరితంగా తీర్పులు చెప్పడం కోసం, తప్పు చేసిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా శిక్షలు విధించడం కోసంగా ఈ కోర్టు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఈ చట్ట ప్రకారంగా దాన్ని ఈ రోజు మన గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ మీద చీఫ్ జస్టిస్ గారి మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇది అందరూ ఈ ప్రజలందరూ ఈ యొక్క దీన్ని ఉద్దేశించుకొని బాధితులందరికీ మంచిగా న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నాను.
ఏ దేశానికి వెళ్లినా భారతీయ గుర్తింపును కలిగి ఉండడం గర్వకారణంగా ఉంటుందని జర్మనీ దేశంలో మేయర్గా పనిచేసిన డాక్టర్ గుజ్జల రవీంద్ర అన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరికి చెందిన కమ్యూనిస్టు నాయకుడు, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, మాజీ కనిగిరి శాసనసభ్యుడు గుజ్జల యలమందారెడ్డి సరళాదేవి దంపతుల కుమారుడు డాక్టర్ రవీంద్ర జర్మనీలో వైద్యునిగా స్థిరపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో కనిగిరిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ 1993 నుంచి 5 పర్యాయాలు ఆలాండర్స్బర్గ్ మేయర్గా ఎన్నికై ప్రజలకు సేవ చేశానన్నారు. వెళ్ళాను. అక్కడ 1 సంవత్సరం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని తర్వాత మెడిసిన్ చేసి అక్కడే పనిచేయటం మొదలుపెట్టాను. యాక్చువల్గా ప్లాన్ ఏంటంటే మెడిసిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడో కనిగిరిలోనో ఒంగోలులోనో ఎక్కడో ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలని అది ప్లాన్. అక్కడ వెళ్ళినప్పటి నుంచి మెడికల్ ఫీల్డ్లోనూ రకరకాల ఫీల్డ్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండటం వల్ల గోడ పడిపోయిన తర్వాత 1993 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు అప్పటికే నేను ఆల్ట్లాండ్స్బర్గ్ అనేటువంటి పట్టణంలో ఎక్కడైతే పనిచేస్తున్నా అక్కడ చాలా మంది అడిగారు అనమాట, నువ్వు మేయర్గా పనిచేయొచ్చు కదా అని. చాలా మంది నవ్వుకున్నారు. ఇక జర్మన్ దేశంలో నల్లవాళ్ళ మేయర్లు ఎవరు లేరు, నువ్వేమవుతావు అన్నట్లుగా. అయినా కానీ మనం జెండా చూపించాలి కదా అన్నారు. అయితే 1993 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారి జరిగినటువంటి మేయర్ ఎలక్షన్లో 5 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. అందరూ పార్టీలు ఉన్నాయి. నేను ఒక్కడే పార్టీ లేకుండా ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేశాను. నేను మొత్తం 5 సార్లు మేయర్గా ఎన్నికయ్యాను అక్కడ. నెల్లూరు జిల్లాలో ఘోర పడవ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పొదలకూరు మండలం తోడేరు పంచాయతీ శాంతినగర్ చెరువులో పడవ బోల్తపడి 6 యువకులు గల్లంతయ్యారు. 10 మంది యువకులు ఓ బోటులో చెరువులో సరదాగా ప్రయాణిస్తుండగా ఒక్కసారిగా బోటు ఓ పక్కకు వంగి తిరగబడిపోయింది. ఈ ప్రమాదం నుంచి 4 యువకులు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకోగా 6 యువకులు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారి కోసం పోలీసులు గజ ఈతగాళ్లు గాలిస్తున్నారు. కళా తపస్వి ప్రముఖ దర్శకుడు కె విశ్వనాథ్ కుటుంబంలో మరో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ నెల 2న కె విశ్వనాథ్ కన్నుమూయగా నేడు ఆయన అర్ధాంగి జయలక్ష్మి గుండెపోటుతో నిన్న తుది శ్వాస విడిచారు. ఆమె వయస్సు 86 సంవత్సరాలు. కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే కె విశ్వనాథ్ దంపతులు ఈ లోకాన్ని వీడడం వారి కుటుంబ సభ్యులను మరింత విచారానికి గురిచేస్తోంది. జయలక్ష్మి మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు, పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఏక్తా దివస్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన పాటలు, జోలపాటలు, దేశభక్తి గీతాల్లో నిర్వహించిన పోటీల గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మన్ కీ బాత్లో ప్రస్తావించారు. ఇదే సమయంలో నంద్యాల జిల్లా కోయిలకుంట్ల గ్రామానికి చెందిన టి విజయదుర్గ ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు నరసింహారెడ్డిపై పంపిన గీతాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించారు. నరసింహారెడ్డి ఆంగ్లేయులపై చేసిన పోరాటాన్ని తెలియజేస్తూ రేనాటి సూర్యుడా ఓ వీర నరసింహ గీతం ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడటం పట్ల విజయదుర్గ ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచిన అంశాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించడం తాను ఎన్నటికీ మర్చిపోలేనని అన్నారు. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దేశభక్తులందరినీ గుర్తు చేసుకోవడం శుభపరిణామన్నారు. ఈ స్ఫూర్తితోనే తాను మరిన్ని దేశభక్తి గీతాలను పాడతానని వివరించారు. కూడా మీరు తెలియజేయొచ్చు, స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా అని చెప్పారనమాట. ఈ రేనాటి సీమలో ఒక విప్లవాన్ని లేవదీసి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఉరికంబం ఎక్కారు. ఆ మహానుభావుడి తలను ఈ కోవెలకుంట్ల ఊరవాకిలికి 11 సంవత్సరాల పాటు వేలాడగట్టారు. ఎందుకంటే అది చూసి భయపడి ఇంకొకళ్ళు ఎవరు విప్లవం వైపుగా చూడకూడదు, ఇంకొకరు ఎవరు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించకూడదు అనే ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వారు ఆ పని చేశారనమాట. నాకు నా లైఫ్ లాంగ్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్ మెమరీ. నాకు చాలా సంతోషదాయకం ఈ విషయం. దేశభక్తుల చిత్రీకరించే రంగోలీ పోటీలు ఇవన్నీ నిర్వహించి దేశవ్యాప్తంగా ఒక చైతన్యం మన్ కీ బాత్ ద్వారా దేశ ప్రజలందరితో ఈ సంతోషమైన విషయాన్ని, ఈ త్యాగపూరితమైన విషయాన్ని. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో ఆదివారం రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ సమావేశమయ్యారు. గవర్నర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న గవర్నర్ ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతులతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ను అభినందించారు. ఇప్పుడు జాతీయ వార్తల సంక్షిప్త సమాహారాన్ని చూద్దాం.
ప్రపంచ దేశాలకు మన దేశ సామర్థ్యాలను తెలియజేయడానికి G20 సారథ్యం రూపంలో మనకు వచ్చిన అవకాశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకుంటోందని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జయశంకర్ అన్నారు. మన ఆలోచనలు సామర్థ్యాలు అనేక దేశాలకు వరంగా మారాయని అన్నారు. హైదరాబాద్లో ఆదివారం ఫోరం ఫర్ నేషనలిస్ట్ థింకర్స్ నిర్వహించిన G20 సదస్సులో విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ మాట్లాడారు. సదస్సులో కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సుభాష్ రెడ్డి, పలువురు బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. సమైక్యంగా శ్రమించి కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, మిజోరం, రాజస్థాన్, తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాయ్పూర్ ప్లీనరీ కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చింది. ఛత్తీస్గఢ్ వేదికగా జరిగిన కాంగ్రెస్ ప్లీనరీలో అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే అధ్యక్షతన ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు 5 సూత్రాల రాయ్పూర్ డిక్లరేషన్ రూపొందించారు. దీన్ని ప్లీనరీ ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది. వైద్య పరీక్షల ఫలితాల్ని 30 సెకండ్లలో తెలుసుకునేలా నియోడాక్స్ అనే స్మార్ట్ ఫోన్ ఆధారిత యాప్ను ముగ్గురు ఐఐటి బాంబే పూర్వ విద్యార్థులు రూపొందించారు. అనురాగ్ మీనా, నింకుజ్ మల్పని, ప్రతీక్ లోథాల్ తయారు చేసిన ఈ పరీక్షా పద్ధతిని ఇప్పటికే మహారాష్ట్రలోని నాసిక్ జిల్లా ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రాల్లో వినియోగంలోకి తెచ్చారు. ఈ విధానంలో భాగంగా ఆసుపత్రులు అందజేసే టెస్ట్ కిట్లో ఒక కార్డు ఉంటుంది. దాన్ని వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటున్న వ్యక్తి తన మూత్రంలో ముంచి తీసి ఫోన్లో ఉన్న నియోడాక్స్ యాప్ ద్వారా ఫోటో తీయాలి. యాప్లో ఉన్న ఆల్గారిథం ఈ ఫోటోను స్కాన్ చేసి 30 సెకండ్లలో ఫలితాలను తెలియజేస్తుందని యాప్ రూపకర్తలు వివరించారు. బంగ్లాదేశ్తో ఉన్న అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో గస్తీ కాస్తున్న సరిహద్దు భద్రతా దళం బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బందిపై బంగ్లాదేశ్ వైపు నుంచి వచ్చిన గ్రామస్తులు దాడి చేసిన ఘటన పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ఆదివారం జరిగింది. ముర్షిదాబాద్ జిల్లాలోని బెర్హంపూర్ సెక్టర్లో ఉన్న నిర్మల్చర్ అవుట్ పోస్ట్ వద్ద భారత్ వైపు ఉన్న పొలాల్లోకి పశువులను తరలించడానికి బంగ్లాదేశ్ రైతులు ప్రయత్నించారు. దీన్ని అక్కడ గస్తీ కాస్తున్న బీఎస్ఎఫ్ సిబ్బంది గమనించి వారిని అడ్డగించారు. దీంతో రెచ్చిపోయిన ఆ మూక పదునైన ఆయుధాలు, కట్టెలతో భారత్ జవాన్లపై దాడికి పాల్పడింది. వీరికి సమీప బంగ్లాదేశ్ గ్రామం నుంచి వచ్చిన మరికొంత మంది తోడయ్యారు. మొత్తం 100 మంది పాల్గొన్న ఈ దాడిలో 2 జవాన్లు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన వారు సిబ్బంది దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలను ఎత్తుకెళ్లారని వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న అనిశ్చితి, మదుపర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడం తదితర కారణాల వల్ల దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఈరోజు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సెన్సెక్స్ 358 పాయింట్లు నష్టపోయి 59,105 పాయింట్ల వద్ద, నిఫ్టీ 133 పాయింట్లు నష్టపోయి 17,332 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. డాలర్తో రూపాయి మార్కం విలువ ₹82.91గా ఉంది. మహిళల క్రికెట్లో ఆస్ట్రేలియా మరోసారి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ను ఆస్ట్రేలియా కైవసం చేసుకుంది. ఆతిథ్య దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఆసీస్ అమ్మాయిల జట్టు 19 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. కేప్టౌన్లో జరిగిన టైటిల్ పోర్లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 156 పరుగులు చేసింది. అనంతరం లక్ష్య ఛేదంలో సఫారీలు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లకు 137 పరుగులే చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఓపెనర్ లారా వోల్వార్ట్ 61 పరుగులు చేయగా క్లోడ్ ట్రయోన్ 25 పరుగులు చేసింది. వోల్వార్ట్ అవుట్ అయ్యాక దక్షిణాఫ్రికా స్కోరు మందగించింది. ఈ ఫైనల్లో అజేయంగా 74 పరుగులు చేసిన ఆసీస్ ఓపెనర్ బెత్ మూనీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్గా నిలిచింది. ఆసీస్ ఆల్రౌండర్ ఆష్లే గార్డనర్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నీ అవార్డు చేజిక్కించుకుంది. కాగా గత టీ20 వరల్డ్ కప్లోనూ ఆస్ట్రేలియా అమ్మాయిలే విజేతలుగా నిలిచారు. తాజా విజయంతో టైటిల్ నిలబెట్టుకున్నారు. ఓవరాల్గా ఆసీస్ మహిళల జట్టుకు ఇది 6వ టీ20 ప్రపంచ కప్ కావడం విశేషం. ఆసీస్ ఇంతకుముందు 2010, 2012, 14, 2018, 2020లో టీ20 వరల్డ్ కప్లు సాధించింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. వెళ్ళి తీరాలి. అరే గేమ్ వదిలేసా. నెలైంది కంప్లైంట్ చేసి, బ్యాంక్ రిఫండ్ చేయడమే లేదు. కంప్లైంట్ చేయాలి. అరే కూర్చోండి, ఇక్కడి నుంచి చేసేయండి. ఆర్బీఐ ఒంబడ్స్మన్ కి ఎలా? ఆర్బీఐ అధికృత బ్యాంకులు, ఎన్బిఎఫ్సిలు లేదా డిజిటల్ లావాదేవీల ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నిటి గురించి మీరు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు ఇంట్లోంచే. ఆర్బీఐ సిఎంఎస్ పోర్టల్ పై. ఇదిగో చెక్ మేట్. కంప్లైంట్ చేయాలా? ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి.
And with that, it's a wrap. But news continues here on DD India. You can catch all the latest updates on our social media, mobile and digital platforms. I'll see you same time next week with another edition of India Calling. Thanks for watching. Bye-bye. डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Hello and welcome to this special weekly show. It's called Diaspora Diamonds, which is our salute to over 32 million strong Indian diaspora present in over 200 countries worldwide. I'm Gautam Roy. Well, the show launched the same day, the same time earlier this year, around the time the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention was held in Madhya Pradesh's Indore city. PBD provides a platform for the overseas Indian community to engage with the government and people of India and share their experiences and insights. It also helps strengthen ties between India and the global Indian diaspora and to recognize the achievements and contributions of Indians living abroad. The Pravasi Bharatiya Samman Awards are an integral part of the biennial event and are conferred by the President of India upon members of the Indian diaspora who made exceptional contribution in their chosen fields and have acted as India's ambassadors in foreign lands. Our guest this week is one such awardee this year again. We have with us Dr. Kannan Ambalam, recipient, Pravasi Bharatiya Samman Award and Associate Professor, Department of Public Administration and DM College of Business and Economics, Wolega University, Nekente in Ethiopia. Welcome to Diaspora Diamonds, Dr. Ambalam. Thank you. And first of all, congratulations for the award. Now, what were your first thoughts when you heard that you're getting the highest honor that the Indian government can give to an Indian living abroad? Thank you so much for the message. Really, I was so grateful to Government of India, and I feel so humble and thankful for this highest honor. Really, I was very happy for this award. Wonderful. And how did your family and friends feel? Were they taken by surprise, or did they feel that this is just, just fruits for your labor? Yeah, there are some mixed reactions. There are people who really know that I deserve this award and they were happy about this one. There are people who are surprised. Those who are following me from the beginning and how I struggle in this environment and working with the local communities, they felt really very happy and they said that I deserve this award. Yeah. Okay. Now tell us a little bit more about yourself. What are your qualifications and what exactly do you do in Ethiopia? I started my schooling from government school in Tamil medium in government higher secondary school Palamedu. Later I came to Madurai city where I got my bachelor degree in Thearajar College. Then I completed my MA in public administration from Madras Christian College. Then I moved to Delhi where I did in Jawaharlal University I did my MPhil and PhD.
Then I came to Ethiopia and I started my career as a lecturer in Ollega University. Later, I promoted to assistant professor, then associate professor. I am teaching public administration in different courses. So you've not been in Ethiopia for that long. Most of your life has been spent in India, and then you went to Ethiopia in recent years. I completed in Ethiopia 14 years. Now it is my 15th year. Okay. You've got the award in the category of community welfare. Now tell us about your related activities in a little more detail as to what all did you do as far as community welfare is concerned. First of all, my project is a team oriented. We are working together with the local communities and the students and different stakeholders. We organize the local communities at the grassroots level, and we are doing a certain infrastructure in the rural area, mostly in the rural areas. It includes construction of bridges, developing water spring. Now we are doing the check dams as well as electrification of villages. Also, we have built one toilet in schools. So our project is a multi-dimensional project. We work in different areas. Okay. And how did you find the funds for all this work that you've done, as part of your community welfare activities? Have the funds come from the communities itself, or have other people pitched in as well? First of all, our projects are partnership oriented. We share some part from our side. The community shares some part. So most of the participation comes from the community. For example, the stones, the sand, the wood, the labor force, it comes from the local communities. What we share, the factory product like a cement and sand. So mostly initially I spent from my salary, but later the media covered my work and a lot of friends who wanted to contribute. Last year, Indian Embassy in Addis Ababa, they mobilized 200,000 Ethiopian birr through the India Business Forum and others. They supported my project. So whoever support, I acknowledge them in my social media pages. So now there are many people who voluntarily to support our project, but the main one comes from the community. For example, our electrification project, there is one foundation in USA, Achar Foundation. It supports our project. Now there are some individuals come forward to support our project. So our projects are a kind of partnership. We share the materials. I learned the expert work where I do the engineering and the machinery work myself. So like that, we share the what you called the expenses. Okay. That's what. And has it been smooth sailing throughout, right from the time that you started, or have there been challenges that you had to overcome along the way as well? Were the communities that you were trying to help with you right from the start, or was there some initial skepticism and hesitation and resistance too? Yeah, here since I come from a different country, and you can see that the people first they react, kind of suspicious. But later, after they seeing my the intention of my work, they become very happy. So therefore now the people are feeling that very happy for what we are doing. Of course we face a lot of challenges, but later once the community knows our intention, what we are going to do it, they support us, and even they are more interested for our projects. Okay, and the work that you do, does it also involve getting land from the communities themselves, or from individuals in the community, or from different government bodies, and what is involved in that? So we are working in different with different stakeholders. The government has its own role in this projects, because they are facilitating our work. Because when we go with the government agencies, we have different kind of responses. So they have different stakeholders. But the major part comes from the local communities. My students are involved. The very university I work, the Ollega University, it contributes its share. So we work in different with the different stakeholders. Okay, and this work that you're doing, is it confined to the area that you are in at the moment in Ethiopia, or has it been adopted in other parts of the country as well?
Most of our work, for example, we have seen 93 bridges, 55 water springs, and we have 2 check dams and toilet. So most of the work in Ollega region where I work, it has 4 zones. Also, we have work far from where I am working. For example, Bulagara, it is almost 2000 kilometer far. There is another region called South Nationality. We have done project there. So our project goes in different areas, even very far from where I am working. And just tell us a little bit more about Ethiopia in terms of why is this kind of work really required in that country, you know, building these bridges, these low-cost bridges, as well as these water springs and other structures that you're building. But we have to take the socio-economic conditions, the topography, and where the people are living in different areas that we have to take. Basically, it is a mountainous areas. Ethiopia means highlands. So the people are living in a scattered areas. You have the lot of mountains. So they want to go from one village to other village or one village to neighboring town, they have to pass through different rivers. So of course they are in every day their activities, they have to cross over the rivers. So that is the main reason. Again, the water springs are located in the gorges where they are collecting the water and drinking, which is not pure. So therefore, this kind of locations need such a project where we cannot do it a uniform project. We have to adapt according to the conditions. Again, when you are involving the communities, when you are involving the people, where we can share the expenses, the grassroots level, because the big project reaching that area, it's not possible at the moment. So therefore, this micro project with low cost techniques, it will be more easy to implement there and will be more helpful for the people than the mega project what we are planning. It may not be possible at the moment. Naturally. Now, how critical is the kind of community work you've done for the people of Ethiopia? Because even the citation says that it has made a tremendous difference in the lives of those communities. Yeah, it is. If you take every project, it has an immense benefit for the local community. And you may see that social media pages how the people have been appreciating our work because for example, if you take the bridges, I said before, it's a mountainous area. The people are living in different mountains. What they are producing, the agriculture produce, they have to take to the neighboring market. So the urban-rural linkages, even what they need, they have to buy from the urban area to the rural areas. The basic necessities, oil, salt, the rice, whatever they need. So this bridges provides that kind of connectivity. Because in Ethiopia, 3 or 4 months heavy rain season. So that time the water is flowing full in the rivers. Yes. So therefore that time the people couldn't cross that rivers. So our bridges now make it easy for them to cross over the dangerous rivers. Again, the children are not going to the school alone. The parents are supposed to accompany them to the school. But the parents, considering their economic background, they are more engaged in agricultural activities for other activities. So the students naturally not going to the school. So accessing to the health center, the religious place, even for grazing land, taking their cattle to the grazing land neighboring areas. So it was so many difficulties. And another important one, somebody died to carry them in a dignified manner. It was difficult because of that one. So the people now using the river and the bridges, they are crossing the river easily. Sometimes the wife is falling and husband trying to catch them and both died. The cattle died. So many things has been happened. Yes. And we have a lot of stories about these things. But after the bridge we constructed, now the life become easy. The children are independently going to the school without the parents accompanying them. Again, the water. Now the water is very clean. They no need to wait for longer time. They go easily fetch and come back. So the time they save from there, now they can use for other socio-economic activities for their economic benefit. Again, health expenses. Before they used to spend more, they expense a lot of health problems by drinking this water which is not clean. Now that money they can reinvest in other activities.
Naturally. And these structures that you're building, such as the bridges, they are sturdy, are they long term? They can stay in place season after season of these heavy monsoon rains and not be, swept away, and the need to rebuild does not arise? We have some of the bridges had some problems. We have learned the lessons from that bridges. So when we are going to build the bridges, we are looking for locations. For example, this particular bridge, you can see that naturally they had another place, but for this particular bridge, we changed the locations. We have to see the natural stone. Is there any wood, natural wood, which will support the bridge there? So like this, we study the areas. We discuss with the communities. The communities also study which location is best for these bridges. After we construct the bridges, we try to make some kind of natural support on either side, which protect the bridges. In terms of durability, we study the bridges which community has built before, natural bridges, only by wood. So that bridge survived for 5 years or 6 years without any concrete, with any steel reinforcement. Right. So therefore, when you compare that bridge, our bridge, we have a cement, steel reinforcement. So there is not, this bridge is not exposed to the rain and the sunlight. So the decay is very less. Therefore, these bridges will survive more than what the community had earlier had that bridges. So that's what the duration is more for our bridges. Wonderful. So you're practically India's bridge man for Ethiopia, but do tell us how and why you chose to focus on building bridges, water springs, micro-check dams, and other community welfare activities and structures, because you're not an engineer yourself by training. Yes, I teach so many courses, which is public administration courses, development oriented courses. So when we started a master program in our department, so I thought my students would have learning something more than the other level students. So I thought to my students, let us visit some rural areas, we collect some data without any plan that we will do something, some kind of project. So it's a kind of a data collection tour. So while we were going some areas, we found that there is a small stream where elderly women trying to cross, and we found very difficult. So I stopped my student, look at this problem, it is very simple. Why don't we build a small bridge here? And immediately my students told that no, it is not easy here. There are so many procedures, so many problems is involved in building like this. I told no, we need only wood. We buy the nail, let us do a bridge. So we stayed one day more and we did a bridge, and the people were very happy. And when we come back and we shared the experience with our students in the classroom, the students were very happy that we can do like this in other places. So like that we started the project. But I don't have a technical background. So I took one person who is an expert, but the cost he asking very high. Okay. And his timing, my timing was not going matching, because I teach in the classes, then I have to go to the project. So it was very difficult. So I thought, why I don't learn this one? Then I become a missionary. Then I become the engineer by self-made. And I started learning many things from the YouTube and internet. I watch so many documentaries about construction, hydrology, not only the modern techniques involved, even the ancient one. Achha. So that helped me. I became very interested. Also, every project I am making, I learned from that project. If there is a challenge in first project, some default in first project, then I try to improve my second project. So if you have seen the sequences, lot of improvement we made that projects. Wonderful. So wonderful that you could learn something new and then implement it in this manner that is helping thousands of people there in Ethiopia. Now, all this community work must have given you a lot of insight into Ethiopian socio-economic milieu as well. Now, what commonalities do you think there are between India, where sharing experiences and knowledge with Ethiopia could benefit, both the countries, in fact? Yeah, I have a lot of insight. I travel mostly in rural areas. I stay with the people. Also, the where I am working, that I can interact with intellectuals. Also, I have a connection with the government, those who are practitioners. So we have a lot of interaction. I learned more from them. Even I learned from the communities in rural areas. So the culture-wise, there is a multicultural between India and Ethiopia. In Ethiopia, we have different culture, ethnic groups.
The languages are different. It's a multicultural society. Also, the people more living in rural areas. There are people depend on agriculture more. So our projects are the low cost project where we are involving different people. The most of things we are giving to the community. This kind of practices can be shared in India. There are communities living in rural areas. Instead of waiting for the big project, the mega project, there are some low cost project can be done. It can serve the purpose for the people. So that way that our experiences can be shared in India or elsewhere, because it has produced a lot of results here in Ethiopia. Okay, great. Now, you are, of course, one of India's ambassadors there in Ethiopia. So you would be the best person to ask. How is India viewed in Ethiopia? Is it seen as a rising global power, which is also the voice of the global south, as it is seeking to be while hosting the G20 summit this year? India and Ethiopia, the friendly countries. The Indians are highly respected in Ethiopia, and there are so many international forums. India and Ethiopia supported each other in lot of mutual issues concerning their mutual interest. When you see the G20, India has contributed a lot in global issues, not only the global south, even the world as a large. Whether it's a climate change or disarmament or counterterrorism, there are so many issues. India has taken the leadership role globally. Therefore, India deserves not only the G20, also the UN Security Council, the membership. So not only Ethiopia, there are many countries supporting India's stand because it is a legitimate right for India to hold this one. Today, the world has changed immensely. Not it's in 1948-45, but today the world has changed. So India has a presence in everywhere. Its contributions is visible everywhere. Therefore, India deserves this one. And Ethiopia and India are friendly countries. They are always supporting each other in every important issues. All right. Now, Indians as a diaspora have had a long-standing relationship with Ethiopia historically as well. There were thousands of teachers there from India at one point of time, just like yourself. Now, what is the nature of the Indian diaspora in Ethiopia now, and how is it contributing to the country's overall progress? The India-Ethiopia relation goes even 200 years back. There are a lot of historical documents available. For example, teaching profession where I am there, the Indian teachers were earlier teaching in the schools, in higher secondary schools. Whenever we meet some elderly persons, they used to recall that the teacher name and what subject they taught for them, and how they were brilliant teachers, and they were teaching the Ethiopian students well. So they used to recall that one. So that contribution, that foundation they made is still remembered in Ethiopia. Not only this one, the Indian business investments are very high here. We have around 650 companies who are doing a lot of work, giving employment opportunity for Ethiopians. There are different field in agriculture, in other field. India and Ethiopia sharing their experiences. So therefore, the diaspora contribution immense. Even in culture, there are a lot of exchanges. The yoga is taught in here. Also, the Ethiopian cinemas and other cultural activities undertaken in India. So there are a lot of activities are going on between India and Ethiopia. Therefore, the diaspora presence, the diaspora's contributions in Ethiopia is highly immense. That will be acknowledged. Okay. Okay. Now, before we let you go, tell us about the experience of attending the Pravasi Bharati Divas convention in Indore. I'm sure you must also be coming to India every now and then. What are the impressions that you've taken back from your latest visit about the country's progress and development? Oh, really, I was very happy. Really, extremely, it was a very pleasant visit, and I must thank the people of Madhya Pradesh, their love and hospitality, and particularly the residents of Indore. Everywhere you go, they are very friendly. They ask you what do you want, particularly what do you want to eat. And they come and ask you, please eat more, please take this one, that one. And the officers who are in charge for us, and even when we are leaving, they brought some
gift the sweets and other things to meet. Please take to Tamil Nadu, give to your family. So like that, so much friendly. Really, I want to thank the people of Madhya Pradesh. Even I said this one to the Chief Minister when I met him there. So really, I was so thankful for them. Regarding the progress, and India is the largest democracy in the world and a vibrant economy, and now it is recovering from the COVID pandemic, and I must appreciate the government leadership for this redoubling their efforts in making the recovery. And really, it's a fantastic effort. You can see in different dimensions that the progress is being made, and India remain the vibrant economy, and it will be a glorious country for everyone to be learned from the experiences. Okay, great. Well, let's hope that that remains par for course, and of course India makes rapid progress along with the Indian diaspora in different parts of the world as well, such as yourself, and they bring more and more laurels and more and more fame and repute to India. Thank you so much for joining us today to talk about your achievements and your success as well. Thank you so much. Okay, so that was this edition of Diaspora Diamonds this time around. Do stay tuned. Every week we come to you on every Sunday at 10 p.m. IST with another shining example of how Indians are shining abroad, settled over there. Thanks for watching. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस था। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है, योगारंभ हो, योगारंभ हो। जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे।
पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही ने कहा है ये, हरदम देगा आसरा। हठ योगानुशासन, हठ योगानुशासन। योगारंभ हो, योगारंभ हो, ये शरीर और मन का संजोग है। योगारंभ हो, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। योगारंभ हो, आरंभ हो, योगारंभ हो। Namaskar and thank you once again for joining us here on Midday Prime this Monday afternoon. Well, elections are being held in the state assemblies of two states in the northeast of our country. The northeast has been described by Prime Minister Narendra Modi as the gateway to security and prosperity. We'll talk to our correspondent covering the elections, and we'll also get you an update about the W20 meetings that are taking place under India's G20 presidency. The two-day Women's 20 meeting is taking place in Mumbai. But as always, we begin with the headlines. A secret U.S. Energy Department report, it reignites the debate about the origins of COVID-19 pandemic. A classified intelligence report by the U.S. Energy Department says the COVID-19 virus leaked out of a laboratory in China. The Energy Department makes this judgment with low confidence. The European Commission chief Ursula von der Leyen to meet the UK Prime Minister Rishi Sunak in Britain today. A joint statement says that both agree to continue working towards shared practical solutions and discuss changes on the post-Brexit Northern Ireland Protocol. Israeli settlers riot after two are killed by Palestinian gunmen. Violence aggravates a day after two sides issue joint statement assuring of working closely and reaffirming the de-escalation on the ground. Prime Minister Benjamin Netanyahu appeals for calm. Prime Minister Narendra Modi addresses a budget webinar on reaching the last mile. Says the more emphasis we put on good governance, the more easily our goal of reaching the last mile will be accomplished. He also says that the budget this year gives special attention to the mantra of reaching the last mile to tribal and rural areas. Prime Minister also inaugurates and lays the foundation stone of multiple development projects worth more than 3,600 crore rupees at Shivamogga in Karnataka. Also inaugurates the Shivamogga Airport and will release the 13th installment of 16,000 crore rupees under PM Kisan. This is in Belagavi.
Minister Smriti Irani inaugurates the two-day Women 20 or W20 Inception meeting at Chhatrapati Shambhaji Nagar in Maharashtra, I beg your pardon, and thanks the Prime Minister for centralizing the needs of not just women but of humanity. The G20 Sherpa Amitabh Kant also addresses the meet and says that no better way than women's-led development to transform the world. Polling underway in Nagaland and Meghalaya. More than 34 lakh electors to choose their new representatives from among 552 candidates in Meghalaya and Nagaland. Elaborate security arrangements have been put in place for free and fair elections. The Russian forces continue to attack multiple Ukrainian military targets while Ukraine claims to repel Russian attacks. The US warns China against providing lethal aid for Russia's war in Ukraine. Saudi Arabia's foreign minister meets Zelensky, reiterates support for Ukraine. In sports, Manchester United end a 6-year title wait, beat Newcastle United 2-0 to win the EFL League Cup title. Casemiro and Marcus Rashford score goals. So at the top of midday news, let's bring you the big story. There's new intelligence that has prompted the U.S. Energy Department to conclude that the accidental laboratory leak in China is the most likely cause for the novel coronavirus pandemic to have spread. The Wall Street Journal reported this, and the shift by the U.S. Energy Department, which previously was undecided on this issue on how the virus emerged, is noted in an update to a 2021 document by the Director of the National Intelligence, Avril Haines' office. The conclusion was a change from the department's earlier position that it was undecided on how the virus had emerged. The COVID-19 virus leaked out of a laboratory in China, according to a report by the U.S. Energy Department. The report, a classified intelligence report, was recently provided to the White House and key members of Congress, the Wall Street Journal reported. It highlights how different intelligence agencies have arrived at disparate judgments about the pandemic's origin. Although the Energy Department made its judgment with low confidence, the WSJ reported. The Energy Department now joins the Federal Bureau of Investigation in saying the virus likely spread via a mishap at a Chinese laboratory. 4 other US agencies and a national intelligence panel still believe the virus was likely the result of a natural transmission, while 2 others are undecided. The Energy Department's conclusion is the result of new intelligence and is significant because the agency has considerable scientific expertise and oversees a network of US national laboratories, some of which conduct advanced biological research. Energy Department's insights come from its network of national laboratories, some of which conduct biological research, rather than more traditional forms of intelligence like spy networks or communications intercepts. The FBI previously came to the conclusion that the pandemic was likely the result of a lab leak in 2021 with moderate confidence and still holds this view. US officials added that while the Energy Department and the FBI each say an unintended lab leak is the most likely cause of the pandemic, they arrived at those conclusions for different reasons. The updated document underscores how intelligence officials are still putting together the pieces on how COVID-19 emerged. More than 2 years after the pandemic, the origins of COVID-19 remain unclear. China, on its part, has placed limits on investigations by the World Health Organization. The country has opposed the virus lab leak theory and has suggested it emerged outside China. Bureau Report, DD India. Let's now move to our developing story. The European Commission Chief Ursula von der Leyen will meet the Prime Minister of Britain, Rishi Sunak,
and hold talks. This is called final talks on the new Brexit deal for Northern Ireland. According to a joint statement, the two agreed to continue their work in person towards shared practical solutions for a range of complex challenges around the protocol on Ireland and Northern Ireland. The meeting will happen in Berkshire, which is west of London, and the UK wants to change the current agreement, which sees some goods checked when entering Northern Ireland from the rest of Great Britain. A new deal has been this new deal has been expected for days. Let's quickly tell you about what will happen if the deal is reached. Now, if the much-awaited deal is reached, it would then be announced later in the day, with the leaders holding a joint press conference after the cabinet has been updated on the matter. The Prime Minister would then address the House of Commons. Both the Tory and the Labour MPs have been told by their respective whips to come to Parliament today. Earlier, the Northern Ireland Protocol was agreed to under the former Prime Minister Boris Johnson's tenure as part of the process of the UK leaving the European Union. It means that Northern Ireland has continued to follow some EU laws so that goods can flow freely over the border to the Republic of Ireland without checks. Instead, goods arriving from England, Scotland and Wales are checked when they reach Northern Irish ports. The critics feel that this undermines the nation's position within the rest of the UK, as well as it impacts trade. Let's move to our National Prime segment now. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Shivamogga Airport in Karnataka today. This new airport is developed at a cost of around 450 crore rupees. The passenger terminal building of the airport can handle 300 passengers per hour. The airport will improve connectivity and accessibility of Shivamogga to other neighboring areas in the Malnad region. Prime Minister stressed that today the brand of India's aviation market is blooming globally. The Prime Minister also stressed that central government has built 74 new airports post-2014. भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। Well, the Prime Minister laid the foundation stone for two railway projects as well in Shivamogga, and these include the Shivamogga Shikaripura Renebennur new railway line and the Kote Ganguru railway coaching depot. The Shivamogga Shikaripura Renebennur new railway line is developed at a cost of, it's going to be developed at a cost of 990 crore rupees, and the Kote Ganguru railway coaching depot at Shivamogga city is going to be developed at a cost of about 100 crore rupees. हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अब रोड भी अच्छी होती है, तब युवाओं का बहुत लाभ होता है। शिवमोगा तो एजुकेशनल हब है। अच्छी कनेक्टिविटी होने से आसपास के जिलों से युवा साथियों के लिए यहां आना आसान होगा। इससे नए बिजनेस के लिए, नए उद्योगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। यानी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरे क्षेत्र में
रोजगार के नए अवसर बनाने जा रहा है। The Prime Minister also laid the foundation stone for multiple road development projects, the projects which will be developed at a cumulative cost of more than 215 crore rupees. बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। And during the program, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stone of multiple village schemes worth more than 950 crore rupees under the Jal Jeevan mission. The schemes will provide functional household piped water connections and are expected to benefit a total of more than 4.4 lakh people. The Prime Minister inaugurated 44 smart city projects worth more than 895 crore rupees in Shivamogga city, and these projects include 8 smart road projects, integrated command and control center. Earlier, the Prime Minister took a tour of the newly constructed Shivamogga Airport in Karnataka. This new airport is developed, as we said, at a cost of around 450 crore rupees, and the passenger terminal building of the airport can handle 300 passengers per hour. The airport will improve connectivity and accessibility of Shivamogga with the neighboring areas of the Malnad region. The Prime Minister witnessed an exhibition also depicting regional products and millet items. Well, some other stories related to Prime Minister Narendra Modi. He addressed, in fact, the post-budget webinar on how Amrit Kal budget focuses on reaching the last mile. He asserted that when a government's work is measurable and monitored regularly, targets are achieved on time. And he said that reaching the last mile is the only possible way for good governance. सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन। जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे, उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा। Now, talking about several historic schemes announced in the budget, the Prime Minister said that the government's endeavour is to ensure that benefits of these schemes reach rural and tribal belts of the country. आज पहली बार देश में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा गया है। आज पहली बार देश में बंजारा, घुमंतु, अर्ध घुमंतु वर्ग के लिए
वेलफेयर बोर्ड बना है। गांवों में बने 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार की सेवाओं को गांवों तक ले गए हैं। भारत में जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहां आखिरी छोर तक रीचिंग द लास्ट माइल के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। Now let's move to the northeast. And in Meghalaya, voting is underway amidst tight security. 44.73% of polling has been recorded till 1 p.m. Over 21.40 lakh electors are exercising their franchise. This is at 3,419 polling stations, which are across 59 assembly constituencies in the state. The election for the Sihong constituency was adjourned following the demise of a candidate. And so the total of 369 candidates are in the fray, which include 36 women, and 14 parties are participating, including 4 national parties fielding their candidates. Polling began at 7 a.m. and will conclude at 4 p.m. Let's So that's polling in Meghalaya. Now let's go across to Nagaland. Voting in Nagaland for the Assembly elections 2023 is also underway amid tight security there. Polling will end at 4 p.m. and 57.06 polling has been recorded till 1 p.m. Over 13 lakh voters are exercising their franchise. This is in 2,291 polling stations, and there are 59 assembly constituencies that they are voting for to determine the fate of 183 candidates, including 4 women candidates, and 1 seat has already been decided. It's one uncontested by the BJP, hence there are 59 out of the 60 seats. Out of 2,291 polling stations, 777 are critical and 720 polling stations are categorized as vulnerable. The Election Commission has set up 387 all-women polling booths, as well as 38 model, 7 all-youth and 3 all-Divyang polling booths across the districts. The international and interstate boundaries have also been sealed to prevent trouble-mongers from entering the state. Movement of essential commodities, emergency services into the state have been exempted. The counting of votes for both Meghalaya and Nagaland is going to take place on the 2nd of March. Okay, let's get some perspective now on the Meghalaya Assembly elections first, and then we'll look at Nagaland. Here, it's coming up behind me now, the first slide. Bring it up, please. Yes, Meghalaya Assembly elections 2023, 60 members of the Meghalaya Legislative Assembly, 59 are actually going to the votes because one candidate has expired, and hence the 1 seat they have sort of countermanded the elections for the time being. Now, previous assembly elections were held in February of 2018, and the tenure of that assembly is going to end on the 15th of March 2023. And 2018 assembly poll result was a hung assembly. No party won a clear majority, and a coalition led by the NPP, that's the National People's Party, was formed in the state. It was led by Conrad Sangma, who was the chief minister, and he has completed a full 5-year term. Quite rare, in the state, unless you have a clear majority. So a coalition government completing a full term. The electorate consists of 10.92 lakh voters who are female and 10.68 lakh voters who are male. So obviously the female voters are more. And 120 all-women pink polling booths have been set up. We mentioned that in our anchor read as well. And 13 political parties are in the fray in Meghalaya, 14 according to our latest report. And
Among the major national parties are the BJP, the Congress, the NPP, and the All India Trinamool Congress. They are among them. And 375 candidates, including 36 female candidates, are in the fray. Now, the BJP and the Congress are contesting all the 60 seats. The Trinamool Congress is contesting 56 seats. The NPP is contesting 57 seats, and the regional parties, which are the UDP, the United Democratic Party, the Voice of the People's Party, that's the VPP, and the Hill State People's Democratic Party, that's the HSDP. Now, these parties have some strongholds, and they can spring a surprise as well, and they are likely to win some seats in their respective strongholds. There are also 44 independents who are in the fray. And let's look at some of the key issues that are, being debated and what people are voting upon. There is a demand for separate states for the Garo Hills and the Khasi Jaintia Hills. These are the regional parties that push this forward. There's a basis also for all this demand, according to them, is that they have separate culture and language. But drug abuse is a problem in Meghalaya. It's affecting the youth and society, and definitely on the voters' mind as to how this can be tackled. Meghalaya shares also a border with Bangladesh, and so the concept and the problem of illegal migration is an issue. But apart from illegal migration, they also have a problem with migration from other parts of India, Bengal, Punjab, and Bihar, because there is a fear amongst the indigenous communities that they would become a minority. This is the identity politics that prevails across the Northeast. There's also the problem of road infrastructure, which was quite poor in Meghalaya, and the road density is among the lowest amongst the northeastern states. So healthcare infrastructure has also been criticized by voters to a large extent. We'll see how they vote based on that, because they say that there's poor maintenance of hospitals and clinics. Meghalaya has abundant deposits of coal, limestone, kaolin, feldspar, quartz, granite, industrial clay, and uranium. Also has deposits of sillimanite, bauxite, base metals. So it has a huge industrial potential, but it has a problem. It has a fragile ecosystem, so all this can't really be mined properly. Let's look at the assembly elections now in Nagaland. Nagaland is going to elect 59 going for 59 seats. One seat, the candidate has already been elected unopposed, and hence there are only 59 seats. Previously, the assembly elections were held in February of 2018, and the tenure ends on March 12, 2023 of that assembly. The coalition of the NDPP, led by nephew Rio, and the BJP had formed the government. It's completed a 5-year term, and in April of 2022, in fact, what happened was that 21 NPF MLAs, which was the largest party in the state assembly, they joined the NDPP. So as a result of that, there was actually no opposition left. And the key issue was the decade-old Naga peace talks. The political parties formed what they called an opposition-less government to give the mandate to the government to do whatever they want. Now, to facilitate the ongoing peace process is what they said. But in December of 2022, Prime Minister Narendra Modi visited the Northeast, and he said that Northeast India is a gateway to security and prosperity. He attended also the Northeastern Council meeting in Meghalaya. Now, the Chief Minister, nephew Rio, who won unopposed in 2018, is actually contesting this time against a youthful candidate from the Congress. So he's not usually winning. I mean, he usually wins unopposed, but this time he has a contest on his hand. Now, only 4 women candidates are in the fray amongst 181 in Nagaland. No woman has ever been elected, apparently, to the Nagaland Assembly, as per our reports. The key issue is development. They are concerned about the lack of development in the state. Amongst them is the concern about extortions, unemployment, power shortage, and load shedding are some of the key issues that are on the voters' mind. We're seeing high voter turnout in both these places. Let's turn to Vishal Barristow, who is joining us in Shillong. Vishal Barristow, are you with us? Yeah, can we have him on the screen, please? There is Vishal Barristow. He's reporting from Shillong. So, Vishal, let's look at Meghalaya first. It's an interesting contest.
there are basically every party is going in alone, even though coalition government was in power in the past. So it looks like, I mean, judging by from the outside, with so many parties in the fray, one party is unlikely to get a full majority. Well, absolutely, Mark. A very good afternoon to you. Very rightly put in. Last time also we had a coalition government, though Congress had the highest number of seats and the vote share 29.5% with 21 seats. But this time it's been marginalized on the sidelines because TMC has taken over Congress as far as their candidates are concerned, their MLAs were concerned in November 2021. Mukul Sangma, the former Chief Minister of Meghalaya, also from the Congress party, he joined TMC with 12 MLAs. 5 MLAs died from the Congress party. And even in the campaign, Congress is nowhere to be seen as far as Meghalaya is concerned. I have traveled both Khasi Jaintia and also Garo Hills. So it is the NPP, as far as regional party is concerned, NPP, UDP, who are leading as far as the campaign is concerned. And when it comes to campaign by the national parties, BJP is applying a lot of pressure, and also TMC. So it is going to be an interesting contest between TMC, Congress, I beg your pardon, TMC, BJP, NPP, and UDP. Now, I was hearing you while you were describing the viewers that the demand of a separate state in the Garo Hills. Mark, when we talk about Meghalaya, you have to divide it like this: Khasi, Jaintia, and Garo. Khasi and Jaintia have 36 seats, and Garo have 24 seats. Because of the death of one candidate from the UDP, we are having contest on 59 seats. But as far as Garo is concerned, Khasi is the leading tribe in Meghalaya. But the Garos are constitute the 1/3 part of the total population, so they have a major stake in the population in the state. And also the Chief Minister, both Mukul Sangma and Conrad Sangma, they are also come from Garo Hills. So the Garo is going to be an interesting deciding factor. But yes, as far as the results are concerned, I've spoken to the Chief Minister, Conrad Sangma. He was also saying that though he is quite optimistic, but yes, he won't mind a post-poll alliance. And so has Abhishek Bhattacharya Banerjee, I beg your pardon, from TMC. He was saying that we would not mind going for a coalition with the like-minded parties. So far, BJP has never said that. BJP is saying that we are contesting this election on our own and with all our might, and we want the state to progress. And their trump card is Prime Minister Modi, and that is why they are saying M for Modi, M for Meghalaya. Indeed, Vishal, if we look at these smaller states, we can see that it's hard to keep parties together. Once, an election is decided, we see that a number of political parties just break up and join with the ruling coalition. It's happened even in Meghalaya, it happened as well as in Nagaland. How do you view this how does the voter actually view this? Because they elect somebody to power with the hope that they're going to deliver, and then they basically join somebody else. Mark, when it comes to political rivalry, it is basically on the caste and religious lines. But when it comes to state like Meghalaya or Nagaland, you have 75% Christians here and 80% in Nagaland. So it is the regional factor and your tribe that is the deciding factor, and not the religion and the community, because the tribes have the major say. So Khasi and Jaintia 36 versus Garo 24, but still the Garos are springing up the Chief Minister all the time. So let me tell you, the land season is on here in Meghalaya, and it all started off with Ash Wednesday. Yesterday, we saw how people came out in large numbers to attend a Sunday service. In fact, I also attended one of the church service in the evening, Presbyterian Church at the Police Bazaar, and they also prayed for a free and fair poll, and they pray to God that we have a government that works for the development of the state, for the peace of the state. So people are looking forward to lot of interesting developments, but when it comes to options, the regional parties offer a lot of options here. And interestingly, national parties like BJP, which won only 2 seats, is applying a lot of pressure.
But another national party, Congress party, as far as the campaign is concerned, they seem to have lost the steam. Okay, a final word, Vishal. We know that the people come out to vote in large numbers in these places, and they have obviously a lot on their minds. You have spoken to them. What are the key issues, let's say, in Meghalaya? Well, Mark, the key issue has always been development, and you talk to any voter across the country, they would always look for development and development, because development is a continuous process. But when it comes to Meghalaya, let me tell you that the cancer rate is very high, almost the highest in the country when it comes to cancer of the esophagus, which is here, because people are more fond of chewing betel nuts and smoking. But they don't have a proper medical college here. They go for the treatment to the neighboring state of Assam. I was listening to your report when you was talking about migration from other states. You did not mention the state of Assam, which is a boundary and also a boundary dispute with Meghalaya. So there's a lot of migration from Assam as well, along with Bengal and other parts of northeast. But basically, it is the border with Assam that is of major concern to the people of Meghalaya. And yes, obviously, the international border with Bangladesh, and Meghalaya shares a border of more than 440 kilometers with Bangladesh. Okay. We leave it there, Vishal. Thank you very much for your inputs from the ground. Vishal Barrister reporting from the ground in Shillong in Meghalaya, where polling is brisk as we speak. Let's move on to our next story. In Maharashtra, the Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Smriti Zubin Irani, inaugurated a two-day Women's 20 or W20 Inception meeting at Chhatrapati Sambhaji Nagar. And W20 is an official engagement group under the Indian presidency of the G20. India's G20 Sherpa Amitabh Kant and the W20 group and chairperson of Sangeet Natak Academy, Dr. Sandhya Purecha, they were present on the occasion. On the occasion, Smriti Irani, on behalf of the W20 delegates, thanked Prime Minister Narendra Modi for centralizing the need for not just women but of humanity as well. And she said that every time a woman stands for herself, she stands for all women. So on behalf of all the W20 delegates, I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. That we need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? Well, addressing the delegates, Amitabh Kant said that India wants to transform the world, and there is no better way than a women's-led development. And he said that he looks forward to the transformational recommendations of the W20. He's India's Sherpa. Prime Minister, Mr. Narendra Modi was very clear in his mind that all these crises, if we have to overcome them, and if we have to push for greater growth and prosperity, women-led development has to be the key focus of India's presidency. If you look at the World Economic Forum study, which says that it will take another 132 years to close the gender gap worldwide. The world cannot grow, it cannot prosper, and it will not be able to bring in inclusive, resilient, and sustainable growth without women. And Shreya Upadhyay is now joining us with further inputs. Shreya, you with us? Yes, there she is. Well, Shreya, put this into context for us. What are the key issues being discussed at the W20?
Good afternoon, Mark, and good afternoon to all our viewers who are watching DD India right now. Well, it is the first inception meeting of the W20 under India's G20 presidency. And, before I tell you the key focus areas of this meeting, Mark, let me tell you this meeting doesn't feel like a meeting. It feels like a celebration of womanhood, of sisterhood, and, countries coming together to find common solutions to common challenges that women, not just in India, but across the world face. Now, coming to the focus areas of this meeting, Mark, there are 5 key areas which have been carved out for this meeting. The first one being women entrepreneurship. We know that the government in India has encouraged and nurtured a startup ecosystem and especially encouraged women entrepreneurs and the challenges they face, how they need to be phased out, weeded out, and a lot of encouragement needs to be given to women entrepreneurs. So that's number 1 on the agenda. Number 2 is women leadership at the grassroots level. There's no better example, Mark, than the Anganwadi workers in India who are leaders in their own right at the grassroots level. And we've seen this through the COVID pandemic, how each of them went out and made sure that every citizen of the country gets vaccinated against COVID pandemic. The third one is bridging the digital divide. Now, this is something very interesting because we don't realize it, but in our daily lives, there is a huge digital divide when it comes to men and women. Men have more access, men have more awareness of technology use than the women in the households. So that is number 3 on the agenda when it comes to women empowerment through technology. Number 4 is another interesting topic, that is climate resilience and women's role as change makers. We again don't realize the fact that women are one of the most vulnerable groups when it comes to climate change and its effects. We're also seeing migration happening due to climate change, and therefore this meeting aims to discuss and make sure that the G20 summit declaration includes the fact that women are most affected by climate change and how they can come forward and ensure that they are included in the groups that are affected most due to climate change. Number 5 is education and skill development of women, and who better than India to really understand how education of one woman can really lead to the education of the entire family. So really these are the 5 key areas of focus in this meeting, Mark. In the next today and tomorrow, they will be discussing this, and of course much more is happening on the sidelines as well. The women delegates from the G20 countries will also be visiting the Ellora caves, and of course we'll get you more on that as well on DD India. Mark? Indeed, Shreya, you preempted my next question, which was what India, has to offer in terms of examples. But let's try and understand also that the way the world looks at women, and we also have, Women and Child Development Ministry. So a woman and child seem to be held together. Yeah. And often it is the needs of the child that stops a woman from progressing in her particular chosen career. To what extent is this dilemma being, debated, and how to find the best and the most plausible solution for women and children to basically prosper together? Yeah, Mark, this is an important topic which is being discussed here. Extensive discussions and deliberations are being done. And interestingly, Mark, I didn't know this, and I'm sure that a lot of viewers also wouldn't know this, that extreme heat causes more incidences of childbirth in women. So, the impact of climate change being felt at this level where pregnancies in women can be affected, and this is the kind of challenge and solution that is being discussed here at the meeting. Women's health, whether it's childbirth related or children's health or even menstrual health, which is being discussed, menstrual health, menstrual hygiene.
All of these things are being discussed here at the meeting, and India of course has been leading in finding solutions to these problems, whether it is being the front runner when it comes to climate action, or even making rural women aware of menstrual health and menstrual hygiene and the kind of guidelines and precautions they need to follow when it comes to childbirth and ensuring that the child remains healthy as well. So really a lot of discussions happening on this topic as well here. Mark? We leave it there. Thank you very much, Shreya Upadhyay, joining us from the W20 Inception meeting in Maharashtra. Let's move on to our next story, and this is about the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, who called on the Crown Prince Frederick and the Princess Mary Elizabeth of Denmark, who are in India, and the minister shared with them various aspects of what is the new India in the making. And he said that the conversation covered sustainability, digital delivery. In particular, India and Denmark, in fact, are seen as vibrant and open democracies. They share common values, rules-based international order, and have a convergence on several views of significance in multilateral issues. The Crown Prince Frederick and the Crown Princess Mary of Denmark, they paid their respects to Mahatma Gandhi at Rajghat in New Delhi as well. And Denmark's Crown Prince also met Vice President Jagdeep Dhankar in New Delhi. The Czech Republic's Foreign Minister Jan Lipavsky arrived in India on Sunday evening and is going to be in India till the 1st of March. He's being accompanied by members of the Czech Parliament, the Deputy Minister for Science, Research and Innovation, and a high-level official and business delegation. So during this visit, Lipavsky is going to hold bilateral talks with the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. The two leaders, they're expected to discuss the entire gamut of bilateral relations. They're going to exchange views on regional, international issues of mutual concern, interest. Lipavsky will also be attending the inaugural session of what's called the India-EU Business and Sustainability Conclave. That's going to be organized by CII on the 28th of February. And that nicely sets into our next segment, which is the business segment. Key Asian shares, they slipped on Monday as the markets were forced to price in what's called the loftier peaks of US and European interest rates, slugging bonds globally and pushing the dollar to multi-week highs. Investors are braced for more challenging US data, including the closely watched ISM measure of manufacturing and services, the latter being especially important because of January's unexpected spike in activity. So there's also at least 6 Federal Reserve policymakers on the speaking diary this week to offer a running commentary on the likelihood of further rate hikes. So the MSCI's broadest index of Asia Pacific shares outside of Japan, it fell 0.5%. It shed 2.6% last week. If we recall, Japan's Nikkei, which is the N225 index, it eased 0.4%. South Korea's Kospi, it shed 0.9% when reports last came in. And Nokia has announced plans on Sunday to change its brand identity for the first time in nearly 60 years, complete with a new logo as the telecom equipment maker focuses on aggressive growth. The new logo comprises 5 different shapes forming the word Nokia. This iconic blue color of the old logo has been dropped for a range of colors depending on the use. The chief executive, Pekka
Lun Mark said all this in an interview, and he said that there was the association to smartphones, and nowadays we are in business of technology company. So they've changed their outlook as well. They want to be a technology company rather than a company for smartphones. Nokia rebranding itself. Now the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has arrived in Sikkim. She's on a 4-day visit there. The first day of her visit, the Finance Minister is scheduled to attend the post-budget outreach program in Gangtok, and she's going to give a keynote address on the salient features of the Union budget. It's going to be followed by an interaction with representatives of trade and industry in Sikkim. Okay, let's get you news from across the world now in World Prime. Thousands of members of the National People's Power Party, NPPP, they protested in Colombo. This happened Sunday. What are they doing? They're demanding local government elections to be held next week. But the police had to disperse these protesters earlier because of the current economic situation. What the Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe did. He's also the finance minister of the country. He refused to release funds to the Election Commission because he said that these funds are not available right now. They are only there for essential items. And this decision, in fact, what did it do? It compelled the country's Election Commission to postpone the elections. Not gone down too well with the people, as we can see. That they the elections were due to take place early next month, and now they don't have the funds for the elections. Amid much clamor that China may send lethal aid to Russia, the U.S. has said that it has evidence that Beijing is considering arming Russia with lethal weapons, including 100 drones. So the White House said that the East Asian country has not moved towards that step as yet, but the U.S. also warned China that providing such aid would be a big mistake, a huge mistake, a real mistake. Well, the United States said that NATO allies in the recent days have been scrambling to dissuade China from any such move. We have intelligence that's been reported that they are contemplating sending 100 drones into Russia. We also know they're buying all their energy from them. At this point, not seen them take the step of providing weapons to Russia for purposes of the war in Ukraine. We are watching closely. We know they haven't taken it off the table, and we are sending a clear message, as are our European allies, that this would be a real mistake because those weapons would be used to bombard cities and kill civilians, and China should want no part of that. Well, Saudi Arabia's Foreign Minister, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, reiterated his support for Ukraine during a visit to Kiev on Sunday. The minister also called for a peaceful resolution to the ongoing war. Prince Faisal bin Farhan Al Saud met with the Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who thanked Saudi Arabia for its cooperation and aid. In October last year, Saudi Arabia said that it would provide $400 million in humanitarian aid to Ukraine. In September, Saudi Arabia won a diplomatic victory by securing freedom for foreign fighters captured in Ukraine. With the Crown Prince, in fact, Mohammed bin Salman's mediation, Russia in September 2022 released 10 foreigners it had captured in Ukraine, including 5 Britons as well as 2 Americans. So the goodwill of the Saudis is quite high. The kingdom is also really eager to support everything that reduces tension and escalation in order to get to a peaceful solution to this war. And we in Saudi Arabia are convinced that any end of the war should be through discussions on a negotiation table in a framework of international law and through Charter of the United Nations to respect the sovereignty of the countries. This is why we will keep working with different parts to search for chance of getting to such a settlement. It's time now for news from the world of sports. And getting us all the sporting action is Deepika.
Over to you, Deepika. Good afternoon, Mark. Let's quickly take a look at all that is buzzing in the world of sports. First, let's begin with the big news coming in from cricket. Well, Australia are finally the 2023 T20 Women's World Cup champions as they completed 19-run victory over South Africa. The local fans stare in disbelief as the women in yellow celebrate what was ultimately a rather comprehensive victory. There was a moment when South Africans believed, especially when Wolvertot and Tryon looked to put them in an unlikely position to win. However, once both batswomen were dismissed, the writing was on the wall. With that result, Australia achieved 3 consecutive T20 titles on the trot. The Australian women's team extended its enviable dominance in world cricket further by winning an unprecedented 6th T20 World Cup trophy with comfortable 19-run victory over a fighting South African in the summit clash. Coming to bat first, the Meg Lanning-led team set a target of 157 for South Africa. The informed batter, Mooney, smashed 9 boundaries and a 6 at a strike rate of nearly 140 to trouble the Proteas bowlers. In response, the Proteas managed to score 137 for a loss of 6 wickets in 20 overs in their maiden World Cup final appearance. Opener Laura Woltart kept the match alive till she was around, but her dismissal at 61 for 48 balls in the 17th over ended hopes for South Africa as their batting lineup shattered. The Aussies registered their 5th hat-trick of title victories by winning the 2010, 2012 and 2014 edition. They won 2018, 2020 and 2023 editions of the tournament to register another successive victories. Beth Mooney's 74-run knock proved crucial to their record 6th trophy victory. Mooney was given Player of the Match award, while Australia's all-rounder Ashley Gardner is the winner of the Player of the Tournament for her stupendous all-round efforts in the match. The outstanding Gardner took 10 wickets and scored 110 runs for Australia. Meanwhile, Australian skipper Meg Lanning created history by winning her 5th ICC tournament as the captain. She has now led Australia to victory in 4 T20 World Cups. These are 2014, 2018, 2020 and 2023, along with the ODI World Cup in 2023. Lanning was also the captain of Australia's Commonwealth Games 2022 winning team in Birmingham last year. By virtue of this victory now, Lanning now holds record for being the most decorated captain in the history of ICC international events. She beat former Australian men's team captain Ricky Ponting and MS Dhoni to achieve the remarkable feat. Sports Desk, DD India. And in tennis, British number 1 Cameron Norrie beat top seed Carlos Alcaraz to clinch his 5th ATP singles title at Rio Open final on Sunday. Norrie beat Alcaraz by 4-6, 6-4 and 7-5. The victory now comes just 7 days after Norrie, ranked 13th in the world, lost to world number 2 Alcaraz in the final of the Argentina Open. It is Norrie's first title of 2023 and just his 2nd on clay, having won the Lyon Open in 2022. On the other hand, Alcaraz, who was the defending champion in Rio, having beaten Diego Schwartzman in last year's finale, missed out on an 8th career title for himself. It was also his 2nd tournament of the year following a 4-month injury layoff that saw him miss the Australian Open as well. Moving on to football now, Manchester United claimed their first trophy since 2017 with victory over Newcastle United in Carabao Cup final at Wembley. Newcastle's own wait for silverware, stretching back to 1969, goes on after 2 goals inside 6 minutes in the first half that established Manchester United's superiority and set them on their way to a forced success under manager Erik ten Hag. Newcastle attempted to rally in the second half, but the goals dried up at the wrong time for Eddie Howe's men. Now it meant that Manchester United were back in the honours after last tasting success 6 years ago when lifting the Europa League under Jose Mourinho and also winning this competition in the same campaign. And back home, Indian pugilists Govind Kumar Sahani, Anamika and Anupama clinched silver medals on the final day as the Indian contingent finished with 8 medals at 74th Stranja Memorial International Boxing Tournament in Bulgaria. The final between Govind Sahani and Shodrochin, the 2023 Asian Under-22 Championship silver medalist, went down to the wire, and in the end it was the Uzbek boxer who registered a victory by 4-1. So that's all from the world of sports for now. Back to you, Mark. Thanks very much, Deepika, for all the sports news.
And in fact, that's all we have for you in Midday Prime for this afternoon. Thank you very much for joining us, and thanks for your company. जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। Namaskar and welcome to our special broadcast on BAFTA Awards. The 76th British Academy Film Awards was recently held, honoring the best foreign and national films of 2022. BAFTA goes to... We are so proud. And I love you. Anti-war German movie All Quiet on the Western Front won 7 prizes including Best Picture at the British Academy Film Awards. All Quiet at the Western Front, a visceral depiction of life and death in the World War I, trenches based on Erich Maria Remarque's classic novel, won Edgar Berger the Best Director Award. Its screenplay trophies included Adapted Screenplay, Cinematography, Best Score, Best Sound, and Best Film Not in English. Austin Butler was a surprise Best Actor winner for Elvis. Baz Luhrmann's flamboyant musical also won trophies for casting, costume design, hair and makeup. Outstanding British film The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh, Graham Broadbent, and Pete Senine. The movie Elvis of Baz Luhrmann won big and took home 4 BAFTA. Which are these categories and what went behind the making of this film? Let's see in our next report.
Elvis movie was well received at the box office and has been acclaimed by the critics. Many appreciated actor Austin Butler's performance as the titular music icon. Casting director Dennis Chamian shared his experience about casting the role of Elvis Presley. We're in shock. Okay. Nikki, first of all, we want to congratulate all of the casting directors who were nominated with us. You're all amazing. The casting on Elvis was tremendously collaborative, and really, I'm grateful to have worked with Nikki. She did all the heavy lifting on this movie. We're appreciative of all the freedom Baz gave us to be so, just further his vision that was astonishing from the very beginning. Austin, you gave a performance that I hope will be remembered for a long, long time. Anyway, yeah. So thank you to Baz and to Gail Berman, Catherine, Skylar, Patrick McCormick. Most of all, thank you to BAFTA for recognizing casting directors and what we contribute to film. This was something that was taken so seriously by Lerman and filmmakers that actors from all across the world were considered. Even so, Butler was someone who had been in consideration from the very start of the process. Austin Butler had a certain look and charm that were reminiscent of Elvis Presley, but how he sang and performed were also important factors to consider. Chamian reveals how Butler had recorded himself performing a rendition of Unchained Melody with a video leaving a big impact. The other actors had performed the very same song with their own screen tests, complete with a trademark hair and white jumpsuit, but no one of them seemed to replicate the real Elvis as much as Butler. In auditions, everyone did the same song for the test and the white suit for the final auditions. They had hair and makeup. It was a full-blown test, and by the end, people have missed the edit from Austin's Elvis to the real Elvis. But everyone was blown away by the Butler's performance. The prestigious BAFTA had a diverse set of nominations. In our next report, we will see which were these movies who won big and left home as winners. A German remake of anti-war classic All Quiet on the Western Front was a big winner at the British Academy Film Awards. Based on the 1928 novel by German author Erich Maria Remarque about the horrors of World War I from the perspective of a young soldier. Paul Bäumer. Ich möchte noch nicht loslegen. This drama has led nominations with 14 nods, making it one of the most recognized films in the English language in BAFTA's history. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. It won 7 awards overall: Best Film, Adapted Screenplay, Film Not in the English Language,
director for Edgar Berger, cinematography, sound and original score. Schließen wir Frieden. Ich hab Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. And the BAFTA goes to All Quiet on the Western Front. Thank you so much. Wow. German language film, we've been blessed with so many nominations, and winning this is just incredible. All Quiet on the Western Front tells a story of young men who, poisoned by right-wing political nationalist propaganda, go to war thinking it's an adventure. And war is anything but an adventure. That is one of the message of Remarque's seminal novel. And when we started embarking on this, making this film, that seemed a relevant message, even 100 years after the book was published. It's truly an honor and it makes us very, very proud. Thank you. Austin Butler won the Leading Actor prize for his portrayal of Elvis Presley in Elvis. He thanked the Presley family in the acceptance speech. Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome, Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. My darling, I've hungered for your touch. Reverend once told me, when things are too dangerous to say, sing. I'm on before the shoot, and nobody's gonna remember me. I need to get back to who I really am. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. And the BAFTA goes to Austin Butler. Wow, this is truly extraordinary. I thank you all so much. Thank you, BAFTA, for this tremendous honor. To my fellow nominees, I'm in awe of you. I am so grateful for all these times that we've been able to spend together. Brandon, you're right there. I love you. And of course, I want to thank Mr. Baz Luhrmann. This film would not have been possible without you. Your vision, your dedication, your commitment every step of the way. I love you dearly. I want to thank my family. You are my everything. And lastly, I want to thank the Presley family. I cannot thank you guys enough for your love and for sharing with me who Elvis truly was. I hope I've made you proud. This means the world to me. Thank you all so much. God bless you.
Cate Blanchett won the leading actress prize for her portrayal of a gay conductor of a Berlin orchestra whose career comes stumbling down due to an abuse scandal in Tar, an undertaking she described as very dangerous and career-ending potentially. We have a problem. I received another weird email. There's no reason to get caught up in any intrigue. I'm worried. She's starting to disappear into herself. You want to dance the mask, you must service the composer. You gotta sublimate yourself, your ego, and yes, your identity. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself. And the BAFTA goes to Cate Blanchett. Thank you. Thank you so much to BAFTA. This is extraordinary. I likewise didn't prepare anything because it's been such an extraordinary year for women. I mean, as you've seen in those clips, all of my fellow nominees, the conversation with all of you off the screen and on the screen has been nothing short of remarkable. And we know that we're just the tip of the iceberg. You know, every year, these idiosyncratic, remarkable performances just break down the myth that women's experience is monolithic. So thank you to BAFTA. And another man, well, who I also love deeply, but I'm not married to, is Todd Field. I would not be standing here without you. Every single day, every single person on set, without saying it, you said, check your ego at the door and let's attempt to make something magnificent. And for that, I thank you. It's changed my life. This is wonderful, but you have changed my life, and I really, really appreciate it. Thank you so, so much. Banshees of Inisherin is about two feuding friends on an island off the coast of Ireland, one outstanding British film, both supporting acting categories for Kerry Condon and Barry Keoghan, as well as original screenplay. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? What is he, 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing, like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, you can still play the fiddle with 4 fingers, I bet ya. Go on back to your own gang now, Paddy. And talking to me, are you? Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. Kerry Condon. Kerry Condon. Oh my God, thanks a million, really. This means so much to me, really. I have to thank Sir Alan Parker, who gave me my very first job when I was 16 years old. And then I have to thank Martin. Thank you for this part, Martin. And thank you for all the parts that you've given me throughout my career.
They make me feel so proud to be an Irish woman. So thank you so much. Thank you. I have to thank my horses and my dogs because they showed me so much love and gave me so much meaning in my life. Thank you. I'm really, really grateful. And the BAFTA goes to Barry Keoghan! Where did I put that? Should have planned this really, but anyways. All right, I got a list here I got to thank. Martin, thank you. I'm going to fly through this because I'm quite nervous. Martin, Colin, Brendan, Kerry, the cast, the crew, the producers, Fox Searchlight, Ireland, Brando. This for my son as well, Brando, for my mother, and also for the kids that are dreaming to be something from the area that I came from. This is for you. Navalny about jailed Russian opposition politician Alexei Navalny won the documentary category. Хотел узнать, зачем вы хотели меня убить? Remarkably, Vladimir Putin faces a legitimate opponent, Alexei Navalny. I don't want Putin being president. If I want to be a leader of a country, I have to organize people. The Kremlin hates Navalny so much that they refuse to say his name. Filmmakers dedicated the award to the Navalny family and the Bulgarian investigative journalist Christo Grozev. We are creating a coalition to fight this regime. If you are killed, what message do you leave behind to the Russian people? It's very simple. Never give up. And the BAFTA goes to Navalny. For some reason, they put the person who walks the slowest up first. On behalf of director Daniel Rohr, our amazing crew, and our Impact team, and CNN Films, who took a chance on this film when no one else would, we thank you, we thank BAFTA for this incredible honor. We are so humbled to be in the company of our fellow documentarians and filmmakers who made beautiful and inspiring films. I want to give a shout out to Daniel Rohr, our director, who couldn't be here tonight because time machines from LA to London are really difficult. But we know how hard it is to make any film, and making this was the hardest of our career. Navalny was made under the constant threat of surveillance. We shot in secrecy. We went through extraordinary lengths to keep the footage secure. All emails ceased, and production was communicated via encrypted messaging. And this is obviously nothing compared to what the people in our film endure every single day. We want to dedicate this award to Christo Grozev, our Bulgarian nerd with a laptop who could not be with us tonight because his life is under threat by the Russian government and Vladimir Putin. I met Christo in the summer of 2020. His life was fairly private then, and he gave up everything to tell this story and many other stories that need to be told. And lastly, this award is for the Navalny family and for Alexei himself. Yulia and Dasha are here with us today. And for the imprisoned leader of the Russian opposition, Alexei Navalny, who for months has been in solitary confinement for his condemnation of the war in Ukraine. May this award amplify his simple, essential message to us all. We must not be afraid to act in opposition to authoritarians and to stand against authoritarianism wherever it rears its head. Thank you all. Sandy Powell became the first costume designer to get the BAFTA Fellowship, the highest honor bestowed by the Academy. BAFTA's highest honor, the BAFTA Fellowship. A few weeks ago, I bumped into Bill Nye on Bond Street, and we discussed awards ceremonies, and I expressed my fear of speeches. He said the best ones have a joke at the beginning, something meaningful at the end, and a brief in the middle.
So, thanks, Bill. And here goes, and that was the amusing bit. It really is a huge honour to be invited to join such an incredible group of filmmakers who've received this fellowship, and an even greater one to be the first costume designer. So, thank you, BAFTA. I accept this fellowship on behalf of my community, the supervisors, assistants, coordinators and PAs, the tailors and cutters, the stitchers and buyers, the weavers and knitters, the printers and dyers, the leather workers, shoemakers, milliners, jewelers, the standbys, dressers, fitters and crew, in fact, everyone who makes this work possible, including a person I would not be here without. My very first teacher. She taught me to sew, encouraged and supported every decision I ever made. I know she'll be bursting with pride right now at home watching TV. This is for my mum and mothers everywhere. The BAFTA also remembered Britain's late Queen Elizabeth, who died in September, actress Helen Mirren, who won both a BAFTA and an Oscar for her portrayal of Elizabeth in 2006 film The Queen, led the tribute. In 1953, her coronation broadcast had the world watching. From that time, she was unquestionably the nation's leading lady, but as mysterious as a silent film star. Who else could meet the world's most famous singers, actors, and performers and turn them into her supporting cast? Throughout her 70-year reign, she met cinema's greatest icons and witnessed the evolution of Hollywood's golden age to the birth of the blockbuster. Her Majesty was front row for it all. She supported over 50 cultural organizations, and in 2013 it was her turn to be honored with a BAFTA in recognition of the Queen's outstanding patronage of the film and television industries. Cinema, at its best, does what Her Majesty did effortlessly: bring us together and unite us in a story. Through the creative genius of artists, whether they be writers, actors, filmmakers, dancers, or musicians, we can see both the range of our cultures and the elements of our shared humanity. Your Majesty, you were our nation's leading star. On behalf of BAFTA, thank you for all that you have done for our film and television industry. That's all we had in today's edition, but news and updates continue on D-Day India. Stay tuned. Thank you for watching. Namaskar.
Prime Minister, Mr. Narendra Modi, was very clear in his mind that all these crises, if we have to overcome them, and if we have to push for greater growth and prosperity, women-led development has to be the key focus of India's presidency. So on behalf of all the W20 delegates, I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. Watch India at G20 at 7:30 p.m. IST today on DD India. It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार-बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Namaskar and thank you very much for joining us on this special program. Prime Minister Narendra Modi had recently said that his government has transformed the country from the fragile five to anti-fragile by reimagining and reinventing every element of governance in the last 9 years. The fragile five was a term used by Morgan Stanley in 2013 to describe countries which were seeing a large outflow of foreign funds in the post-2008 financial crisis recovery process. They were scored on 6 factors: current account balance, ratio of foreign exchange reserves to external debt, foreign holdings of government bonds, US dollar debt, inflation, real rate differential, that's the difference of interest rates for similar class of assets in different parts of the world. Now, India had scored badly on these fronts back in 2013. But as of 2017 onwards, India was removed from this list. India is currently among the fastest growing large economies of the world. And to discuss this change, we have with us two eminent guests. Let me introduce you to them. Mr. Jayant Krishna. होली तो बाद में होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बेलगावी के लोग आज ही प्रधानमंत्री के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बार बार गाड़ी के शीशे के ऊपर से देखिए फूलों को साफ करना पड़ रहा है। इतने फूलों की बारिश प्रधानमंत्री और उनके काफिले पर बेलगावी के लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसका सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के बेलगावी से देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में भी
कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को करीब करीब 16,800 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। और ये पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त होगी, जो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद किसानों को समर्पित करने वाले हैं, उनके खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में देखिए किस तरह से लगातार लोग अभिवादन कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ता हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और इससे पहले शिवमोगा में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री कर चुके हैं। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं और बेलगावी में जो अभी फिलहाल कार्यक्रम स्थल की तरफ जाते हुए हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका आप सीधा प्रसारण अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर लोगों का उत्साह है, लोग जिस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे लगातार, प्रधानमंत्री भी गाड़ी में बैठे हुए नहीं है, बल्कि वो लगातार गाड़ी में खड़े होकर, चलती गाड़ी में खड़े होकर, हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। लोगों के उत्साह का जवाब प्रधानमंत्री भी लगातार दे रहे हैं। तो कर्नाटक के बेलगावी से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत में आप देख सकते हैं कि कितने फूलों की बारिश हुई है। आयशा खानम हमारी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। आयशा, लगता है बेलगावी के लोग आज ही होली खेल रहे हैं, वो भी फूलों की होली, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। आयशा, साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में कि बेलगाम के लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है आज, और आज वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूबरू होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो और करीब से उन्हें देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हमेशा से कर्नाटक के साथ जुड़े हैं, हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर उत्तर कर्नाटक के लोगों के लिए विशेषता ये रही है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तर कर्नाटक में रहते हैं, उत्तर कर्नाटक में आते हैं और संबोधित करते हैं यहाँ पर, वो जरूर संत बसवेश्वर यानी बसवण्णा की जो फिलॉसफी है उसके बारे में बात जरूर करते हैं। और वो अनुभव मंटपा जो बसवण्णा ने शुरू किया था, एक ऐसा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत का, वो उस 13वीं सदी में किस तरह से था, और बिल्कुल उस वक्त की उस सदी की झलक आज प्रधानमंत्री के जो योजनाएं हैं, जो विजन है, उसमें उन्हें नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से अनुभव मंटपा के बारे में उत्तर कर्नाटक के लोगों के साथ बात करते हैं, उनके साथ इस बात पर चर्चा करते रहे हैं। और ये विशेष है क्योंकि उत्तर कर्नाटक के लोग हमेशा से बसवण्णा की फिलॉसफी के आधार पर जो भी उनके कार्य होते हैं, कायाकवे कैलासा ये कहते हैं कर्नाटक के लोग, यानी काम अपना कार्य ही भगवान की सेवा है। तो ऐसे में कर्नाटक के लोग अनुभव मंटपा और संत बसवेश्वर की जो फिलॉसफी है, वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बात करते हैं तो वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि कैसे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के तमाम संस्कृति, इस क्षेत्र की जो फिलॉसफी है उसे इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो संत बसवेश्वर बसवण्णा के वचनों के बारे में बात जरूर करेंगे। और यही बात है कि उत्तर कर्नाटक के लोगों को प्रधानमंत्री के करीब लाती है और लोग इस जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। तो आज जब इन तमाम योजनाओं का जो ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री, और किसान करीब 8 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त
प्रदान करेंगे तो इसके बाद यहाँ के किसानों के लिए भी बहुत ही एक अचीवमेंट की बात रहेगी, क्योंकि अब आगे चलकर कुछ समय के बाद मई जून में किसान दोबारा गन्ना खेती शुरू करेंगे यहाँ पर, और कई किसान जो है इस निधि के जरिए वो अपने छोटे मोटे कार्य में इस निधि को इस्तेमाल करते हैं। तो किसान इस क्षेत्र में अपने आप को बहुत ही एम्पावर्ड मानते हैं, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 6,000 करोड़ रुपए का लाभ अभी तक इन किसानों को मिलता रहा है। और उत्तर कर्नाटक हालांकि है तो जैसे कि मैंने कहा कुछ इलाके उत्तर कर्नाटक में सूखाग्रस्त इलाके होते हैं, जैसे गुलबर्गा, बल्लारी, रायचूर, लेकिन इन क्षेत्रों में कृषि के अलावा हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान जो है नए तरीके तलाश रहे हैं। जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो शुरू की है केंद्र सरकार ने, उसके तहत हॉर्टिकल्चर माफ कीजिएगा, हॉर्टिकल्चर के जो नए आयाम हैं वो किसान यहाँ पर अपना रहे हैं। तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना, उनके साथ इस तरह से सीधे सीधे संपर्क बनाना एक बहुत ही उम्मीद कायम करती है उनके बीच में, एक ट्रस्ट ब्रिज बनाता है प्रधानमंत्री और किसानों के बीच और यहाँ के आम लोगों के बीच में। तो जाहिर है आज का जो ये प्रोग्राम है, जो इवेंट रहेगा मालिनी सिटी में, इसके तहत कर्नाटक के लोग आज इसको बहुत ही ऐतिहासिक मान रहे हैं, क्योंकि शिमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन, उसके साथ साथ जल जीवन मिशन का उद्घाटन और अब बेलगावी में किसानों का एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ रेल योजनाएं और बेलगाम में भी जल जीवन योजना का उद्घाटन, ये तमाम चीजें मिलाकर कर्नाटक को विकास की एक ऐसी राह पर प्रधानमंत्री लाकर खड़ा कर रहे हैं जिसके तहत विकास और जिसके तहत कर्नाटक का विकास देश के विकास में अपना योगदान पेश कर सकता है और कर्नाटक दक्षिण भारत के राज्यों में एक बेहद प्रोग्रेसिव स्टेट बनकर उभर सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा कि कर्नाटक देश के विकास के साथ कदम ताल कर रहा है, इसमें जरूर जो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार है और कर्नाटक में भी एनडीए बीजेपी की सरकार है, तो ये डबल इंजन सरकार होने का फायदा कर्नाटक को काफी मिल रहा है योजनाओं को लागू करने में। आयशा, बिल्कुल, डबल इंजन सरकार का मतलब ही होता है कि विल पावर टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट जमीन पर शुरू किए गए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करना, डेडलाइन के तहत पूरा करना, यही मकसद है डबल इंजन सरकार का, यही मतलब है डबल इंजन सरकार का। तो जाहिर है कर्नाटक में बीजेपी सरकार होने के चलते यहाँ की सरकार केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल करके कई प्रोजेक्ट, कई योजनाओं को गति दे रही है और कई योजनाएं जो है कर्नाटक की योजनाएं वक्त से पहले पूरा हो रहे हैं। देखिए शिवमोगा का एयरपोर्ट भी कई सालों से 2008 से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट, लेकिन अब पिछले 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट को गति मिली और बीजेपी सरकार ने, कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मिलकर, खासकर बीएस येडियुरप्पा अपने नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को पूरा होने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। और ये एयरपोर्ट जो है लो कॉस्ट एयरपोर्ट है, करीब 500 करोड़ की लागत पर कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट, बैंगलोर के बाद दूसरा बड़ा एयरपोर्ट तैयार हुआ है। तो ये एक विल पावर है जिसके तहत जमीनी जो हकीकत है, जो जमीन पर जो प्रोजेक्ट्स है वो जल्द से जल्द पूरे हो जाते हैं और यही इसका मतलब होता है डबल इंजन सरकार, यानी कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, कोई राजनीतिक दीवार नहीं, दोनों सरकारें मिलकर, केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहे हैं और इस क्षेत्र में कई जो योजनाएं हैं उसे पूरा होने में अपनी तरफ से योगदान देते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से गति शक्ति स्कीम जो है केंद्र सरकार की, उसके तहत भी तमाम योजनाओं को इंटीग्रेट किया गया है। कई योजनाएं जो हैं अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं ताकि हर डिपार्टमेंट, हर मंत्रालय मिलकर इन तमाम योजनाओं को पूरा कर सके और उसे कंप्लीट कर सके और डेडलाइन के तहत उसे पूरा कर लोगों को सौंप दिया जाए। तो ये मकसद है डबल इंजन सरकार का। और कर्नाटक में भले ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कांग्रेस के निशाने पर रहे हमेशा, लेकिन
विकास की बात जब आती है तो कर्नाटक में बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, या फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री B.S. येडियुरप्पा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उन्होंने हमेशा से कर्नाटक के लोगों के जो विकास के लिए जो प्रोजेक्ट्स है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जोश दिखाया, और कभी इसमें कोई रुकावट पैदा होने नहीं दी। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री को यहाँ के लोग अब उन्हें विश्व मानव कह रहे हैं, तो जाहिर है प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये खुलकर सामने आता है। और खास बात ये भी है, प्रधानमंत्री ने जब बात कही शिवमोगा में कि G20 के तहत कैसे पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है, और G20 के तहत भारत न केवल अपने देश का विकास बल्कि विश्व के 20 देशों के साथ बैठकर आम आदमी के विकास, आम आदमी के लिए पॉलिसी सेंट्रिक, आम आदमी के लिए पॉलिसी बनाने में योगदान दे रहा है। तो ऐसे में भारत का जो रोल है विश्व में भी नजर आ रहा है, जो लीडरशिप जो है वो विश्व में भी नजर आ रही है। लेकिन जमीनी हकीकत, आज बेलगाम में जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री को लोग उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते गए, और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कि मोदी मोदी के नारे लगे हैं। तो इससे ही साफ जाहिर होता है कि एक प्रधानमंत्री कैसे आम आदमी तक अपना संपर्क बनाकर आम आदमी के लिए काम करने का, आम आदमी के विकास की योजनाएं बनाने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री लोगों के भाव जरूर समझते होंगे जब वो इस क्राउड को देखते हैं, ये जनता को देखते हैं, जब वहां से गुजरते हैं। तो ये तमाम चीजें झलकती है उनकी विजन में और उनकी पॉलिसी मेकिंग लीडरशिप में। तो यही वो बात है कि यही वो चीज है जो प्रधानमंत्री को एक आम आदमी के बीच विश्व मानव माना जा रहा है। और विश्व मानव का मतलब ही ये होता है कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा नेतृत्व जो हर एक को साथ लेकर चले। और आज बेलगाम में सबका साथ सबका विकास की नीति जो हम कह रहे हैं, और कर्नाटक में जो आज हम देख रहे हैं, वो एक उदाहरण बनकर इस तस्वीर में झलक रही है। लालचंद जी बिल्कुल। और ये जो तमाम योजनाएं हैं, इसमें जाहिर सी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाएं वो तो हैं ही, लेकिन इस इलाके के लिए आयशा, क्योंकि ये इलाका महाराष्ट्र से सटा हुआ है और ये इलाका थोड़ा सा पठारी इलाका है, इस इलाके के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना जो है वो और ज्यादा महत्व का हो जाता है। आयशा, अब तक आवाज आ रही है? जी सवाल बोल रहा है। आयशा, मैं फिर से दोबारा आपसे पूछता हूं कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं तो हैं ही, लेकिन ये इलाका जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, थोड़ा ये पठारी इलाका भी है उत्तरी कर्नाटक का, तो इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जो बहुग्राम योजना है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक तनाव बना रहता है, क्योंकि कुछ गाँव में कर्नाटक में कुछ गाँव, वहाँ दूर दराज के गाँव में विकास नहीं है, वहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता रहा है, और करीब 180 ऐसे गाँव हैं जो तमाम सुविधाओं से परे हैं। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन योजना की बात करते हैं तो लोगों में एक विश्वास बनेगा, इस इलाके तक पीने का पानी पहुंच रहा है लोगों के लिए, और साफ पीने का पानी लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये एक उम्मीद बनती है लोगों में कि अब जो सीमा पर जो विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक का, ये विवाद भी किसी न किसी तरह से सुलझ जाएगा। लेकिन लोगों के लिए उनकी बेसिक सुविधाएं जरूरी है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, पीने का पानी जरूरी है। अगर ये तमाम चीजें लोगों को मिलती है, ये योजनाएं लोगों तक पहुंचती है, तो जाहिर है किसी तरह का कोई सीमा विवाद भी नहीं रहेगा। तो यही प्रधानमंत्री की कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इन तमाम जो गलतफहमियां हैं बॉर्डर्स पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर कुछ गाँव में जो विकास नहीं हुआ है, तो यहाँ तक विकास पहुँचाएं, यहाँ के किसानों को सशक्त करें, उनको एम्पावर करें, उन्हें किसान सम्मान योजना के दायरे में लाएं और उनके खाते में
सरकार की तरफ से जो इंस्टॉलमेंट है वो जमा करें। तो ऐसी तमाम चीजें होती है जिसके जरिए लोग एक तृप्त जीवन बिता सकते हैं और बॉर्डर पर जो तनाव होता है वो जाहिर है कम हो जाएगा। तो ऐसे में इस तरह के राजनीतिक तनाव जो दोनों राज्यों के बीच कभी कभी उठते हैं, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है विकास। और इसके जरिए जल जीवन जो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जल जीवन मिशन जो है खास मायने रखता है उत्तर कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि ये इलाका हमेशा से पानी के लिए तरसता है। हालांकि जब यहाँ पर बारिश होती है तो बाढ़ भी आती है इस इलाके में, बेलगाम में और रायचूर में, लेकिन लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कर्नाटक सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर इन लोगों का करीब 4,80,000 लोगों तक जल जीवन योजना को पहुंचाया है। तो ये बहुत ही अहम है और बेलगाम के लोग इस बात के लिए हमेशा से इस बात का इंतजार करते रहे कि उन तक विकास पहुंचे और जल जीवन एक विकास की धारा बनकर अब उन्हें देश से जोड़ रही है। जी, अब जहां तक रेल परियोजनाओं का सवाल है आयशा, जिस तरह से कि पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन भी प्रधानमंत्री समर्पित करने वाले हैं, तो जो नया ये रेलवे स्टेशन है पुनर्विकसित, इसको लेकर के बेलगावी के लोगों और वहां आने जाने वाले लोगों को एक बिल्कुल नया अनुभव प्राप्त होगा। ये देखिए, बेलगाम का रेलवे स्टेशन बहुत ही केंद्रित फोकस रेलवे स्टेशन है जो उत्तर कर्नाटक के लोग और बेलगाम के लोगों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है और कई आर्थिक शहरों के साथ जोड़ता है और मुंबई से जोड़ता है। तो इस स्टेशन को रिनोवेट किया गया है, दोबारा से रीडेवलप किया गया है। तो स्मार्ट सिटीज के तहत ये तमाम प्रोजेक्ट जो है पूरे होते आए हैं और ये स्टेशन जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। और इस रेलवे स्टेशन पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं जो अत्याधुनिक तरीके से जो नया एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन होता है, ठीक इसी तरह का रेलवे स्टेशन बेलगाम का रेलवे स्टेशन अब तैयार है और इसके तहत लोगों को अपने सफर में आसानी होगी। और जो फैसिलिटीज है रेलवे स्टेशन की, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक सपना है कि देश के कई रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के आधार पर उन्हें मॉडल किया जाए। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर भी मिले। तो यही वजह है कि रेलवे स्टेशन को भी रिडेवलप करने के लिए कर्नाटक के कई रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार की योजना जो है रेलवे मंत्रालय की योजना में है। तो ये रेलवे स्टेशन बहुत ही अहम है, एक कनेक्ट है बेलगाम को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए, अपनी आर्थिक ग्रोथ के लिए। जो यहाँ से ट्रेन है, जहाँ यहाँ से कनेक्टिविटी है, ये अब रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद, रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद लोगों के लिए भी काफी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। लाल जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर बात कर लें रेलवे लाइन दोहरीकरण की जो परियोजना है 930 करोड़ रुपए की लागत से, इस दोहरीकरण के बाद उस इलाके में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, कितना फायदा मिलेगा आसपास के इलाकों को? जी देखिए, ये कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ जैसे जो मैंने बताया आपको गन्ना किसान यहाँ पर खेती करते हैं, तो जाहिर है तो रेलवे लाइन की डेवलपमेंट होगी तो एक्सपोर्ट यहाँ से किसान अपना माल दूसरी तरफ पहुँचाने में आसानी होगी उनको। और क्योंकि बेलगाम एक एजुकेशन सिटी माना जाता है, एजुकेशन हब माना जाता है, युवाओं के लिए बहुत जरूरी होगा कि रेलवे लाइन की डेवलपमेंट हो, डबलिंग हो, ताकि वो बेलगाम आसानी से पहुंच सके। जी बिल्कुल आयशा, हम लगातार देख रहे हैं कि लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगभग कितनी और देर की ये रोड शो हो सकता है और लगभग कितनी देर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे? ये लगभग अभी कुछ 10 और मिनट की बात हो सकती है, उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री
मालिनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर ओपन ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, भीड़ उनके साथ साथ चल रही है। देखिए जो लोग हेलीपैड से उनके साथ वहां पर खड़े थे उनका स्वागत में, तमाम लोग, ये भीड़ जो है एक सैलाब की तरह प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चल रही है। और यही वजह है कि काफिले को और गति नहीं मिल रही, स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो भीड़ जो है लगातार प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेलगाम के लोग, और वो हर मोड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो और 10 या 12 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिनी सिटी पहुंच जाएंगे, जहां पर वो यहाँ आए किसान और यहाँ आए बेलगाम के लोग और उत्तर कर्नाटक से आसपास के जिलों से आए लोगों को संबोधित करेंगे। जी आयशा, हमने देखा तस्वीरों में कि स्थानीय वेशभूषा में, परिधानों में महिलाएं वहां पर हैं, और हमने देखा तस्वीरों में कि बैल्कनी में भी काफ़ी संख्या में महिलाएं खड़ी नजर आईं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। तो कर्नाटक में हम ये देख रहे हैं कि युवकों के बीच, महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री को लेकर खासा उत्साह बेलगावी में भी देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बेलगावी में भी काफी झलक नजर है अलग अलग कल्चर की, अलग अलग संस्कृति की, और यहाँ पर महाराष्ट्र के कल्चर की भी काफी झलक आपको देखने को मिलेगी। मराठी कल्चर और कन्नड़ा कल्चर यहाँ पर एक साथ देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री हमेशा से हर राज्य के कल्चर की सराहना करते हैं, हर राज्य के वेशभूषा की सराहना करते हैं। और जैसे कि हाल ही में दिल्ली में उन्होंने कर्नाटक के कल्चरल उत्सव में भारत कन्नड़ा दिन हुआ, यहाँ भी उन्होंने कर्नाटक कल्चर की काफी जमकर तारीफ की। और हमेशा प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कर्नाटक के या फिर दूसरे राज्यों के कल्चरल आर्टिस्ट को और कल्चर को। तो यहाँ बेलगाम में आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर भी नजर आएगी। यहाँ पर बेलगाम में कर्नाटक का कल्चर और महाराष्ट्र का कल्चर, जो मराठी कल्चर है, वो एक साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं बेलगाम और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बॉर्डर को लेकर तनाव की, लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं जहाँ पर महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। कर्नाटक के लोगों के साथ मिलकर, कन्नडिगा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के लोग अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी लाल सिंह। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है कार्यक्रम स्थल की तरफ, और इस बीच लोगों के द्वारा फूलों की बारिश, अभिवादन लगातार जारी है, और प्रधानमंत्री भी अभिवादन का उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आयशा, अगर आज के एक और बड़े कार्यक्रम की बात करें, करीब करीब देश के करीब 8 करोड़ किसानों को जो 13वीं किस्त है पीएम सम्मान निधि की, किसान सम्मान निधि की, वो प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने बेलगावी का जो क्षेत्र है, बेलगावी के कार्यक्रम को चुना। प्रधानमंत्री ये संकेत देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि उनकी सरकार किसानों के समर्थन के लिए है, उनकी सरकार किसानों के फायदे के लिए है, और यही पैगाम वो बेलगावी और वहाँ कर्नाटक के किसानों को भी इस कार्यक्रम के जरिए देना चाह रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पैंडेमिक के बाद अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की तरफ से कई कोशिशें हैं उन किसानों में, उन छोटे व्यवसायों में और उन स्किल लेवरेज में एक जोश और उत्साह भरने के लिए, ताकि वो दोबारा से अपना जीवन पटरी पर ला सके। और किसानों के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से जो योजनाएं का ऐलान किया, और आज जो किसान सम्मान निधि की योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 करोड़ किसानों को उनकी 13वीं किस्त देंगे। तो ये बहुत ही खास है यहाँ के इस इलाके के किसानों के लिए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद कई किसानों के लिए भी किसानों ने भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और उनके खाते में जो भी केंद्र सरकार की तरफ से निधि जमा होती है, वो उसके जरिए किसान इसका इस्तेमाल कर, कुछ किसान इस पैसे से बीज खरीदते हैं या फिर नई मशीनरी खरीदते हैं। तो ये छोटी छोटी जो पहल है केंद्र सरकार की तरफ से,
इन किसानों के लिए बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है। तो किसानों को एम्पावरमेंट करना और किसानों के साथ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से एक विश्वास जताते हैं किसानों के लिए कि पूरा देश जो है किसानों के साथ है और किसानों के हित में केंद्र सरकार काम करती रही है। तो आज की जो किसान सम्मान योजना के तहत जो इंस्टॉलमेंट किसानों को देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक और कदम होगा जिसके जरिए बेलगावी और उत्तर कर्नाटक के कई किसानों को सशक्त करने के लिए और उन्हें एक विश्वास दिलाने के लिए कि केंद्र सरकार किसानों के साथ है हर मुश्किल में और हर वक्त किसानों के लिए सरकार काम करती रहेगी और नई नई योजनाएं बनाती रहेगी। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री अब कार्यक्रम स्थल की तरफ पहुंचने वाले हैं। आयशा, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है बेलगावी में, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान सम्मान निधि को जारी करेंगे और इसके साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री का इसके बाद क्या कार्यक्रम है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई अभी तक? जी देखिए, प्रधानमंत्री बेलगाम में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे और हमें ये बताया गया है बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री अगले महीने दोबारा कर्नाटक आ सकते हैं, क्योंकि कई और योजनाओं का आगाज प्रधानमंत्री करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब भी कर्नाटक पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों को ये विश्वास देते रहे हैं कि वो बार बार कर्नाटक आते रहेंगे, यहाँ के लोगों के विकास के लिए काम करते रहेंगे। तो हमें ये जानकारी मिली है बीजेपी के सोर्सेस के जरिए कि प्रधानमंत्री बेलगाम के कार्यक्रम के बाद वापस लौट जाएंगे और अगले महीने उनके 2 और कार्यक्रम जो है वो कर्नाटक में होंगे और कई और इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के पीएम किसान सम्मान योजना के तहत वहाँ भी किसानों के लिए उनकी जो इंस्टॉलमेंट है इस स्कीम के तहत उस स्कीम के तहत किसानों के लिए वो डीबीटी के तहत उनके लिए निधि ट्रांसफर करेंगे। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसके बाद भी प्रधानमंत्री का अगले महीने भी कार्यक्रम है, इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में कर्नाटक और वहां के लोग कितने ऊपर हैं। आयशा? जी हाँ, बिल्कुल। शुरू से कर्नाटक में प्रधानमंत्री और कर्नाटक के लोगों के बीच में एक ऐसा नाता रहा है कि दोनों में आपसी ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कर्नाटक की, जैसे कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री प्रभावित रहे हैं कि कर्नाटक की कई जो फिलॉसफी है बसवन्ना की, संत बसवेश्वर की, ये तमाम चीजें हैं जो जिस जरिए प्रधानमंत्री कर्नाटक के तहत करीब रहे हैं। और प्रधानमंत्री के लिए कर्नाटक राजनीतिक तौर पर भी अहम है, क्योंकि दक्षिण में जो के लिए दक्षिण का द्वार जो खुला है वो कर्नाटक के जरिए ही हुआ था। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर कर्नाटक में पहली बीजेपी सरकार बनाई थी। तो दक्षिण में ये बहुत ही अहम कार्य था बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के लिए का द्वार खोलने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक राज्य है। तो ये भी राजनीतिक तौर पर मायने रखते हैं बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार कर्नाटक जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में दोबारा पहुंचते हैं और यहाँ पर जिन इलाकों तक विकास नहीं पहुंचा है, इन इलाकों में नई योजनाओं का आगाज करते हैं, उद्घाटन करते हैं और दूर दराज के लोगों को कनेक्ट करते हैं और लोगों को पीने का पानी मुहैया कराते हुए जल जीवन जैसी स्कीम को लॉन्च करते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री ये जताते हैं कि कर्नाटक उनके लिए बेहद करीब है और कर्नाटक की जनता के साथ उनका जो एक संबंध है, जो एक रिश्ता है, वो हमेशा कायम रहेगा। और हमने देखा कि बेलगाम की सड़कों पर ये तस्वीर साफ नजर आ रही है कि कैसे प्रधानमंत्री और बेलगाम के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जी, आप बीएस येदियुरप्पा का आपने जिक्र किया, आज उनका जन्मदिन है। आज एक खास मौका तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर मंच से ही उनको मुबारकबाद दी और लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाकर उनका अभिवादन करने के लिए कहा। बात बिल्कुल दिल को छू गई होगी, चाहे बीएस येदियुरप्पा
की बात करें या वहां उपस्थित लोगों की, या कर्नाटक के लोगों के दिलों को ये बात छू गई होगी? आयशा। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो प्रधानमंत्री का जेस्चर था, ये लोगों को एक सरप्राइज जेस्चर रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने येडियुरप्पा को विश करने के लिए तमाम लोगों को आगे आने को कहा और मोबाइल के जरिए जब लोगों ने टॉर्च दिखाकर उनका अभिवादन किया, तो प्रधानमंत्री भी एक तरफ से येडियुरप्पा को ये संदेश दे रहे थे कि वो एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई बातें कही येडियुरप्पा को आपको पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येडियुरप्पा का सम्मान कर रहे थे। बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनका सम्मान किस तरह से किया जाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिवमोगा के मंच पर साबित कर दिया। तो लोग इस प्रधानमंत्री के इस जेस्चर से बहुत ही उन्हें लगा कि बहुत ही भावुक और बहुत ही अत्यंत आदरणीय एक मैसेज है, जो कर्नाटक के वरिष्ठ एक कद्दावर नेता को उनके 80 साल की जन्मदिन पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का तोहफा दिया और तमाम लोग उनके साथ शामिल हुए उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बेलगावी में जो प्रधानमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, इससे पहले शिवमोगा में भी उन्होंने 3600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आयशा, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कर्नाटक के लोगों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है? जी, सबसे पहले तो एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये बहुत ही अहम है, और एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ साथ जो एक इकोसिस्टम एयरपोर्ट के आसपास बनेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके जरिए जो कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है सड़कें, नेशनल हाईवेज जरूरी है, तो इन सड़कों के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और शिवमोगा, शिकारीपुरा और रानीबेन्नूर के बीच रेल कनेक्टिविटी का भी उद्घाटन, ट्रेन का भी उद्घाटन किया। ये बहुत अहम है क्योंकि इस इलाके में जो किसान हैं उनके लिए बहुत जरूरी था, ये बहुत दिनों से ये मांग थी, क्योंकि शिवमोगा क्षेत्र में सुपारी और स्पाइसेस की खेती होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए ये रेलवे लाइन और जो सड़क के प्रोजेक्ट है ये बेहद जरूरी है, ताकि वो अपना उत्पाद जल्द से जल्द एपीएमसी तक पहुंचा सके। तो ये बहुत ही खास रहा। उसके अलावा जल जीवन मिशन जो है शिवमोगा के लोगों के लिए भी उन्होंने उद्घाटन किया। उसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, देखिए जब सिटी बढ़ता है, जब सिटी में एयरपोर्ट आता है और इस तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो सिटी की छोटी छोटी जरूरतें भी बढ़ जाती है। तो इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या को साफ तहत प्रधानमंत्री ने एक और प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। तो ये तमाम प्रोजेक्ट जो है करीब 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन अब किया है। और उम्मीद है कर्नाटक बीजेपी सरकार को कि वो आगे चलकर इन योजनाओं को अंजाम देंगे और इसको इनके तहत लोगों तक डिलीवर करेंगे। तो यही वजह है कि लोगों के सामने कर्नाटक बीजेपी, खासकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बी एस येडियुरप्पा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यही उम्मीद जताते हैं कि लोग अगर साथ दें तो बीजेपी सरकार भी उनके साथ मिलकर काम करती रहेगी। और यही कोशिश है बीजेपी सरकार की कि अगले इस वर्ष जो अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो उस समय बीजेपी अपनी तरफ से लोगों को अपने जो विकास की योजनाएं हैं ये तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को एक कि जो योजनाओं का आगाज बीजेपी ने किया है उसे पूरा करने का उन्हें मौका भी दिया जाए। तो ये भी एक कोशिश है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के जरिए, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह से योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है। तो ये लोग फैसला करेंगे, कर्नाटक की जनता फैसला करेगी कि कौन विकास ला रहा है और कौन उन्हें पीछे रखने की कोशिश करता रहा है। तो अब विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास ही मंच है और लोग ये बात समझ गए हैं कि भले ही राजनीति अपने स्तर पर कुछ भी हो, लेकिन लोगों तक अगर विकास पहुंचता है तो लोग उस नेतृत्व का साथ जरूर देते हैं। जी
जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं आयशा, उससे हम ये मानकर चलें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी विकास को, डबल इंजन सरकार के फायदे को, कर्नाटक के बदलाव को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। कर्नाटक के सरकार, कर्नाटक में आने वाले चुनाव में बीजेपी अपनी तरफ से 120 सीट के टारगेट बीजेपी ने रखा है और एक विजन बनाया है 120 सीट जीतने के लिए। और कर्नाटक और उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक की जनता जो अभी तक की योजनाएं हैं और कर्नाटक सरकार ने जिस गति से काम किया है, इन तमाम चीजों को देखते हुए, नापते हुए वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो जाहिर है आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी तरफ से केंद्र सरकार की योजनाएं और अपनी तरफ से पूरी की गई तमाम विकासशील योजनाओं की बात लोगों तक रखेगी, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस जो है इस वक्त हताश है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस हताश है और लगातार सरकार पर आरोप और प्रत्यारोप लगाता रहा है। तो ऐसे में जवाब देने के लिए बीजेपी के पास, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है, और वो है विकास। और इसके जरिए लोगों को लोग ये जरूर समझेंगे कि कौन कर्नाटक की जनता के विकास के हित में है और कौन राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जब शिवमोगा में कार्यक्रम का वहां पर जो उद्घाटन और शिलान्यास किया था, उसके बाद अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक ही योजनाओं का फायदा सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। तो प्रधानमंत्री लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं कर्नाटक में भी कि जिनको भी जरूरत है उनके दरवाजे तक ये डबल इंजन सरकार पहुंच रही है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जो है छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। ये भी साबित होता है शिवमोगा के एयरपोर्ट के उद्घाटन में, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है उड़ान फ्लैगशिप स्कीम के तहत शुरू किया गया था और इन छोटे शहरों को बड़े शहरों से कनेक्ट करने और फिर देश के बड़े आर्थिक स्थानों के साथ कनेक्ट करने की एक कोशिश है। और उड़ान स्कीम ऐसी है जिसके तहत हर छोटे शहर को एयरपोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी दी जाए, और अगर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी शुरू होती है तो जाहिर है दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके आसपास तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में टियर 2 सिटीज जो है, कर्नाटक के टियर 2 सिटीज है, इन टियर 2 सिटीज के विकास के लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई है। और ये टियर 2 सिटीज, क्योंकि कई बड़े सिटीज, कई कैपिटल सिटीज जैसे बैंगलोर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव महसूस होने लगा है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो विकासशील योजनाएं हैं वो टियर 2 सिटीज में ले जाया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले, वहाँ के लोगों को व्यवसाय मिले, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। देखिए छोटे शहरों का विकास का मतलब है कि इन शहरों में जो टूरिज्म पोटेंशियल है, जो टूरिस्ट स्थल है, इनका विकास किया जाए। तो इस तरह से सर्क्यूट बन जाता है विकास को लेकर, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम्स में है, उनकी योजनाओं में नजर आता है कि अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को भी इक्वली विकास के साथ जोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में यहाँ तक की ट्रेनिंग है कि कैसे सीनियर सिटीजन के लिए पार्क बनाए जाए, स्वच्छ वातावरण दिया जाए। तो ये ईज ऑफ लिविंग की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं वो स्मार्ट सिटी का एक चिन्ह है। और इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि लोगों के जीवन को भी सुधारने की कोशिश, एक क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश और ईज ऑफ लिविंग को एक हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आज जिस तरह से आयशा दक्षिण में शिवमोगा से लेकर उत्तर में बेलगावी तक प्रधानमंत्री जिस तरह से विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, इससे पूरे कर्नाटक में दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रधानमंत्री का ये संदेश और यह कि विकास ही मूल मंत्र है और विकास का जोरदार पैगाम आज के कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने पूरे कर्नाटक में देने की कोशिश की है। आयशा,
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री ने यही साबित किया है कि कैसे विकास ही लोगों के जीवन बदल सकता है। कैसे अमृतकाल के दौरान विकास की डोर से बंधे रहने से अमृतकाल में जो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं, एक बेहतर लिविंग स्टेटस जो है हर किसी को मिल सकता है। तो विकास ही जीवन मंत्र है, विकास ही केंद्र है, इन केंद्र सरकार की फोकस है केंद्र सरकार की पॉलिसीज का। और विकास के तहत ही भारत विश्व के उन तमाम बड़े देशों के साथ खड़ा हो सकता है। और जैसा कि G20 में भी इस पर बात होती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल और वसुधैव कुटुंबकम। तो जब विकास की बात हम करते हैं, देश का विकास को हम बढ़ावा देते हैं, तो जाहिर है वसुधैव कुटुंबकम की बात जब भारत कर रहा है, G20 का एक टैगलाइन बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, तो ये विश्व में एक मिसाल, भारत एक मिसाल बनकर कायम हो सकता है, सामने आ सकता है कि कैसे विकास के तहत एक देश विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को बढ़ा रहा है और कैसे भारत अपनी जो सीख है, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो दूसरे देशों के साथ एक्सचेंज कर उन दूसरे देशों के लिए भी एक राह बन सकता है। तो विकास की बात अब महज भारत तक सीमित नहीं है। भारत में जब से G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, उसके बाद ये साफ हो रहा है कि कैसे विकास को अब एक नया रूप, नया मोड़, नया आयाम दिया जा रहा है और इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी की बात कही जा रही है। तो ये जो है प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, उस विकास का मंत्र, उसके तहत प्रधानमंत्री आम आदमी को एम्पावर करते हुए उन्हें एक बेहतर ईज ऑफ लिविंग का एक माहौल तैयार करते हुए उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री कर्नाटक में आज जो शिवमोगा और बेलगावी में जो योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिवमोगा में और बेलगावी में जो करेंगे, ये साबित करता है, एक तस्वीर सामने लाता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यानी वॉक द टॉक की बात अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री अपनी हर योजना, अपना हर विजन जो है उसे ग्राउंड पर, उस तस्वीर को ग्राउंड पर तब्दील करते हैं और ये आम आदमी के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं बेलगावी में, जहां पर वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि भी जारी करने वाले हैं। Belagavi, welcome Shri Narendra Modi ji, our beloved Prime Minister, to your esteemed city. ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಜನನಾಯಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಹರಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೇ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. With due respects to the tape, disciples of Swaranjali Sangeeta Samsthe will now present the state anthem, requesting one and all to please stand for the state anthem. ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ಧನ್ವಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಸಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ಮ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ ಸ್ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಕೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ ಕಂಕಣ ಜಗಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯ ವರದಂಗ ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಜ್ಞಾನ ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ ಕಾಯಕ ವೈದಿಕರ ರಾಮ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ದೇಹ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಂಗಳ ದೇಹ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಮೋರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ. ಕರಕುಶಲ ನೇಯ್ಗೆಯ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶಾಲನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. On behalf of the state, a hand-woven, naturally dyed, richly decorated shawl with a GI tag will now be presented to Honorable Prime Minister by our beloved Chief Minister. ಸುಂದರವಾದ ಕರಕುಶಲ ನೇಯ್ಗೆಯ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಶಾಲನ್ನ ಹೊರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು. ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾರವನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. Specially designed cardamom garland will now be presented by Honorable Member of Parliament Chikkodi, Shri Anna Saheb Jolle, and Shri Iranna Kadadi, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha. ಇದೀಗ ಪೇಟಾವನ್ನು ತೊಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. Turban will now be presented by Honorable District Minister and Minister of Irrigation, Shri Govind Karjola. ಸವದತ್ತಿಯ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಳಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹೊಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಡಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. An unique memento, a specially hand-stitched Modi ji portrait with more than 12.5 lakh stitches in thread to be presented to Honorable Prime Minister by Honorable MLA Belagavi North and Honorable MLA Belagavi South. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ, ಈ ಭಾಗದ ಜನನಾಯಕರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು. Requesting Honorable Minister for the welcome address. बोलो भारत माता की। ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಡಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದಾನಗರಿಯಿಂದ ದೇಶದ 8 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕುಂದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, गांव गरीब किसान जय जवान जय किसान के साथ जय अनुसंधान के मंत्र और योजना समाज के हर एक वर्ग के लिए जन कल्याण योजना द्वारा सबके साथ सबके विकास का कीर्तिमान माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबके तरफ से मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं. बेळगाविय नवीकृत रेलवे स्टेशन घटप्रभा ಲೋಂಡಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಳದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಶೋ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 10-11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಇರಲಾರದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1 ಇಂಚು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಎಲ್ಲರ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸ್ವಾಗತ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜನತೆಯನ್ನ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಸವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. May I now call upon Honorable Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, to deliver his speech. अभी मैं केंद्र मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस प्रोग्राम के बारे में अपना वक्तव्य रखें. आज के इस महत्वपूर्ण मौके पर हम सब के मध्य विराजमान, हम सब के प्रिय नेता, हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बसवराज बोम्मई जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, बहन शोभा जी, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित विशाल संख्या में हमारे इस क्षेत्र के किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोगों का निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य
कि फिर से एक बार पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसानों के खाते में भेजने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सबके मध्य उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के अलावा देश भर में अनेक स्थानों में 85 लाख किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। मैं उन सब 85 लाख किसानों की ओर से, मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। हम सभी कृतज्ञ हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही, देश को आह्वान किया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को ही नहीं कहा, सरकार की भी योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया प्रति किसान की आय बढ़ाने में सरकार की योजना से उन्होंने मदद की। इस कार्यक्रम को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम कहते हैं। यह कार्यक्रम दुनिया का अपने आप में अभिनव कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि लोगों के खाते में अंतरण हो, ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है। लेकिन मुझे कहते हुए गौरव है कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक 12 किस्तों में लगभग 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,24,000 रुपया राशि का अंतरण किया है और आज 16,000 करोड़ रुपए की वो 13वीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैलगांव की धरती पर पधारे हैं। अभी बटन दबा के वो 16,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। हम सब निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से कामकाज संभाला है तब से लगातार उनके द्वारा इस बात की कोशिश की जाती रही है कि किसान कैसे समृद्धशाली हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, गांव गरीब किसान की हालत कैसे सुधरे। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा 13-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 21,000 करोड़ रुपया होता था। आज मोदी जी के राज में कृषि मंत्रालय का बजट 5 गुना बढ़कर 1,85,000 करोड़ रुपया हो गया है और इसका फायदा आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए का फंड। हर जगह गैप्स को भरने के लिए किसान दीर्घ काल तक खेती करे और मुनाफे की खेती करे, इसके लिए पर्याप्त निवेश की भी व्यवस्था की है। और साथ ही साथ जब इस बार बजट आया तो चाहे वो एग्री स्टार्टअप को मदद देने का मामला हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती का मामला हो, चाहे मिलेट्स ईयर को आयोजित करने का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कृषि के क्षेत्र को देने का मामला हो, चाहे हॉर्टिकल्चर की फसलों को बढ़ावा देने का मामला हो, चाहे प्लांटेशन को बढ़ाने का मामला हो, हर विषय के लिए जो पर्याप्त प्रावधान किए उसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारे भारतवर्ष की खेती को मिलेगा। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के किसान भाइयों और बहनों को। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि क्षेत्र में योजनाएं और नीतियां चल रही हैं वो बराबर उनका लाभ ले रहे हैं और आज लाखों किसान जिनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले दिनों हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ के आसपास हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह जो परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है कृषि के क्षेत्र में कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है,
और कृषि उत्पादों में या तो पहले नंबर पर है या दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़े हैं। यह सब माननीय मोदी जी की नीतियों के परिणाम स्वरूप आज संभव हो रहा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर, किसानों के साथ मिलकर भारत सरकार एक बात की कोशिश कर रही है कि किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। किसान के घर में समृद्धि आएगी तो पूरे देश में समृद्धि आएगी। इसलिए हम सब मिलकर किसानों को आगे बढ़ाएं और आज पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जारी होगी। और मैं एक बात आप सब लोगों को और कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक समय था जब सारी दुनिया योगा करे और योगा डे मनाया जाए। इस प्रस्ताव को माना गया था और आज दुनिया के अधिकांश देश भारत के योगा को अपना रहे हैं। इसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि जो मिलेट्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको श्री अन्न नाम दिया है। श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न रागी, श्री अन्न ज्वार, ये मिलेट्स पूरी दुनिया में प्रचारित हो। व्यक्ति के भोजन की थाली में यह मिलेट्स प्रतिष्ठा पाए, इसके लिए पूरी दुनिया में 2023 को श्री अन्न मिलेट्स ईयर के रूप में मनाना चाहिए। 18 मार्च को दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस मिलेट्स ईयर का लॉन्च करेंगे। मैं किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं, मिलेट्स की उत्पादकता बढ़े, उत्पादन बढ़े, इस दिशा में हम चिंता करें और हम सब लोगों की कोशिश रहे कि मिलेट्स की खपत भी पूरे देश में बढ़े, दुनिया में हमारा निर्यात बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Our sincere thanks to Honorable Union Minister Shri Narendra Singh Tomar ji. I humbly invite Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai ji to address the gathering. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ತಾವು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಈ ಜನಸಮೂಹ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಅಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು, ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ರೈತರ ಬಂಧು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಸಹೋದರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ರೈತರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅವರ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭೂಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ 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 ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು MSP ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ MSPನ 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಇರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸ ರೈಲ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವ್ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲ ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಾಹಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇವತ್ತು ಭಗೀರಥ, ಭಾರತದ ಭಗೀರಥ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 40 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅನಿಶ್ಚಿತೆ ಇತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಶಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣ ಸೋಚ್, ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಹೊಸ ನಯಾ ಸೋಚ್ भारत देश में लेके आया है. नया भारत अभी बन रहा है और अमृत काल जो है उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं. जब भारत 100 साल स्वतंत्र बनाएगा तो विश्व मान्य देश बनेगा और उसका नींव अभी हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाल रहे. इंಥ ಒಂದು ವಿಷನರಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಅವರ ನಯಾ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾ ಕಿ.
ಆದರಣೀಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जैसे कि केंद्र मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज का वर्ष है, तो आज के बाकी सारे योजनाओं को चालन देने से पहले गौरवान्वित प्रधानमंत्री जी 9 तरह के सिरिधान्य या मिलेट्स या पोषक अनाजों को अभी माटी में भरेंगे. 2023 being the International Year of Millets, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to pour 9 varieties of millets into the earthen pot in commemoration of the same, and also as a symbol of harvest, prosperity and the native culture. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is now pouring 9 variety of millets into the earthen pot in commemoration of 2023 being the year of International Millets. 2023 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಸುಗ್ಗಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, ಕಣಜ ತುಂಬುವುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, ಸಂಪದ್ಭರಿತ ನಾಡು, ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ 9 ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾರಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अब मैं भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री किसान योजना का 13वां इंस्टॉलमेंट रिमोट के जरिए रिलीज करेंगे, जिसका मूल्य होगा 16,000 करोड़. With due respects to the chair, I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the 13th installment of Prime Minister Kisan Samman Nidhi worth rupees 16,000 crores. भारत का किसान समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बने और भारतीय कृषि आधुनिक और लाभकारी हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में समग्र और अथक प्रयास किए गए हैं. प्रधानमंत्री जी के संकल्पबद्ध नेतृत्व में बीज से बाजार तक, मिट्टी से लेकर सिंचाई तक, खाद से लेकर फसल बीमा तक, खेती के हर स्तर पर हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं. हाल के वर्षों में हमारे अन्नदाता के द्वारा रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन देश में खेती की लगातार बदलती तस्वीर को दर्शाता है. प्राकृतिक खेती हो या भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को पोषक अनाज यानी श्री अन्न के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय खेती के साथ पर्यावरण और पोषकता के परस्पर समन्वय पर भी सरकार का पूरा फोकस है. किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की ऐसी ही एक अहम पहल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान. पीएम किसान के तहत 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं. 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक मिले 2.25 लाख करोड़ रुपए ने एक नई ताकत दी है. जब खाद लेने का समय होता है, जब बीज लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है. पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है. कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है. दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि की सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थानों ने भी की है. डिजिटल प्रणाली के जरिए किसानों की पहचान से लेकर उनके खाते में रुपए भेजने का काम सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है. डायरेक्ट खाते में आते हैं, वो फोन में मैसेज आ जाता है, सुनते ही बड़ी खुशी होती है. समय पे पैसे जब आ जाते हैं खाते में तो खाद बीज लेकर खेत की बुआई आराम से हो जाती है.
ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. किसान साथी ऑनलाइन के साथ साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी PM किसान योजना से जुड़ सकते हैं। योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी PM किसान वेब पोर्टल या PM किसान मोबाइल ऐप से हासिल की जा सकती है और किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 की मदद ली जा सकती है। 4 साल से लगातार चल रही इस किसान सम्मान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए किसान हितों को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज PM किसान की 13वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। समृद्ध देश, सशक्त किसान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। I solicit Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to dedicate to the nation and unveil the foundation stone of Railway and Jal Jeevan Mission project worth over rupees 2,240 crores. अभी भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डबलिंग ऑफ लोंडा बेळगावी घटप्रभा रेलवे लाइन, पुनर्विकसित बेळगावी रेलवे स्टेशन और जल जीवन मिशन का शंकुस्थापना करेंगे। ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆಸರೆಯಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। अभी भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि वो आज इस शुभ अवसर के बारे में अपना वक्तव्य प्रकट करें। Years is a reflection of new work culture in governance, resolute thinking and collective efforts. Under the inspirational leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Indian Railways has reinvented itself as the growth engine of modern India, making qualitative difference in the lives of citizens. भारत माता की नम्मा सबका साथ सबका विकास मंत्रदा स्फूर्ति यादा भगवान बसवेश्वर ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಾನರ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿಹಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। बेलगावी की जनता का प्यार और आशीर्वाद
अतुलनीय है। ये प्यार, ये आशीर्वाद पाकर हम सबको आपकी सेवा के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। आपका ये आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणा शक्ति बन जाता है। बेलगावी की धरती पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। ये कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और क्रांति वीर संगोली रायण्णा की भूमि है। देश आज भी इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए याद करता है। साथियों, आज की लड़ाई हो या फिर उसके बाद भारत का नवनिर्माण, बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। आजकल हमारे देश में, कर्नाटका में स्टार्टअप्स की खूब चर्चा होती है, लेकिन एक तरह से देखें तो बेलगावी में तो 100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी। 100 साल पहले। मैं आपको याद कराने आया हूं, बाबूराव पुसालकर जी ने 100 साल पहले यहां एक छोटी सी यूनिट की स्थापना की थी। तब से बेलगावी अनेक तरह की इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेस बन गया है। बेलगावी की इसी भूमिका ने डबल इंजन सरकार इस दशक में और सशक्त करना चाहती है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बेलगावी से पूरे हिंदुस्तान को भी भेंट सौगात मिली है। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता
तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन ये मोदी की सरकार है। पाई पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। होली के त्योहार के पहले मेरे किसानों को ये होली की भी शुभकामनाएं हैं। भाई और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए? 2.5 लाख करोड़। कितने 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 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में जमा हुए हैं। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारी जो माताएं बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। నమస్కారం, నా పేరు వినయ్ కుమార్. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. హెడ్లైన్స్ చూసే ముందు కరోనా నిబంధనలు చూద్దాం. కరోనా నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలు పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థి మాధవ్ ప్రచారం. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఉత్తరాంధ్రలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్టు వెల్లడి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖజానా కార్యాలయాల్లో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావులేదన్న ఖజానా అధికారి మోహన్ రావు. చిత్తూరు కలెక్టరేట్లో ఖజానా కార్యాలయం ఆకస్మిక తనిఖీ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాక్లాగ్ పోస్టులన్నీ ఈ ఏడాది భర్తీ చేస్తామని వెల్లడి. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం కలెక్టరేట్లో స్పందన కార్యక్రమం. ప్రజల నుండి అర్జీలు స్వీకరించిన కలెక్టర్ రంజిత్ బాషా 48 గంటల్లో సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశం. డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తనని గెలిపించాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి మాధవ్ కోరారు.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఈరోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్రలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్టు చెప్పారు. యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కృషి చేశామన్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని తీసుకొచ్చామన్నారు. జిల్లాలో 4 నియోజకవర్గాలను కలుపుతూ నేషనల్ హైవేను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు మాధవ్ వివరించారు. ఉత్తరాంధ్రలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు కృషి చేశామని పేర్కొన్నారు. ఫేజ్ 2 దాన్ని పూర్తి చేయడానికి పూర్తి సహకారాన్ని అందించడం పాటు చిట్ట చివరి గ్రామం ఏదైతే ఇచ్చాపురం వరకు అన్ని నదులు సుమారు 10 నదులు మన ప్రాంతంలో ప్రవేశిస్తున్నాయి. అన్నిటినీ అనుసంధానం చేసే దిశగా ఈ సుజల స్రవంతి ఉపయోగపడుతుంది. ఉత్తరాంధ్రలో ఉండే కళలు మా యొక్క ఉనికి ఈరోజు బాగా బయటపడింది. గతంలో కన్నా చాలా పార్టీ పెరగటం జరిగింది. మీ ఇంకా మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లి గ్రామ కమిటీలు బూత్ కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని కుటుంబ పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా అవినీతి బంధుప్రీతి వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఆలోచనకి ఈ రాష్ట్రాన్ని బలి చేస్తున్న వ్యవస్థకి సమాధానంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అని మా అభిప్రాయం. ఆ విధంగా ముందుకెళ్తే రాష్ట్రానికి మంచిది. అలాగే మిగతా పక్షాలన్నీ కూడా కన్నా మేము అన్ని రకాలుగా కేంద్రంతో సమన్వయం చేసి మన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయగలిగే అవకాశం ఉంది. కనుక అందరికీ కూడా మేము అభ్యర్థిస్తున్నాం, మమ్మల్ని ఎన్నుకోండి. మా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఏకైక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నాను భారతీయ జనతా పార్టీ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఖజానా కార్యాలయాల్లో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావు లేకుండా తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నామని రాష్ట్ర ఖజానా శాఖ అధికారి మోహన్ రావు తెలిపారు. చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరేట్లోని ఖజానా కార్యాలయాన్ని ఈరోజు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. స్ట్రాంగ్ రూమ్, ఖజానా కార్యాలయంలోని పలు రికార్డులను పరిశీలించి వార్షిక నివేదికను తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కోవిడ్ అనంతరం రాష్ట్ర ఖజానా కార్యాలయాల్లో ఎలాంటి తనిఖీలు నిర్వహించలేదని, గత ఏడాది నుండి అన్ని పద్దులను పూర్తి చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను ఈ ఏడాది భర్తీ చేస్తామన్నారు. స్టేట్ ఆఫీసులు అట్లాగే సబ్ ఆఫీసులు కూడా చాలా వరకు పెండింగ్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే అన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. నేను జాయిన్ అయ్యి 1 year అయింది. సో మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క జిల్లాకి ఈరోజు రావటం జరిగింది. ప్రస్తుతం యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈ ఏదైతే బ్యాక్లాగ్ ఉందో ఆల్ బ్యాక్లాగ్ కూడా ఈ ఇయర్ చేయటం జరుగుతుంది. ఈవేళ రేపు ఈ యాన్యువల్ ఇన్స్పెక్షన్లో డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆడిట్గా నేను విజిట్ చేస్తాను. 139 బిల్డింగ్స్ శాంక్షన్ అయినాయి. సో దాంట్లో మన జిల్లాలో మన హెడ్ క్వార్టర్ సబ్ ట్రెజరీస్ కూడా శాంక్షన్ అయినాయి. దాంట్లో కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయటము, అట్లాగే 1-2 సబ్ ఆఫీసెస్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయటము జరుగుతుంది. మనం ఏంటంటే కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇచ్చారు కాబట్టి, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు కాబట్టి దాంట్లో ప్రొసీజరల్గా వాళ్ళ ఐడీస్ క్రియేషన్ ఉంటుంది. అంతా అయిపోయింది, నో ప్రాబ్లం. ఖజానా శాఖ ద్వారా ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు అందిస్తున్న సేవల్లో వినూత్న మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్టు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఖజానా ఉప సంచాలకులు సిహెచ్ రవికుమార్ అన్నారు. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు నేరుగా ఇంటి వద్దనే పింఛన్ ఇచ్చే ప్రక్రియను ప్రారంభించామంటున్న జిల్లా ఖజానా ఉప సంచాలకులు రవికుమార్తో మా శ్రీకాకుళం ప్రతినిధి జోగినాయుడు నిర్వహిస్తున్న ప్రత్యేక ముఖాముఖిని ఇప్పుడు చూద్దాం. భారత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి జీవన్ ప్రమాణ్ యాప్ ద్వారా ప్రతి ఉద్యోగి కూడా యాప్లో నమోదు కావడం, తద్వారా వాళ్ళ తాలూకు పూర్తి వివరాలు అందులో తెలియజేయడం. ముఖ్యంగా పెన్షనర్లతో పాటు రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు కూడా యాప్లో నమోదు అవుతున్నారు. వ్యాధులతో బాధపడే వారికి ప్రభుత్వం ఏ విధమైన సౌకర్యం కల్పించిన పెన్షన్ అందుకోవడానికి. గతంలో చాలా కఠినతరంగా ఉండేది, తీసుకురావాలంటే ఎంతో ఇబ్బందులు పడేవారు. ఈ తరుణంలో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన సడలింపుల వివరాలు చెప్పండి. మన జిల్లా ఖజానా కార్యాలయం శ్రీకాకుళం ద్వారా దాదాపుగా మనం ఎంప్లాయీస్ 61,953 మందికి అన్ని రకాల వేతనాలు, అన్ని రకరకాలైనటువంటి వారి యొక్క ఆర్థిక ప్రయోజనాలని ఇక్కడి నుంచి చెల్లింపు చేయడం జరుగుతోంది. అందులో మనకి పెన్షనర్స్ 16,592 మంది ఉన్నారు. ఈ పెన్షనర్స్ ప్రతి సంవత్సరం యాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఖజానా కార్యాలయానికి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. పెన్షనర్స్కి ఆపబడదండి. ఈకేవైసీ అనేది ఒక వర్క్లో భాగంగా మనం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది తప్ప మరి ఇతర ఏది కాదు.
అట్లాగే ఇంకే విధమైన సమస్యలు ఏమైనా పెన్షనర్స్కి ఉంటే వెంటనే మా ట్రెజరీ సిబ్బందికి తెలియజేసినట్టయితే వారు దానికి తగిన విధంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకొని పనులన్నింటిని కూడా పూర్తి చేస్తారని తెలియజేస్తున్నాను. తాజాగా వస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 100% వినియోగించుకొని సుమారు 17,000 మంది పెన్షన్ హోల్డర్స్ ఇంటి వద్దకే సేవలు అందించే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టినటువంటి ఖజానా శాఖకి అన్ని వేళలా అన్ని రంగాల్లో అన్ని చోట్ల కూడా అప్రిషియేషన్ అందుతుంది. జోగినాయుడు, దూరదర్శన్ న్యూస్, శ్రీకాకుళం జిల్లా. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ రంజిత్ బాషా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా స్థాయి స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు వారి వారి సమస్యలను ఫిర్యాదు చేశారు. 48 గంటల్లో అర్జీలకు సంబంధించిన సమస్యలను డివిజన్, మండల స్థాయి అధికారులు ఫీల్డ్ విజిట్ చేసి పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి పథకం కింద జిల్లాలో 33 కోట్ల రూపాయలు రైతుల ఖాతాలో జమ చేస్తున్నట్లు రంజిత్ బాషా తెలిపారు. అలాగే జిల్లాలోని 3,400 మంది రైతులకు తుఫాన్ నష్టపరిహారం 2.4 కోట్ల రూపాయలను వారి బ్యాంకు ఖాతాలకు జమ చేస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. ఫార్మర్స్కి 32.33 crores దాకా అమౌంట్ మనము రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే లాస్ట్ మనం అండర్ సూపర్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ సబ్సిడీ ఇస్తుందో అది కూడా ఒక 3,400 పీపుల్కి ఒక 2.49 crores దాకా అమౌంట్ రేపు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అది కార్యక్రమం గుర్తు మీటింగ్ ద్వారా జరుగుతుంది. సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మ్యాక్సిమం మన ప్రతి కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. సో ఇది మీకు ఒక 2 విడతలుగా చేస్తే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని పంచాయతీలని మనం ఒకసారి విజిట్ చేసి అంతా కూడా సమస్యలు ఏమున్నాయి కొంతవరకు పరిష్కరించడం. అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ గిరీష ఈరోజు స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను అర్జీల రూపంలో కలెక్టర్కు అందించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ అర్జీలకు సంబంధించి ఆయా శాఖల అధికారులు తక్షణమే స్పందించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని సూచించారు. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో భారీగా మంటలు, పొగలు ఎగసిపడుతున్నాయి. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. सामने लाया जा रहा है। लौंदा घाटप्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा। इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम शुरू हुआ है वे भी इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क को सशक्त करेगी। बेलगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा सेंटर है। ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाभ होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार तेज विकास की गारंटी है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है इसका उदाहरण जल जीवन मिशन है। साल 2019 तक कर्नाटका के गांवों में सिर्फ 25% परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटका में नल से जल की कवरेज डबल इंजन सरकार के कारण, हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारण आज कवरेज 60% से अधिक हो चुकी है।
यहां बेलगावी के भी 2 लाख से भी कम घरों में नल से जल आता था। आज ये संख्या 4.5 लाख पर पार कर चुकी है। हमारी गांव की बहनों को पानी के लिए भटकना न पड़े, सिर्फ इसी के लिए ही इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार समाज के हर उस छोटे से छोटे वर्ग को सशक्त करने में जुटी है जिसकी पहले की सरकारों ने सूद नहीं ली थी। बेलगावी तो कारीगरों, हस्तशिल्पियों का शहर रहा है। ये तो वेणुग्राम यानी बांस के गांव के रूप में मशहूर रहा है। आप याद कीजिए, पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बांस की कटाई पर रोक लगा दी थी। हमने कानून बदला और बांस की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दिए। इसका बहुत बड़ा लाभ बांस का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है। बांस के अलावा यहां दूसरे क्राफ्ट का काम भी खूब होता है। इस वर्ष के बजट में पहली बार ऐसे साथियों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी। साथियों, आज जब मैं बेलगावी आया हूं तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है
उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। साथियों, जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। डबल इंजन सरकार की नीयत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है। इसलिए हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। कर्नाटका के देश के विकास को गति देने के लिए हमें यूं ही आगे बढ़ना है। सबका प्रयास से ही हम देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे। और मैं आज यहां कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से पूरे रास्ते पर बेलगावी ने जो स्वागत किया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, अभूतपूर्व दृश्य था। मैं बेलगावी के कर्नाटका के इस प्यार के लिए सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, सर झुका करके उनका धन्यवाद करता हूं। आज की मेरी कर्नाटका की यात्रा भी विशेष है, क्योंकि आज सुबह मैं शिवमोगा में था और वहां पर एयरपोर्ट कर्नाटका की जनता को सुपुर्द करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का भी मौका मिला। और शिवमोगा से यहां आया तो आप सबने तो कमाल ही कर दिया। ये प्यार, ये आशीर्वाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बेलगावी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्नाटका के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं ना, आप जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और कर्नाटका का विकास करके लौटाऊंगा, बेलगावी का विकास करके लौटाऊंगा। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया कल और आज, जबकि सीबीआई की विशेष अदालत जो कि राउज एवेन्यू में है वहां पर उनको 5 दिन की रिमांड के लिए ये दरख्वास्त दी गई है। हालांकि अभी तक सुरक्षित रखा गया अदालत की तरफ से फैसला, जल्द ही इस पर फैसला होने वाला है कि 5 दिन की रिमांड मिलती है या उससे कम या ज्यादा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि जब से मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 बने वो, उसके बाद लगातार जांच चलती रही सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से, और उसके बाद से ही राजनीति भी चरम पर है। आम आदमी पार्टी लगातार कल से अब तक सड़कों पर उतरी हुई है और कह रही है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और एजेंसियां जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि ये जो पूरा मामला है ये जांच पर आधारित है, सबूतों पर आधारित है और जो भी सबूत मिले हैं उसके आधार पर एजेंसियां अपना काम कर रही है। तो जरा देखने वाली बात है कि आज आखिर इस मुद्दे पर अब जो तीखी बहस होगी उसमें इस सवाल का जवाब जरूर लेने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी से कि आखिर जिसको लेकर सवाल खड़े हुए पॉलिसी को लेकर उसका राज है क्या। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस बड़ी खबर पर कल से अब तक जो बयानबाजी और प्रदर्शन चले हैं उसकी तस्वीरें। मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल के सिस्टम से भी पैसे चोरी किए हैं। मुख्यमंत्री का नाम चार्जशीट में ईडी ने मेंशन कर दिया है कि कहीं न कहीं उनके भी तार सीधे संपर्क शराब माफियाओं से थे जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया करोड़ों रुपए का। सीबीआई ने शराब मंत्री को गिरफ्तार किया है और वो बार बार पूरी बहस को शिक्षा की तरफ में मोड़े जा रहा है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज्ड नंबर 1 शराब घोटाले में नहीं बनाया है। जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी अक्यूज्ड नंबर 1 बने। सीधा सीधा गिरफ्तारी है और सीधा केंद्र सरकार के कहने पे पुलिस ने सारी लीडरशिप को जो है इस वक्त गिरफ्तार कर रखा है। स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए रिमांड मिल गई है, यानी दे दी गई है। सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी जिसे कि विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है और अब 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में या हम कहें कि रिमांड पर मनीष सिसोदिया रहेंगे। चलिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस बड़ी खबर पर, उन्हीं से आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ रोहित चहल है जो कि प्रवक्ता और नेता है भारतीय जनता पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ धनेंद्र भारद्वाज जी हैं जो कि प्रवक्ता और नेता आम आदमी पार्टी के हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनित सिंह जी भी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा जी जुड़ रहे हैं जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा रोहित चहल आप ही का पक्ष लेना चाहूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल से अब तक एक ही बात लगातार कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जेपीसी की मांग की गई थी, तमाम मुद्दे इस तरह के उठाए जा रहे थे जिसको लेकर सरकार को जवाब देना था और इसीलिए जो लोग आवाज उठा रहे थे उन सबको अंदर किया जा रहा है। देखिए रीमा जी, आज पूरा देश देख रहा है, आज लोग देख रहे हैं जिस तरीके सबसे भ्रष्ट आम आदमी पार्टी जो आज दुनिया के अंदर बन चुकी है, जिस प्रकार से आज जो उनके मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात मंत्री नहीं, आज
जो उप मुख्यमंत्री भी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पूरा आम आदमी पार्टी लिप्त है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से आज चोर जो है वो शोर मचा रहे हैं सड़कों पर उतर के। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो एक्साइज पॉलिसी लागू की गई उसके अंदर लगभग 2700 करोड़ रुपए का, मैं एग्जैक्ट बताऊं तो आपको, इतना बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ। 2783 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि दिल्ली के अंदर जब एक बोतल, शराब की बोतल जो दिल्ली के अंदर दी जाती थी वो कितने रुपए की दी जाती है? 530 रुपए की जो बोतल मिलती थी उसके ऊपर दिल्ली सरकार को 330 रुपए का मुनाफा होता था, जो उनको फायदा मिलता था। आज वो मुनाफा नई आबकारी नीति के अंदर सिर्फ 3 रुपए 70 पैसे हो गया था। तो सीधा सीधा जो फायदा था, किस तरीके से जो बिचौलिए थे उनको पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। और जब विरोध उसका बीजेपी ने किया तो उसके बाद इनको वापस लेनी पड़ी पॉलिसी। और जब जांच हुई, जब सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, तो उसके अंदर पाया गया। और इतना ही नहीं, आज सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब स्टिंग ऑपरेशन होते हैं, जो इसके अंदर दोषी होते हैं वो सीधा सीधा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं उसके अंदर। और आज अगर उसके ऊपर जांच होती है, कार्रवाई होती है, कोर्ट अपना काम करता है, जो सरकारी संस्थाएं, तो उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है। ये क्या इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? अरे आप, पता है, लोगों को पता है कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता को, आप दिल्ली के युवाओं को आपने एक स्कूल नहीं खोल पाए, कॉलेज नहीं खोल पाए, लेकिन उनके हाथों में आपने दारू की बोतलें दे दी। मां लगातार, दिल्ली की महिलाएं लगातार आवाज उठा रही थी इसके खिलाफ। आज माओ की हाय लगी है, उन बहनों की हाय लगी है जिस प्रकार से 500 से ज्यादा नए दारू के ठेके दिल्ली के अंदर खोल दिए गए। 20 नए कॉलेज की बात की थी, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला दिल्ली के अंदर। और ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री है। और आज वहां पर बैठ के जिस तरीके सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठे हुए इनके मंत्री, आज वहां पर उनके साथ देने के लिए आज मनीष सिसोदिया भी वहां पर जाने वाले हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे भी सीधा है। जिस पॉलिसी का जिक्र लगातार किया जा रहा है, वो सवाल अभी तक उसका जवाब नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने कि पॉलिसी बदली क्यों गई, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं की है तो डर किस बात का है? ये प्रदर्शन किस लिए? देखिए रीमा जी, निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत दुखदायी घटना है कि एक ऐसे आदमी को मोदी सरकार ने जेल में डाला है, एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी करी जिस आदमी का कसूर ये था कि वो चाह रहा था कि गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का काम मनीष सिसोदिया जी कर रहे थे, सरकारी स्कूल ठीक कर रहे थे, यही मनीष जी का कसूर था। और जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो टोटल एक फर्जी केस बनाया गया। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के कहने पे एक झूठी एफआईआर लिखी गई। अगर आप एफआईआर की बात करोगे, जो सीबीआई ने एफआईआर करी और जिस एफआईआर के बिहाफ पे मनीष जी को कल अरेस्ट करा है, उस पूरी 16 पेज की एफआईआर में कहीं मनीष जी का जिक्र नहीं है। 2 शराब के व्यापारी 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। अब उस बैंक टू बैंक ट्रांसफर में 2 कारोबारियों के बीच में मनीष जी कहां से आए थे, हमारी समझ से बाहर है। फिर उसके बाद सीबीआई चार्जशीट सबमिट करती है, चार्जशीट में कहीं मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है, उसमें भी कहीं नाम नहीं होता। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी, नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध जो रथ चल रहा है, जो घोड़ा चल रहा है, उसकी कोई लगाम अगर कोई कस सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बुलडोज कर दो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, पॉलिटिकल वेंडेटा कहते। आज सीबीआई ईडी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करे, ये शर्मनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक मनीष सिसोदिया गिरफ्तार करोगे, 10 मनीष सिसोदिया बनेंगे, 10 मनीष सिसोदिया मारोगे, 1000 मनीष सिसोदिया निकलेंगे। लेकिन हमारा शिक्षा का चिकित्सा रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मैं आ रही हूँ रोहित आपके पास, लेकिन घनेंद्र जी, शिक्षा नीति पर तो सवाल खड़ा ही नहीं कर रहा है ना अभी कोई। ये मामला शिक्षा से जुड़ा नहीं है, आप दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हैं लगातार कल से अब तक? बात शराब की हो रही है, शराब घोटाले की हो रही है, उस पर फोकस कीजिए ना, शिक्षा कहां से बीच में आ जाती है? मैंने क्या कहा है, कोई शराब का घोटाला नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने झूठी और फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई। एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखी जाती है, सीबीआई के लोग, पॉलिसी क्यों बदली गई? भारतीय जनता पार्टी पॉलिसी क्यों बदली गई? इंस्ट्रक्शन लेते हैं। पॉलिसी क्यों बदली गई? मैं बता रहा हूँ इस खेल के पीछे क्या था कि जो दिल्ली एनसीआर, जो पॉलिसी क्यों बदली गई? पॉलिसी क्यों बदली गई? मैं बता रहा हूँ, जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी आई, उससे अगर किसी को
डेंट हुआ था तो उन शराब माफिया को हुआ था जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फंडिंग करते हैं। सारा एनसीआर का शराब माफिया इकट्ठा हो गया, हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे दिए कि किसी तरीके से दिल्ली की पॉलिसी खत्म करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जांच चल रही है ना, जांच चल रही है। और ये लाइव तस्वीरें थी अभी जो हमने देखी, लाइव तस्वीरें थी। लेकिन रोहित चल आप जवाब दीजिए पहले, फिर मैं जरा कांग्रेस के पास चलूंगी। ये लाइव तस्वीरें पहले हम दिखा दें कि ये जो अब राउस एवेन्यू कोर्ट में जब लेकर के जाया गया और उसके बाद बाहर निकलते हुए मनीष सिसोदिया और 4 मार्च तक रिमांड। चलिए रोहित। देखिए, मुझे लगता है अगर थोड़ा सा जिस प्रकार से अपने होमवर्क घनेंद्र जी कर रहे थे, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर। फैक्ट्स पे एक बात कर रहा हूं। देखिए, मैं 530 रुपए में बताया, पिछली पहले जो बोतल बिकती थी उसमें 223 रुपए का उत्पाद कर लगता था और 103 रुपए वैट था। उसके बाद जो नई आबकारी नीति, मैं पुरानी आबकारी की नीति का बता रहा था, नई आबकारी की नीति के अंदर जो 530 रुपए की बोतल जो थी वो बढ़कर 560 की हुई। उसके बाद 323 रुपए जो पहुंचकर जो 33 रुपए जो उनको मिलता था, मुनाफा जो मिलता था कारोबारी बिचौलियों को, उसको बढ़ा दिया गया इनके द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा 370 रुपए मुनाफा कर दिया गया। देश की जनता को, दिल्ली की जनता को जानना चाहिए। उसके बाद मोटर बिचौलियों के द्वारा, क्योंकि इनका मिली भगत थी, सबसे बड़ी बात, इनको आधा हिस्सा जा रहा था, केजरीवाल जी को आधा हिस्सा जा रहा था, 10 गुना बढ़ावा कर दिया, मुनाफा कर दिया। ये कह रहे कम किया बिचौलियों का, 10 गुना मुनाफा कर दिया आपने बिचौलियों का, दलालों का, जो दारू विक्रेता थे। और 3 रुपए, 3.5 रुपए जो आपका जो मिल रहा था मुनाफा जो था 330 से 3 रुपए दिल्ली को मिलना लगा। कितने का सोचिए, 2700 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली को हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली के अंदर 2700 करोड़ रुपए का, जो आम आदमी पार्टी ने किया है। सर तथ्यों पर बात कीजिए। और एक मिनट रीमा जी, ये बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं क्या किया। सर आपसे मैंने एक सवाल किया, 500 नए ठेके खोले आपने दिल्ली के अंदर और आपने हर युवा के हाथ में दारू की बोतल दे दी। शिक्षा मंत्री भी वही और सबसे बड़ी बात दारू मंत्री भी वही। अरे सर, आप दिल्ली के युवाओं को दारू परोसने में लगे हुए थे, घर घर तक दारू पहुंचाने में लगे थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण था मोटा रिश्वत मिल रही थी आपको। आपने जिस तरीके भ्रष्टाचार हो रहा था और तो ये बात कर रहे थे, इन्होंने जिस तरीके की बातें करी, मैं आपको इनको एक्सपोज करने का काम करता हूं। इनके जो अगर ये जांच आएगी तो जांच में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 82 लाख रुपए दिए हैं, 82 लाख रुपए। और तो और जो इनके जो कंपनियां जिनको इन्होंने टेंडर दिए, उन्होंने 100 करोड़ रुपए के इनको रकम दी गई और वो 100 करोड़ रुपए इन्होंने चुनाव में लगाए गोवा के अंदर। ये सारे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं। तो यहां बैठ के तथ्यों पे बात कीजिए और आज जो कार्रवाई की गई है वो फैक्ट्स पे और तथ्यों के आधार पर। मैं दूसरे मेहमानों के पास आऊं, लेकिन घनेंद्र जी, जो इतने संगीन आरोप हैं और ये आरोप कोई बीजेपी के आरोप नहीं है, ये सीबीआई ईडी की तरफ से ये मामला सामने आया है, जांच वहां हो रही है। रोहित चहल जी जो बता रहे हैं वो तमाम वो फैक्ट्स हैं। क्यों वापस फोन अगर बदले गए, फोन अगर डिस्ट्रॉय किए गए, सिम कार्ड तोड़े गए, दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बन चुका है, अगर वो इस तमाम चीजें बोल रहा है तो इसमें राजनीति क्या है? 170 मोबाइल बदले, साज को आंची क्या? 170 मोबाइल बदले। हाँ। एक दिन में मनीष सिसोदिया 3 बार मोबाइल बदलते हैं। रीमा जी, जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए आरोप अगस्त से लेके आज तक, एक भी आरोप सीबीआई की एफआईआर में नहीं है, सीबीआई की चार्जशीट में नहीं है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नहीं है, कई जिक्र नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट ये कहती है कि ये घोटाला जो तथाकथित घोटाला है ये शराब व्यापारियों की वजह से हुआ है, उससे लॉस हुआ है। केजरीवाल ने किया है, मनीष सिसोदिया ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। जो हमारी पॉलिसी थी, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हमारी एक्साइज पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी थी, लेकिन शराब माफियाओं के दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि शराब माफिया। अरे घनेंद्र जी, एक सेकेंड, घनेंद्र जी, झूठा है, फर्जी केस है, जो भी केस है उसको एक सेकेंड रोहित जी, घनेंद्र जी, मैं अभी तक नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि अगर एजेंसियों पर भरोसा खत्म हो चुका है तो क्या अदालत पर भी खत्म हो चुका है? मामला तो अब अदालत में चला गया है ना, और तमाम चीजें वही सामने आ रही हैं। एनीवेज, मैं जरा कांग्रेस के पास 1 मिनट के लिए चलना चाहूंगी क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अनित सिंह, इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? क्योंकि यहां पर बात एजेंसियों की हो रही है, तमाम जो विपक्षी दल है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? रीमा जी, मुझे यकीन है कि आप मुझे थोड़ा समय देंगी बोलने के लिए। ये देखिए, ये सारा का सारा मैटर मैं आपको बताऊं स्टार्टिंग से, इसको कोई भी
पब्लिक डोमेन में लाने का काम किया है तो सबसे पहले अनिल चौधरी जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है वो लेके आए थे। 6 जनवरी 2021 को पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिकर जो स्कैम हुआ है उसके बारे में उजागर करने का काम, विसल ब्लोअर का काम कांग्रेस ने किया था। 23 मार्च को अलका लांबा जी ने किया था, सुभाष चोपड़ा जी ने किया था, फिर से 4 जनवरी 2022 को अनिल चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 17 नवंबर 2021 को जब पहली बार यह नई आबकारी नीति को लागू किया गया तो 55 जगहों पर हमने धरना प्रदर्शन किया और दुकानों को खोलने का विरोध किया। 15 फरवरी को सीएम केजरीवाल के घर का हमने घेराव किया था और 3 जून 2022 को एलजी, पुलिस कमिश्नर हरदीप पुरी और वीसी वाइस चेयरमैन डीडीए को हमने ये लिखित में ज्ञापन दिया कि किस तरीके से शराब के दुकानों का आवंटन में गड़बड़ियां की जा रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर आप कल से और आज तक के जितने भी उनके ट्वीट हैं या कितने भी वक्तव्य हैं आप उनको देखेंगे तो किस तरीके से इन चीजों को परोसा जा रहा है। ये मनीष सिसोदिया के जेल जाने को एक अपने पॉलिटिकल माइलेज के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग मनीष सिसोदिया को डिफेंड करने का भी काम नहीं कर रहे। देखिए, सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 गुना ज्यादा लिकर शॉप्स क्यों खोली जाती हैं, 24/7 लिकर्स को क्यों परोसने का काम किया जाता है, किस तरीके से युवाओं को जो 25 साल पहले शराब पीने की लीगल टेंडर एज थी उसको घटा के 21 साल क्यों किया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने। किस तरीके से फॉरेन लिकर्स पे जो लेवाई टैक्स होता था वो बंद कर दिया जाता है और फॉरेन जो लिकर्स थे उसके पैसे में 5% की बढ़ोतरी करी जाती है। इसके साथ साथ अब देखिए, सबूत मिटाने के लिए मनीष सिसोदिया एंड कंपनी क्या करती है, उन्होंने 170 मोबाइल फोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। उसमें से 17 मोबाइल फोन ऐसे हैं जो पर्सनली मनीष सिसोदिया खुद इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, ये जो कार्टेल है ये सिर्फ एक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ये जो लिकर स्कैम है ये अभी इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी जैसे जैसे इसकी तह खुलती जाएगी आपको जानकर ये आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि इसमें किस तरीके से जो एलजी के नोट के बगैर और कैबिनेट के अप्रूवल के साथ जब ये सारी चीजें आई हैं तो उसमें किस तरीके की नैतिक जवाबदेही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बनती है। दूसरा सवाल में डॉक्टर अनित, मैं 1 मिनट इसी से काउंटर सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। अब आपने कह ही दिया है कि पूरा मामला आप लोगों ने उठाया, तो इसका मतलब आज से कांग्रेस पार्टी एजेंसियों पर सवाल खड़ा करना और सरकार पर सवाल खड़ा करना बंद करेगी ना? क्योंकि ये जो मुद्दा है अगर आपने उठाया, सरकार ने उसको कैच किया और उसके बाद एजेंसियों ने जांच शुरू की, तो इसका मतलब तो एजेंसियां सही काम कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज से एजेंसियों पर सवाल ना खड़ा करे, ये बात है फिर? रीमा जी, आप कितनी सरसरी निगाह से सारी चीजें देखती हैं वो अप्रिशिएट करता हूं मैं, पर मैं आपको बताऊं कि एक कोर्ट में हजारों जज हैं और हजारों मैटर रोज आते हैं। अरे सुनिए तो मैडम, आप इसका मतलब कि सारी की सारी चीजें आप तो बता रही कि क्रिस्टल क्लियर है, व्हाइट एंड ब्लैक। दिस इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक मैडम, ये कहीं पे कलरफुल है। मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जांच ईडी करे तो एजेंसी पर सवाल, मनीष सिसोदिया की जांच की जाए तो फिर एजेंसियां सही काम कर रही हैं। नहीं, इसका मतलब अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे अगर एजेंसियां गलत इस्तेमाल करी तो सारी की सारी एजेंसी के सारे काम गलत हो जाए, ऐसा मैं कहूं? अगर आप ये कहना चाह रही हैं तो इसको जस्टिफाई कैसे कर पाती हैं? देखिए मैडम, ये किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल होता है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लिकर पॉलिसी एक पब्लिक डोमेन में जितने डॉक्यूमेंट हैं अगर आप उसको एक्सेस करेंगे तो मनीष सिसोदिया को कई दिन पहले ही जेल जाने चले जाए। ये जो इलेक्शन हुआ है इसकी वजह से जो डिफर किया है बीजेपी ने, अदरवाइज ये इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और होता। संजय राणा जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रोहित चल जल्दी से आप जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों ही चीजें कांग्रेस पार्टी ने एक तो कहा है कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, आप लोगों ने कैच किया है, तो बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। चोर चोर मोसेरे भाई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बैसाखी देते हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाने के, उनके साथ साठगांठ करते हैं जिस प्रकार से देखा हमने समय समय पे, और यहाँ बैठ के नूरा कुश्ती करते हैं, तो मुझे लगता है ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। महत्वपूर्ण बात है, नेशनल हेराल्ड के अंदर जब सोनिया जी जाती हैं, राहुल जी जब जाते हैं, इसी तरीके का बेचारा पॉलिटिक्स, इस तरीके इवेंट मैनेजमेंट पूरा किया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी जिसमें एक्सपर्ट हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, एडवर्टाइजमेंट और इवेंट के अंदर पूरा दिखाया जाता है जिस तरीके
तरीके से आज देखिए भगत सिंह जी से जिस प्रकार से कल देखा हमने तुलना की जाती, अरे शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। भगत सिंह जी ने कभी इस तरीके से नहीं गिड़गाया। भगत सिंह जी ने इस देश के लिए, इस भारत माता के लिए कुर्बानी दी और पूरे आपने पूरे इसके साथ गौरव के साथ की। लेकिन मनीष सिसोदिया किस तरीके से नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और बापू की समाधि पे जाके, जो बापू सबसे ज्यादा दारू के खिलाफ थे, शराब के खिलाफ थे, उनकी समाधि पे जाकर कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म बात नहीं हो सकती। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर है इनको कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि भैया आप लोग भी यही ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी थी जो सड़कों पे लड़ रही थी और उसी के दबाव में आकर ये आबकारी नीति वापस लेनी पड़ी। डॉक्टर अनित एक मिनट, अब एक मिनट। संजय राणा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय राणा जी, पूरा मामला जो है वो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से रोहित चहल कह रहे हैं और लगातार भावनात्मक अपील के तहत अब मामला हो गया है, जबकि मामला है एक घोटाले का, लेकिन दूसरी तरफ मामला है भावनात्मक। क्या लग रहा है? गुड इवनिंग रीमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए ऐसा है, देश की बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की सबसे युवा पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। आपको सिलसिलेवार तरीके से दो तीन चीज समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम ही नहीं लेना चाहिए। भाई इसने रिपोर्ट किसने बोली? नरेश जी कुमार ने लगाई, जो चीफ सेक्रेटरी थे 8 तारीख को। 22 तारीख को एलजी ऑर्डर देते हैं कि आप 22 जुलाई को कि आप सीबीआई इंक्वायरी हो गई। 28 जुलाई को ये 2022 में अपनी जो न्यू पॉलिसी वापस ले ली जाती। मैं 2-3 तथ्य और रख दे, उससे क्लियरिटी हो जाएगी। 5 तारीख को 5 फरवरी 2021 को इनकी पहली कैबिनेट मीटिंग होती है और ये रिपोर्ट भेजी जाती है 21 मई 2021 को स्वीकृति के लिए एलजी के पास। एलजी ने 6 पॉइंट में ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज देता है। उसके बाद इन्होंने, देखिए ऐसा होता है कैबिनेट की अप्रूवल की जरूरत होती है। उसमें कैबिनेट में अध्यक्ष कौन थे? माननीय मनीष सिसोदिया जी, गहलोत साहब, और एक जो मंत्री जो जेल में है सत्येंद्र जैन साहब, ये उसमें कमेटी में थे। अब ये 17 तारीख को लागू कर देते हैं। देखिए आप ये बताइए, किसी भी देश में पहले क्या था? 1,32,000 लीटर शराब का कंजप्शन मंथली होता था, तो बढ़कर के 2,45,000 लीटर हो गया। सेल बढ़ गई, देख रही कंजप्शन बढ़ गया। उम्र थी 25 साल से 21 साल कर दी गई। जो टेन्योर था जो रेस्टोरेंट खुलने का 1 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया। आप बताइए सब जगह। और सेल विस्की की 59% बढ़ गई, जो वाइन की थी 89% बढ़ गई। लेकिन क्या है, रेवेन्यू डिप हो गया लगभग 39। ठीक है, ये तो पूरा मामला था, ये तो पूरा मामला पता ही है संजय राणा जी, लेकिन हाँ बोलिए जल्दी से। मैं सिर्फ एक चीज रखना चाहता हूं कि बताइए, आप 2,873 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। आप ये बताइए, आपका जो आपके जो मंत्री हैं उनको नहीं पता चला? वो कैसे कैबिनेट से पास कर लिए? और कैबिनेट में पास कैसे होता है? तो भाई मुख्यमंत्री उस पर साइन करेगा, अप्रूवल देगा। ये तो नहीं हो सकता बिना कैबिनेट के अप्रूवल के पॉलिसी लागू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मतभेद है, बहुत सी चीजें हैं जिसको आम आदमी पार्टी को आंसर देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी शिक्षा के आड़ में नहीं छुप सकती। आपको बताना होगा कि 250 जो आपके स्कूल है उसमें प्रिंसिपल नहीं है, 73 स्कूलों में पीजीटी टीचर नहीं है, वो आप बात नहीं करेंगे। आपका बता रहा हूं, शीला दीक्षित के समय में जो रिजल्ट था 97% था, आज जाके देखिए 82%। किस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं? शिक्षा की जब बात करते हैं तो शिक्षा पे चर्चा की जाएगी। आज लिकर पे बात हो रहा है, आपको लिकर पे जवाब देना। बिल्कुल धनेंद्र जी, एक तो डाइवर्ट ना करें, और दूसरा ये जो व्हाट्सएप चैट वाला जो राज है जो सीबीआई खंगालने की कोशिश कर रही है, उसमें से भी तो कितने सारे खुलासे हो रहे हैं, उसको भी आप डिनाई करेंगे। फोन डिस्ट्रॉय करना, सिम कार्ड तोड़ना, ये तमाम चीजें की ही क्यों गए? धनेंद्र जी, आपने 3 फोन कब बदले थे? मोबाइल खुद यूज कर रहे थे। मनीष सिसोदिया जी 12 फोन एक दिन में 3 मोबाइल बदलना। अरे धनेंद्र जी जवाब बता दीजिए। देखिए रीमा जी, हो क्या रहा है कि आज जो सरकार देश में चल रही है, इस सरकार के खिलाफ बोलना एक अपराध हो गया, क्राइम हो गया। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, अरे धनेंद्र जी सबसे बड़ी बात, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार पे सरकार की। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। धनेंद्र जी आप ये बताइए, आपका नीति वापस क्यों लिया आपने? आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी अच्छी थी वापस क्यों ली? 28 तारीख को वापस क्यों ली? इतनी अच्छी पॉलिसी थी, वापस क्यों ली? ये बताइए, फर्स्ट क्वार्टर में आपने दुकान, मेरा सवाल ये था ही नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था
धनेंद्र भारद्वाज, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तथ्य नहीं है इनके पास। अडानी पे कोई अरे अडानी कहाँ से आ गया? लीकर पे आंसर दो महाराज। धनेंद्र जी, लीकर में घोटाला हुआ कि नहीं ये बताइए कि लीकर में 2873 करोड़ का घोटाला हुआ कि नहीं, वो पैसे कहाँ गए? और बहुत महत्वपूर्ण कमीशन 2% से बढ़ा के 12% और 6%। अरे भाई धनेंद्र जी, रैली थोड़ी ना चल रही है यहाँ पर, डिबेट चल रही है। इतना आप तो ऐसे कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं जनता को यहाँ पर। एक मिनट धनेंद्र जी, अपने आप को सुरक्षित समझती है। दिल्ली पुलिस धनेंद्र जी मोबाइल, धनेंद्र जी मोबाइल फोन क्यों बदले गए, डिस्ट्रॉय क्यों करे? अरे भाई मोबाइल फोन क्यों बदले गए? धनेंद्र भारद्वाज जी मोबाइल फोन, मोबाइल फोन बोल नहीं सकते, हमारे ऑफिस में घुस जाएंगे। रीमा जी देखिए, मनीष सिसोदिया जी जो सबसे भ्रष्ट आज दुनिया के सबसे भ्रष्ट कहा जाए, सबसे भ्रष्ट पार्टी नरेंद्र जी सबसे भ्रष्ट। देखिए मनीष सिसोदिया जी को जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, मनीष सिसोदिया जी को जेल जाना पड़ेगा। और आप लोग, आपकी लिस्ट बताता हूँ, इनके मंत्रियों की लिस्ट देखो। मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, संदीप कुमार, ये महिलाओं की बात करें, सीडी कांड आता है, आपके नेता एमएलए सर सीडी में, अब आपको मुंह छुपाने के लिए चुल्लू पर पानी चाहिए होगा सर, दे पानी दे दीजिए इनको। उसके बाद मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री, मंत्री विजय सिंघल, पंजाब के मंत्री, विधायक अमित रतन, मंत्री असीम अहमद खान, आपके दिल्ली के असीम अहमद खान, विधायक अमरतुल्ला जेल के अंदर है, आपके मंत्री अमरतुल्ला जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन आपके। अब आपके नेता जो है, आपसे पूछा गया, एक बात का जवाब नहीं दे पा रहे आप कि आपने क्यों करा वापस, नहीं बता पा रहे, घोटाले बता पा रहे हैं। अब घोटाले सुनिए, डिबेट ऐसे डिबेट नहीं होती है ना धनेंद्र भारद्वाज, जल बोर्ड का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, जमीन का घोटाला, विज्ञापन, एक मिनट रीमा जी, स्कूलों में बनाने का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, जमीन का घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, प्रदूषण का घोटाला, यहाँ सफाई का घोटाला, मोहल्ला का घोटाला, और सबसे बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा घोटाला, सबसे भ्रष्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी। शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर धनेंद्र जी एक मिनट, धनेंद्र जी जाना पड़ेगा और केजरीवाल भी जाएंगे, धनेंद्र जी एक मिनट, ये भैया कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? अडानी पे इतनी तकलीफ है, साहब इनको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? सेना पे भी सवाल, रीवा जी सेना पे भी सवाल उठाएंगे, एयरपोर्ट पे भी सवाल उठाएंगे, एयरपोर्ट पे, सेना पे, कोर्ट पे भी सवाल उठाएंगे, ईडी पे, सब पे सवाल उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी का रुख, एक मिनट, कांग्रेस पार्टी का जो रुख है डॉक्टर अनिल, वो आपने क्लियर किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जो तमाम लिस्ट दी गई, कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी। अब जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए हैं, जाएंगे या कस्टडी में, और जो तमाम चीजें तब कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। मोसेरे भाई हैं। रीमा जी देखिए, अभी आप सवाल करती हैं और सवाल आपके कैसे होने चाहिए। आज बीजेपी से यहाँ पे पूछिए, अरे आप ये बताइए, मुझे क्या पूछना है? जमानत पे है, सोनिया जी जमानत पे, राहुल जी जमानत पे, जीजा जी जमानत पे। ये मैडम इनको बोलिए चुप रहे पहले। रोहित जी क्या तरीका ये बात करने का? डॉक्टर अनिल जो आपसे सवाल पूछा है, मैं थोड़ा सा तय कर लेती हूँ मुझे किससे क्या पूछना है ना। आपने जो आपसे जो सवाल पूछा, आप अपने सवाल मैडम आप जो तय करते हैं उसके बाद भी 1 मिनट का विंडो टाइम मुझे, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम आप पूछिए कि सारी एजेंसीज रहते हुए भी बीजेपी इतनी नाकाम कैसे थी कि आज बीच में सुन, इनके जो हरदीप पुरी जी से हमने पूछताछ की। डॉक्टर अनिल, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सर आपको पहले वहां लिए चलते हैं, दोबारा से डिबेट में लौटेंगे। आपको अपना चेहरा साफ करना चाहिए। कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी
ना संविधान का सम्मान करती है, ना न्यायालय का सम्मान करती है, ना जनता का सम्मान करती है और ना कानून का सम्मान करती है। जो फैसला अभी अभी न्यायालय ने पारित किया है उसमें एक्यूज्ड नंबर 1 आबकारी घोटाला, शराब घोटाला को सीबीआई कस्टडी में 4 मार्च तक के लिए दिया गया है। यह आदेश मौखिक तौर पे तो कोर्ट में सुनाया गया है, जैसा चैनल्स बता रहे हैं। पूरा आदेश आएगा तो इसका अध्ययन भी किया जाएगा और विधिक तौर पे जो मेरी समझ है, मैं समझता हूं ये बड़ा ही अहम फैसला है। सबसे पहले तो जो ओछी घटिया अराजकतापूर्ण राजनीति कल से कट्टर बेईमान लोग अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जो कर रहे हैं उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो हर कोई ये बात जानता है, उप मुख्यमंत्री कई विभाग के मंत्री हैं। ये जो घोटाला इन्होंने किया है, ये घोटाला आबकारी नीति को लेके है, शराब नीति को लेकर है, शराब नीति। और किस तरह की नौटंकी की जा रही है कल से, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कसम संविधान के ऊपर हाथ रख के ये ली कि संविधान को तार तार करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, पापी आपको भी पता है कि एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान है और आज ये आदेश आने के बाद ये बात सिद्ध हो गई है कि न्यायालय ने भी पाया है सीबीआई एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में अपनी कस्टडी में ले, जिससे कि पूर्ण रूप से विवेचना हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या ये कहें दूध का दूध और शराब की शराब हो जाए। जो मुख्य बिंदु मैं आपके समक्ष उठाऊंगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। और यह भी हमें पता है कि जनता की आवाज बन के भारतीय जनता पार्टी जब बड़े प्रखरता से यह मुद्दा उठाती है, किसी भी सवाल का उत्तर नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन फिर भी देश की जनता को यह जानने का हक है। यह लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, करोड़ों नागरिक जो संविधान, न्यायालय, कानून में अपनी आस्था रखते हैं, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचारी नेता जो केवल कानून तोड़ना जानते हैं, चाहे वो शराब घोटाले में ऐसी नीति लाना कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के रुपए से भरे, चाहे वो कानून को तब तोड़ना कि एक आरोपी जिसको जो जांच एजेंसी है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, उसका दायित्व है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में पेश करना होता है। यह हमारे देश का कानून है। पहले तो ढोंग और नौटंकी करी जाती है। आप जाते हैं राजघाट,
हम सबके आदर्श महात्मा गांधी जी, और वहां जा कौन रहा है? एक उप मुख्यमंत्री जो एक्यूज नंबर 1 है, जो एक बड़ा शराब का घोटाला करता है। इसके बाद कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है संख्या देख के कि उसी काले धन की कमाई से उनको बुलाया जाता है, रुपया दे के प्रदर्शन करो। वो लोग भी जान जाते हैं कि ये कट्टर बेईमान हैं, संख्या नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन संदेश ये देते हैं कि जांच एजेंसी को अपना दायित्व निभाने से हम रोकेंगे। तीसरा, जब ये आप करते हैं तो ये बताना आवश्यक है, दिस अमाउंट्स टू obstructing the process of administering justice, which amounts to contempt of court. It also amounts to an offense under the Indian Penal Code, where you are obstructing a public servant from discharging his official duty. Now, Mr. Arvind Kejriwal, having taken oath under the Constitution, are you not supposed to abide with the law of the country? Is it not your duty to first of all sack the corrupt deputy CM, and then second, ensure that he cooperates with the investigating agency? नौटंकी ये की जाती है कि चाचा खाना नहीं खाएंगे। चाचा जी, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको शर्म आती है कि आप इतने भ्रष्टाचारी हैं, आपको चाचा कैसे बुलाएं? और पूरे देश के बच्चे आज ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, चाचा खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ। दिल्ली की जनता और देश की जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि आपने पूरी दिल्ली को शराब में डुबोने का प्रयास किया। क्या हॉस्पिटल, क्या स्कूल और कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज, और यह कहना गलत नहीं होगा, अपनी कमीशन खोरी को बढ़ाने के लिए ड्राई डे कम कर दिए गए और ठेके शराब के बढ़ा दिए गए। प्रदेश की सरकार का राजस्व कम हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कमीशन खोरी बढ़ गई। और इसीलिए आज ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात पूछी जाएगी। मैंने अराजक अपराध पार्टी की कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से देखी और उसमें जब निचोड़ देखा तो कुछ सार्थक है ही नहीं। उन्होंने कहा यह राजनीतिक द्वेष से हो रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि देश की जनता के समक्ष बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से यह बात रखें। अगर कोई भी मामला जांच एजेंसी राजनीतिक द्वेष से रजिस्टर करती है और किसी को परेशान करती है, तो देश का कानून और सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है, यह बात मैं जरूर रखूंगा। और यह बात अरविंद केजरीवाल अभी देख रहे हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश मैं इसीलिए लेके आया हूं। इस केस का नाम है भजनलाल
स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। और इसकी एक पंक्ति इसलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लोग अंदर से जानते हैं कि इन्होंने बेईमानी करी। ये लाइन कहती है, वेयर अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज मैनिफेस्टली अटेंडेड विद मैलिफाइड and or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge, the FIR and the charge sheet can be quashed. This is para number 102 of a Supreme Court judgment. सवाल यह पूछा जाना चाहिए, करीब करीब 5-5.5 माह का समय एक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया के पास था। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का यह मानना है कि यह सारा मामला जो है राजनीतिक द्वेष से किया जा रहा है, तो आप न्यायालय क्यों नहीं गए? सर्वोच्च न्यायालय के भी दरवाजे आप खटखटा सकते थे और उच्च न्यायालय के भी आप दरवाजे खटखटा सकते थे, लेकिन नहीं गए। और उसकी वजह यह है, नाटक करना, अराजकता को बढ़ावा देना, रोड पर प्रदर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन न्यायालय में ईमानदारी से दलील रख के न्यायालय का फैसला आए किसी के हक में, वो तभी होता है जब आप सच्चाई बयान करते हैं, जब तथ्य और प्रमाण होता है। और इसीलिए ये कट्टर बेईमान न्यायालय नहीं गए, केवल अराजकता फैला रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, न्यूज चैनल पे तो आ रहे थे। और आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 मंत्रियों में 2 मंत्री इस पापी आप सरकार के जेल की सलाखों के पीछे है, भ्रष्टाचार के आरोप में। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो दूसरे स्पा मसाज पार्टी के मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं, इनको बेल भी नहीं मिली है। करीब करीब 8 महीने का समय, और 8 महीने में देश की न्यायालय ने यह पाया कि अपराध इतना संगीन है, भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि इस व्यक्ति को बेल भी नहीं देंगे। मैं एक बात और उठा दूं, आप अराजकता फैला सकते हैं, लेकिन न्यायालय के अंदर मनीष सिसोदिया के वकील से जब पूछा गया कि आप जांच एजेंसियों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे, तो आपको यह जानना चाहिए, उनके वकील ने कहा कि मेरा चुप रहने का अधिकार भी है। इसका मतलब भ्रष्टाचार करूंगा। सवाल जब सख्त आएंगे, जब प्रमाण आपको दिखाया जाएगा, तो कोई उत्तर नहीं होगा, तो मैं दलील दूंगा, मेरा हक है चुप रहने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपके कट्टर बेईमान उप मुख्यमंत्री की चुप्पी लाखों लाखों शब्दों से ज्यादा कह रही है। वो बता रही है कि यह घोटाला हुआ है और आप सब घबराए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि कानून का हाथ इतना लंबा है कि आपकी बेईमानी को उसने अब पकड़ लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं वो प्रश्न लूंगा। शराब घोटाले में एक पहली गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आप लोग लगातार ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हर बात की जानकारी थी, तो क्या आपको लगता है कि अब जांच की
देखिए, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि जैसा सर्वविदित है कि जांच अभी चल रही है और आम जनता का विश्वास जांच एजेंसियों में है। इसका मास्टरमाइंड और किंग पिन कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको ये गलत फहमी अगर वो है कि वो कानून से ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। और ये जो 4 मार्च तक का समय है, एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें और भी मुश्किल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी आप ये ऐसी ही तस्वीर देख रहे थे जहां भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया मनीष सिसोदिया, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पूछताछ करने से पहले उन्होंने नौटंकी किया और अगर इतने ही वो ईमानदार हैं तो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको उन्होंने अभी तक मंत्रिमंडल से हटाया क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उनकी चुप्पी, मनीष सिसोदिया की चुप्पी खुद ही बयां कर रही है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कुछ अहम बातें बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता के जरिए। बढ़ेंगे आगे और वक्त हो गया है विशेष समाचार का। नजर डालेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक के लिए भेजे गए सीबीआई रिमांड में। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को जारी की पीएम किसान योजना की 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त। पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 450 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का भी किया उद्घाटन। नागालैंड और मेघालय में लोकतंत्र के महापर्व में भारी मतदान। शाम 3 बजे तक मेघालय में 64%, नागालैंड में 73% हुई पोलिंग। मेघालय में 369 और नागालैंड में 183 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 2 मार्च को होगा नतीजों का ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज। सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को किया संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर से करीब 1000 कलाकार हो रहे हैं शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से W20 बैठक जारी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए महिलाओं को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। और यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। और अब सभी खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को रविवार शाम को मामले में 8 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद उन्हें सोमवार को यानी कि आज कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड की ही मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए किया गया था। पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने रविवार को चौथी गिरफ्तारी की। इससे पहले विजय नागर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कदम के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए जारी की गई। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रवाह खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी रेलवे परियोजना है जिसे पीएम द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8.5 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। इससे पहले पीएम मोदी का बेलगावी में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। लोग लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। और पीएम मोदी ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती के लिए एक नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दिशा और दशा बदल दी। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रोनेबेनूर नई रेलवे लाइन और कोटे गुंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेल लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोटे गुंगुरू रेलवे कोच डिपो को भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां रखरखाव का काम किया जाएगा। वहीं 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। गौतमपुरा और अन्य 127 गांवों के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। बहुग्राम योजनाओं की लागत 860 करोड़ रुपए है। इससे 4.5 लाख आबादी को लाभ होगा। पाइप के जरिए उनके घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में
सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसके तहत एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रिवर फ्रंट विकास सहित 110 किलोमीटर लंबाई वाले 8 स्मार्ट रोड पैकेज भी शामिल है। वहीं सड़क विकास की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में ब्योंदूर रोनेबेन्नूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766C पर शिकारीपुरा शहर के लिए नए बाईपास सड़क का निर्माण, मेगारावल्ली से अगुम्बे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 169A का चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 पर तीर्थाहल्ली तालुक के भारतीपुरा में नए पुल का निर्माण शामिल है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उनका शिवमोगा की जनसभा में विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हल देकर उन्हें सम्मानित किया। पीएम मोदी ने उनके विधानसभा में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए इसे सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने जनसभा में मौजूद अपार जनसमूह से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर येदियुरप्पा को सम्मानित करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, बीकानेर के मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित इस मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। पहली बार इसका आयोजन बीकानेर में हो रहा है। लोग बीकानेर को मिठाइयों की वजह से जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में यह भी देखना होगा कि कैसे हम नई पीढ़ी को लगातार परिश्रम की प्रेरणा दे सकते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। कोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो। कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए। चिंगारी भड़क चुकी आलम पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? हिंदुस्तान अब हमारा है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के मुताबिक पाली और नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय हित में है और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से सुसज्जित हो। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के एफआईआर एफआईआर झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक बढ़ा दिया है। आज दरअसल यूपी और असम में दोनों राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी।
मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत यात्रा पर आए रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात करके खुशी हुई। उनके साथ नए भारत के निर्माण के विभिन्न पहलुओं को साझा किया। हमारी बातचीत में विशेष रूप से स्थिरता और डिजिटल डिलीवरी शामिल थी। हमारी हरित सामरिक साझेदारी सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे इस विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये चौथा वेबिनार है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की नई परंपरा शुरू की है। प्रधानमंत्री ने साथ ही गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन और जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस पर जितना जोर देंगे उतना ही हम अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर सुविधाएं दे रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सैचुरेशन की नीति की यही भावना है। हम जितना हर एक के पास पहुंचेंगे उतना ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होगा। प्रधानमंत्री ने इस बजट में कई ऐतिहासिक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से W20 का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का विषय महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को काफी लाभ मिला है। W20 की बैठक में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया भर के देश महिलाओं के उत्थान के बिना विकसित और समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैठक में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और महाराष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए औरंगाबाद के विरासत स्थलों का भी दौरा किया जाएगा। W20 की बैठक में 19 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 प्रतिनिधि हैं जो 5 कार्यबलों, नीतिगत सिफारिशों और आधिकारिक सूचना के प्रारूप पर सहयोग से और गहनता से काम करते हैं। बैठक के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं में नैनो, सूक्ष्म और स्टार्टअप उद्यमों में महिलाओं को सशक्त बनाने समेत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया गया है, जिसमें उद्यमिता में महिलाएं, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु लचीलेपन कार्य में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में महिलाएं शामिल हैं। W20 की पहली बैठक के बाद 13 से 14 अप्रैल को जयपुर में W20 की 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी और 15-16 जून को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में W20 शिखर सम्मेलन होगा।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज सिक्किम में अपने 4 दिन के दौरे पर बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वित्त मंत्री सिक्किम में आउटरीच कार्यक्रम और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी राज्य को सौगातें, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी। नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी हुआ उद्घाटन। बताएंगे विमानन क्षेत्र में भारत कैसे बन रहा है बड़ी ताकत। नागालैंड और मेघालय में कैसा रहा मतदान। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी है सियासी घमासान। G20 बैठकों का दौर जारी। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर
देश के अलग अलग शहरों से। हर पल डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर हमारे संवाददाताओं ने रखी है पैनी नजर। जुड़ेंगे उनसे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर से। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने 4 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में सीबीआई ने 5 दिन के रिमांड की मांग की थी, जो कि उसे मिल गई है। इससे पहले सीबीआई की टीम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर उनकी पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद ये 4 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया का रिमांड सीबीआई को मिल गई है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जिन्होंने इस खबर पर रखी है नजर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास, 4 मार्च तक सीबीआई ने जो रिमांड की मांग की थी उसे कोर्ट ने मान लिया है और 4 मार्च तक का जो है उन्होंने रिमांड दे दिया है। क्या रिमांड देने से पहले सरसरी तौर पर पहली नजर में ही सही कोर्ट ने कुछ साक्ष्य भी देखे रिमांड देने से पहले? जी लालचंद, यहाँ पर साक्ष्य तो कोर्ट ने नहीं देखे, लेकिन जो दलीलें थी सीबीआई की वो कोर्ट के सामने सीबीआई ने रखी और करीब करीब 1 घंटा दोनों तरफ की बहस को अगर हम मिला लें तो 1 घंटा कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। उसके बाद कुछ देर के लिए आदेश को सुरक्षित रखा गया और फिर ये जो 5 दिन की डिमांड थी सीबीआई की कि 5 दिन कम से कम चाहिए पूछताछ के लिए, उसको कोर्ट ने मान लिया। तो संभवतः कोर्ट को भी लगता है कि जिस तरह की बात सीबीआई आरोप लगा रही है, जो बात सीबीआई कह रही है, उसके लिए 5 दिन की पुलिस कस्टडी या 5 दिन की सीबीआई कस्टडी न्यायोचित होगी, तर्कसंगत होगी, क्योंकि हमने आमतौर पर ये देखा है कि जितने भी दिनों की कस्टडी जांच एजेंसियां मांगती हैं, कोर्ट लगभग देता नहीं है। 1 आध दिन कम करके ही कोर्ट कस्टडी देता है, लेकिन यहाँ पर 5 दिन की जो मांगी गई थी कस्टडी, उसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मनीष सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई उनसे पूछताछ आगे करेगी इस मामले में। और जब उनको पेश किया गया तो सीबीआई ने अपनी तरफ से ये कहा कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके जो जवाब रहे हैं वो एवेसिव रहे हैं, यानी वो टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे में उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए सीबीआई चाहती है कि न्यूनतम 5 दिन की उनको पूछताछ की अनुमति मिले, जिसको कोर्ट ने मान लिया। जाहिर सी बात है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील पेश हुए होंगे उन्होंने इस मांग का विरोध किया ही होगा, लेकिन उनकी मांग को, उनकी दलीलों को फिलहाल कोर्ट ने तरजीह नहीं दी, ऐसा माना जा सकता है। जी लालचंद, उनके तरफ से 3 वकीलों ने कम से कम यहाँ पर बहस की मनीष सिसोदिया की तरफ से और हर तरह की चीजों को रखा। कुछ में उन्होंने प्रोसीजरल लैप्सेस की बात कही, कुछ में वकीलों ने आरोप लगाया कि सीबीआई की मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा। उसके अलावा एक दलील उनकी ये थी कि हमको जब जब नोटिस भेजे गए हैं जांच में सहयोग देने के लिए, हमने हमेशा स्वीकार किए हैं और पूछताछ में शामिल हुए हैं। लेकिन जो सीबीआई का कहना है, जिस बात को लगातार सीबीआई रेखांकित करती रही, वो ये कह रही है जांच एजेंसी की पूछताछ में आने से ये सीधा साबित नहीं हो जाता कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। अगर वो किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं आ रहा है कि ये उन्होंने कब कहा था या क्यों कहा था, इस तरह के जो एवेसिव जवाब होते हैं जिनमें आप टालते हैं,
वो उसको सहयोग नहीं माना जाएगा जांच में। कि आप हाँ ना में जवाब दें, आपसे कोई डिटेल पूछा जाए तो आप वो डिटेल दें। इसके अलावा एक बड़ी दलील जो सीबीआई की तरफ से थी वो ये थी कि मनीष सिसोदिया के जो पुराने फोन थे उनको उन्होंने डैमेज कर दिया। वो फोन सीबीआई हासिल नहीं कर पाई। उनको क्यों डैमेज किया गया, इसको एक बड़ा आधार बनाया है सीबीआई ने कि कहीं ना कहीं एक इंटेंट उनका जो है वो क्रिमिनल इंटेंट जिसको हम कहते हैं कि उनके दिमाग में पहले से था कि इस तरह की कार्रवाई करनी है, इसीलिए फोन्स को डैमेज किया गया। तो एक बड़ी दलील सीबीआई की तरफ से यहाँ पे ये भी रखी गई। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक दो आरोपी अब प्रोसिक्यूशन के को सहयोग कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के विटनेस जिसको हम कहते हैं वो बन गए हैं। तो इसमें भी अब सीबीआई का ये कहना था कि वो आमने सामने बैठाकर आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसीलिए कस्टडी एक महत्वपूर्ण कड़ी है उसकी। ठीक है, ये तो बात हो गई कस्टडी की, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार कोशिश है कि ये जो कानूनी लड़ाई है, ये जो अदालती लड़ाई है जिसे अदालत में लड़ा जाना है, उसको अदालत के बजाय सड़कों पर भी लाया जाए। उसकी तरफ से, उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं। इस मामले में आज का डेवलपमेंट क्या क्या रहा विकास? बिल्कुल, आप सुबह से ही, क्योंकि एक तो खास इसमें ये भी बात थी कि जहां पे मनीष सिसोदिया को पेश किया जाना था, राउज एवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी का दफ्तर बहुत ही आसपास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो शुरू से सुबह से ही एक बड़ी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में और इसके बाद भारी पुलिस बल लगाना पड़ा यहाँ पर, ताकि जो महत्वपूर्ण रास्ता है, काफी ट्रैफिक रहता है वहां पर, लेकिन इसमें व्यवधान भी देखने को मिला काफी देर तक और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को लगाना पड़ा। मनीष सिसोदिया को जब लाया गया, एक वक्त ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह बहुत सारे समर्थक वहां पर सड़क पर इकट्ठा हो गए, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई लाने को मजबूर हो जाएगी। लेकिन बहुत दर्जनों पुलिस कर्मियों को लगाया गया, उसके बाद उनका फिजिकल अपीयरेंस कराया जा सका कोर्ट के सामने। तो वो सुबह से एक जो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जो कोशिशें होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और दफ्तर से लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट तक भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि पुलिस उनको सुरक्षित ला पाई कोर्ट में और वापस ले जा भी पाई, लेकिन इसके लिए भारी पुलिस बल लगानी पड़ी। बिल्कुल। और एक बात और विकास, जैसा कि हम देख सकते हैं कि जितनी कम दिनों की, कम उम्र की पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसके हिसाब से शायद इस पार्टी के ऊपर इतने कम दिनों में सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। फिलहाल हम आरोप की ही बात करते हैं, लेकिन हमेशा से आम आदमी पार्टी डिनाइल मोड में रहती है और फ्रंट फुट पर खेलने की भी कोशिश करती है। क्या इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दूसरे सबसे बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री इस तरह से गिरफ्त में आए हैं, तो क्या पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी डिफेंसिव नजर आ रही है? देखिए, इसमें बिल्कुल जब जो सेकंड, अगर आप कहें जो सबसे सेकंड इन कमांड है इस समय आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में जो दो बड़े सबसे नेता आप पे कहेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। अब मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसकी बात यह है कि इसमें आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि एक कैबिनेट नोट को भी यहाँ पे आधार सीबीआई बना रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पॉलिसी असल में बदली क्यों गई। तो सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, और भी मंत्री संदेह के घेरे में है कि आखिर इस तरह की पॉलिसी को क्यों लाया गया, जिसमें जो मुनाफा था, जो होलसेलर का जो मुनाफा था, उसको 5% से बढ़ा के 12% किया गया। तो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसको बता नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जाहिर है जब आप होलसेलर का शेयर बढ़ाएंगे प्रॉफिट का, तो यानी आप गवर्नमेंट का जो मुनाफा था वो कम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक डिफेंसिव पोजीशन पर है। और इसके अलावा ये भी है कि ये सिर्फ दिल्ली नहीं, इसके तार अलग स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, तेलंगाना की कुछ कंपनियां हैं। तो आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा है कि एक बहुत ही गंभीर आरोप में बीजेपी के एक नेता, और वो भी दूसरे सबसे बड़े नेता दिल्ली में, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप सत्येंद्र जैन भी फंसे हैं, वो शेल कंपनीज के मामले में। लेकिन यहाँ सीधे सीधे वहां एक इस तरह का ट्रांजैक्शन है जिसको अभी ईडी और सीबीआई खंगाल रही है, लेकिन यहाँ पर फिगर्स हैं सामने कि किस तरह से जो मुनाफा था वो कंपनियों का बढ़ाया गया, इससे कितना नुकसान सरकार को हुआ, कितना फायदा कंपनियों को हुआ, ये सब कागजों में है।
आंकड़ों में है, तो ये ज्यादा बड़ा मामला नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन के साथ जो कुछ हुआ था उसके मुकाबले। जाहिर सी बात है, और इसमें हमने जैसा देखा कि एक वीडियो कॉल का ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है, तो उससे ऐसा लगता है कि जांच की आंच शायद आगे चल करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जोड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से विश्लेषण करने के लिए। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति के राजस्थान दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, बीकानेर के मेयर सुशीला कंवर, राजपुरोहित इस मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि यहां आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। पहली बार इसका आयोजन बीकानेर में हो रहा है। लोग बीकानेर को मिठाइयों की वजह से जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्र की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल होना जरूरी है। आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। हर क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से नए नए प्रयोगों किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी का अपनाया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से नई और युवा कलाकार की प्रतिभा भी देश के कोने कोने तक फैल रहे हैं। हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देश की कला, परंपराओं और संस्कृति का प्रचार और व्यापक रूप से करें और इसको कर भी सकते हैं। और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में यह भी देखना होगा कि कैसे हम नई पीढ़ी को लगातार परिश्रम की प्रेरणा दे सकते हैं, करने की प्रेरणा दे सके। अभी हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में ऐसे संगठित कलाकार नहीं है, लेकिन कला भर भर कर गांव में रहते हैं। उसी कलाकारों को भी हम लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उनमें जो महक है, जो सुगंध है, जो ऊर्जा है, ये लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, आज हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, गांव का महक, गांव का सुगंध हम लोगों से दूर होते जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए धर्मेश भारती हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मेश जी, आज जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीकानेर का दौरा किया, वहां की खूबियों का जिक्र किया, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दौरान क्या कुछ खास वहां पर रहा? और राष्ट्रपति के कुछ संबोधनों को तो हमने सुना, लेकिन आपने जाहिर सी बात है कि बाकी सारे संबोधनों को सुना होगा। क्या कुछ खास चीजों पर राष्ट्रपति महोदया ने जोर दिया? सभी कलाकारों का सम्मान करेंगे। उसी फेलिस्ट में रहेगा पद्मश्री अनवर खान साहब का सम्मान। तो देवियों सज्जनों, मैं जिक्र कर रहा था भारत के राज्यों के बारे में। आंध्रा की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य हमारे जहन में आता है।
देखिए, ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का जो विशाल उत्सव है वो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। 25 राज्यों से अधिक का लोक कलाकार जो है वो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है मेरा राजस्थान रंग रंगीलो राजस्थान, राजस्थान की अपनी लोक कला के बहुत से रंग हैं, लेकिन ये जब और भी खूबसूरत हो जाता है जिसमें देश के अलग अलग विभिन्न लोक कलाकार जब एक साथ मंच पर आते हैं। जब राष्ट्रपति महोदय आई तब अलग अलग राज्यों के कलाकार आए और वहां के अपने पुष्प साथ लेकर आए और अपनी अपनी उन्होंने प्रस्तुतियां दी। उसके अलावा यहाँ अलग अलग जो कल्चरल जोन्स हैं उनको भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, वेस्टर्न जोन है, नॉर्थ ईस्ट का जोन है और बहुत सारे अलग अलग जो यहाँ पे 7 कल्चरल जोन्स हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जिसके अंदर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया है। तो बहुत ही एक यूं कह सकते हैं कि पूरा एक छोटा भारत इस वक्त बीकानेर के अंदर देखने को मिल रहा है। लालचंद्र, बिल्कुल, ये बीकानेर में छोटा भारत देखने को मिल रहा है, हमारी संस्कृति देखने को मिल रही है और उसी की गवाह हमारी राष्ट्रपति महोदया बनी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेश जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगावी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और वहां पर रोड शो भी किया, जिसके दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी जन सैलाब देखने को मिला। लोग लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से भी पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन बेलगावी में किया और रोड शो किया और उससे पहले पीएम शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन और शिलान्यास वहां पर किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं, तो वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की भी दशा बदल दी है। भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। और प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा, शिकारीपुरा, राणेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल हैं। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेन लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो को भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। यहाँ रख रखाव का काम किया जाएगा। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है।
कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। इसके साथ ही 950 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। गौतमपुरा और अन्य 127 गांवों के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया, तो वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बहुग्राम योजनाओं की लागत 860 करोड़ रुपए है। इससे 4.4 लाख आबादी को लाभ होगा। पाइप के जरिए उनके घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है ये फायदा, बल्कि छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। और स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत की 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसके तहत एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रिवर फ्रंट विकास सहित 110 किलोमीटर लंबाई वाले 8 स्मार्ट रोड पैकेज भी शामिल हैं। और इसके साथ ही सड़क विकास की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं में बियंदूर रानीबेन्नूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766 पर शिकारीपुरा शहर के लिए नए बाईपास सड़क का निर्माण, मेगारावल्ली से अगुम्बो तक राष्ट्रीय राजमार्ग 169 का चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 पर तीर्थाहल्ली ताल्लुक के भारतीपुरा में नए पुल का निर्माण शामिल है। और अब बात विधानसभा चुनावों की। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हुआ। मतदान शाम 4 बजे तक चला। राज्य के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से भी अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले। वे 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय मतदाताओं ने किया। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध पहले ही निर्वाचित हो चुकी है। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में घोषित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र भी स्थापित किए थे। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए भी 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। मतगणना 2 मार्च को होगी और वहां पर नागालैंड में अच्छी खासी वोटिंग दर्ज की गई है। जुड़ते हैं अपने संवाददाता से और उनसे जानकारी लेते हैं कि मतदान का प्रतिशत कैसा रहा है। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं विशाल बैरिस्टो। विशाल, कैसा रहा मतदान नागालैंड में? क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे लग रहा था कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। कैसा रहा कुल मिलाकर मतदान का प्रतिशत? देखिए लालचंद, मैं मेघालय में हूँ और मैं मेघालय का चुनाव कवर कर रहा हूँ। आप मेघालय में हैं? हाँ, माफ कीजिएगा। कर रहा हूँ। जी, आप मेघालय का बताइए। कोई बात नहीं, दोनों के जी नहीं, कोई बात नहीं लालचंद, दोनों के चुनाव आज ही हुए हैं। दोनों में 59 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। और मैं ये बता दूं कि जो सोचा जा रहा था कि मेघालय रिकॉर्ड तोड़ देगा, पिछला रिकॉर्ड था करीब 87%, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जो खबर हमारे पास आई 5 बजे तक, वो करीब 75% के आसपास पहुंच पाया है, जो बहुत मतलब अच्छे आंकड़े नहीं कहा जा सकते, क्योंकि चुनाव आयोग को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहरहाल शांतिपूर्वक चुनाव हो गए हैं, 59 सीटों पर चुनाव हुए और 2 तारीख को पता चलेगा कि किसके पास कितने वोट है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग दावे जरूर किए हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मेघालय के अंदर पिछली बार भी 59 सीटों पर चुनाव हुआ था, क्योंकि एक कांग्रेस के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी और इस बार यूडीपी के प्रत्याशी की मृत्यु होने की वजह से 59 सीटों पर चुनाव हुआ। 36 महिला दावेदार इसमें रही हैं। देखना होगा कि कितनी महिलाएं इसमें जीत कर आ पाती हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नागालैंड से भी हम कोशिश करते हैं अपने संवाददाता से बात करने की। आप हमारे साथ बने रहिए फिलहाल, और नागालैंड की खबर से जुड़ी जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि मेघालय के साथ साथ नागालैंड में भी आज शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। वहां पर भी 59 सीटों पर ही मतदान था, क्योंकि एक सीट पर वहां पर पहले ही निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनी जा चुकी है। तो दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में आज 59 सीटों पर मतदान हुए हैं। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है। इससे पहले 16 फरवरी को त्रिपुरा में भी मतदान हुआ था और अब तीनों राज्यों की मतगणना 2 मार्च को होगी, जिसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।
खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे मुद्दा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। कोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो, कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए। चिंगारी भड़क चुकी आलम बना, पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? हिंदुस्तान अब हमारा है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी राज्य को सौगातें, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी। नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी हुआ उद्घाटन। बताएंगे विमानन क्षेत्र में भारत कैसे बन रहा है बड़ी ताकत। नागालैंड और मेघालय में कैसा रहा मतदान। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी है सियासी घमासान। G20 बैठकों का दौर जारी। होंगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। సార్ మీ కేవైసీ అప్డేట్ చేయాలి, లేకపోతే అకౌంట్ ఏటీఎం కార్డు బ్లాక్ అయిపోతాయి. జాగ్రత్త జాగ్రత్త. 2.5 కోట్ల బహుమతి నాకు. చూడండి, తెలియని కాల్స్, దొంగ ఈమెయిల్స్, లింక్స్, ఇంకా మోసగించే యాప్స్ నుంచి మీ పిన్, ఓటీపీ, పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు ఎవరితోనూ షేర్ చేయకండి. మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే నష్టం రాదంతే. ఆర్బీఐ అంటుంది, విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. నమస్కారం, నా పేరు వినయ్ కుమార్. దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం. హెడ్లైన్స్ చూసే ముందు కరోనా నిబంధనలు చూద్దాం.
కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కును తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముక్కు, నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్ధతిలో మాస్కును ధరించాలి. తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి. అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి. నిబంధనలు పాటిద్దాం, కరోనాను జయిద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. కర్ణాటకలో ప్రధాని పర్యటన. బెల్గావిలో 16,000 కోట్ల రూపాయల ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి నిధులను విడుదల చేసిన మోదీ పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు. బెల్గావిలో ప్రధాని భారీ రోడ్ షో. అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చిన మహిళలు, యువత. మిన్నంటిన మోదీ మోదీ నినాదాలు. శివమొగ్గలో 450 కోట్లతో నిర్మించిన టెర్మినల్ను ప్రారంభించిన ప్రధాని. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేస్తోందని మోదీ వెల్లడి. రేపు గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి. వరుసగా 4వ ఏడాది 3వ విడత వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, పీఎం కిసాన్ నిధులను విడుదల చేయనున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి. మేఘాలయ, నాగాలాండ్లలో ప్రశాంతంగా ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్. మార్చి 2న ఓట్ల లెక్కింపు. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బెల్గావిలో పలు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించారు. రైల్వే అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు 2,240 కోట్ల రూపాయల జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన కింద 13వ విడత నిధులు 16,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రధాని విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ మాట్లాడుతూ పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాదం ఎంతో ప్రేరణిస్తోందన్నారు. బెల్గావికి వచ్చినప్పుడు రాణి చెన్నమ్మ, క్రాంతివీర్ సంగోలి రాయన్న పరాక్రమాలు గుర్తుకొస్తాయన్నారు. నవభారత నిర్మాణంలో బెల్గావి ఎల్లప్పుడూ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. దేశంలో కర్ణాటక స్టార్టప్స్ గురించి విశేషమైన చర్చ జరుగుతుందన్నారు. एक तरफ से देखे तो बेलगावी में तो 100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी। 100 साल पहले अनेक तरह की इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा बेस बन गया है। बेलगावी की इसी भूमिका ने डबल इंजन सरकार इस दशक में और सशक्त करना चाहती है। उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान को भी भेंट सौगात मिली है। हिंदुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण कर्नाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेलगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहां सुविधाएं तो अधिक हुई है, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। साथियों, जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। डबल इंजन सरकार की नियत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है। इसलिए हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। कर्नाटका की जनता को सुपुर्द करने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन साथ साथ हमारे वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा जी का जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का भी मौका। కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ బెల్గావిలో రోడ్ షో నిర్వహించారు.
రోడ్డుకి ఇరువైపులా ప్రజలు ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికారు. మోదీ మోదీ నినాదాలు మిన్నంటాయి. దారి పొడవునా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు బారులు తీరారు. ప్రధాని తన కాన్వాయ్లోని వాహన డోర్ వద్ద నిలబడి రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉన్న ప్రజల అభివాదాన్ని స్వీకరిస్తూ తిరిగి ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు. ఎంత ఉత్సాహంగా ప్రజలు ఈ రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు. దారి పొడవునా ప్రధాని తన వాహనం నుంచి నిలబడే ప్రజలకు అభివాదం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు. తమ ప్రియతమ నేతను చూసేందుకు ప్రజలు, బీజేపీ శ్రేణులు భారీగా ఈ రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు. ప్రధానిపై పూల వర్షాన్ని కురిపించారు. యువత, మహిళలు, బీజేపీ శ్రేణులు భారీగా తరలివచ్చి ప్రధానికి స్వాగతం పలికారు. కేంద్రంలో కర్ణాటకలో డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం పేదలు, రైతులు, యువత, మహిళలకు లబ్ధి చేకూర్చేలా నిరంతరం కృషి చేస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా ఈరోజు ఆయన శివమొగ్గలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. 450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన విమానాశ్రయ టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు శివమొగ్గ స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టు పనులను, సిముల్ నూతన మిల్క్ యూనిట్ను, మమకాస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్, శివమొగ్గ, షికారిపుర, రాణేబెన్నూర్ నూతన రైల్వే లైన్ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. అనంతరం కోటే గంగూరు రైల్వే కోచ్ డిపో, నేషనల్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్, జలజీవన్ మిషన్ ప్రాజెక్టులను మోదీ శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మాట్లాడుతూ 2014 ముందు దేశంలో కేవలం 74 విమానాశ్రయాలు మాత్రమే ఉండేవని, నేడు మరో 74 అదనపు విమానాశ్రయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు. ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ల కోసం ఆర్డర్ చేయడం దేశంలోని విమానయాన రంగ శక్తిని ప్రతిబింబిస్తోందన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మేడ్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా ప్యాసింజర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు చిన్న చిన్న పట్టణాలు, నగరాలను కలుపుతూ ఆకాశంలోకి వెళతాయని ప్రధాని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. విమానాలు, రైలు, రోడ్ల అనుసంధానం వల్ల పెట్టుబడులు వస్తాయని, ఉపాధి కల్పన, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లు లభిస్తాయని, ఈ ప్రాంత ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని ప్రధాని పేర్కొన్నారు. జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి త్రాగునీరు అందిస్తున్నామన్నారు. గ్యాస్ కనెక్షన్లు, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంతో మహిళలు గౌరవప్రదంగా జీవించేందుకు దోహదపడిందన్నారు. शिवमोगा एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बना है, बहुत ही सुंदर है. इस एयरपोर्ट में भी कर्नाटका के ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम नजर आता है. और ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये इस क्षेत्र के जवानों के सपनों को नई उड़ान का अभियान है. आज रोड और रेल से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है. हर घर नल से जल के प्रोजेक्ट में काम शुरू हो रहा है. विकास के ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए मैं शिवमोगा के और आसपास के सभी जिलों का, वहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है. आज कर्नाटका के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है. मैं उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं. उन्होंने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం.
సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి తామర దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమ్మిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు, పురాతనమైంది మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్ తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. ఈవేళ పార్టీ కావాలంతే. ముందు ఛాంపియన్ తో సెల్ఫీ తీసుకుందాం. ఐడియా, ఇక్కడే చేసుకుందాం పార్టీ. పిజ్జా పార్టీ. ఇది నీ కార్డు పిన్ను నా కార్డ్ డీటెయిల్స్ స్వయంగా వేస్తాను. ఆర్బీఐ అంటుంది మీ పిన్, ఓటీపీ, సివివి లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ పాస్వర్డ్ ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకండి. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ మీ సొంత కంప్యూటర్, మొబైల్ ఇంకా సిక్యూర్ నెట్వర్క్ నుంచే చేయండి. బై గర్ల్స్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? వినలేదా? నో షేరింగ్. ఆర్బీఐ అంటుంది విషయాలు తెలుసుకోండి, జాగరూకంగా ఉండండి. బ్యాక్ టు న్యూస్. కర్ణాటక పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శివమొగ్గ విమానాశ్రయాన్ని పరిశీలించారు. 450 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించిన నూతన టెర్మినల్ భవనాన్ని ప్రధాని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు టెర్మినల్ భవనం విశేషాలను ప్రధానమంత్రికి వివరించారు. ప్రభుత్వ పథకాలు సమాజంలోని చివరి వ్యక్తి వరకు చేరుకోవాలంటే సుపరిపాలన అత్యంత అవసరమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. అమృత్కాల్ బడ్జెట్పై నిర్వహించిన వెబినార్లో రీచింగ్ ది లాస్ట్ మైల్ అంశంపై ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడుతూ సుపరిపాలనకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో చివరి వ్యక్తికి సంక్షేమ ఫలాలు చేరుకోవాలన్న లక్ష్యం అంత సులభంగా నెరవేరుతుందన్నారు. గతంలో కనీస సౌకర్యాల కోసం పేదలు ప్రభుత్వం వెంట పడేవారని, అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పేదల చెంతకు చేరువవుతోందన్నారు. దేశంలో గిరిజన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చివరి వ్యక్తి వరకు అందించాలనే సంకల్పం తీసుకోవాలని తెలిపారు. గిరిజనులకు ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం తన వంతు కృషి చేస్తోందన్నారు. ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో గిరిజనులకు అభివృద్ధికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చామన్నారు. ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇందుకు ఉదాహరణ అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 60,000కు పైగా అమృత్ సరోవర్ పనులు ప్రారంభమయ్యాయని, వాటిలో ఇప్పటికే 30,000 సరోవరాలు పూర్తి అయ్యాయన్నారు. పేదల ఇళ్ల కోసం ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో 80,000 కోట్లు కేటాయించామన్నారు. टाइम बाउंड डिलीवरी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. इससे टैक्स पेयर्स मनी की पाई पाई का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित होता है. सरकारी कार्यों और सरकारी योजनाओं की सफलता की सबसे अनिवार्य शर्त है गुड गवर्नेंस, सुशासन, संवेदनशील शासन, जन सामान्य को समर्पित शासन. जब सरकार के काम मेजरेबल होते हैं, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि आप समय सीमा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकते हैं. इसलिए गुड गवर्नेंस पर हम जितना जोर देंगे उतना ही रीचिंग द लास्ट माइल का हमारा लक्ष्य आसानी से पूरा होगा. अब सरकार गरीब के दरवाजे पर जाकर उसे सुविधाएं दे रही है. जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा. सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है. जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर
किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు గుంటూరు జిల్లాలోని తెనాలిలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా 4వ ఏడాది 3వ విడతలో భాగంగా వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, పీఎం కిసాన్ నిధులు, ఇటీవల పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నిధులు పంపిణీ చేయనున్నారు. తాడేపల్లి నివాసం నుంచి బయలుదేరి తెనాలి చేరుకుంటారు. స్థానిక వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణంలోని బహిరంగ సభా వేదిక చేరుకుని 4వ ఏడాది 3వ విడత వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, పీఎం కిసాన్, ఇటీవల పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ నగదును కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి తాడేపల్లి నివాసానికి చేరుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తున్నారని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని వెలికి తీసేందుకు ఉపాధ్యాయులు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడ ఆంధ్ర లయోలా కళాశాల రాష్ట్ర స్థాయి సైన్స్ ఫెయిర్ను మంత్రి ఈరోజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అన్ని పాఠశాలల నుంచి విద్యార్థులు చురుగ్గా పాల్గొనడం అభినందనీయమన్నారు. శాస్త్రవేత్త సర్ సివి రామన్ను విద్యార్థులు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి జిల్లా నుంచి చేసిన అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ఈ సంవత్సరం కాదు, ఇక నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పిల్లలకు కానీ వాళ్ళ అధ్యాపకులకు కానీ చాలా సమాజానికి కానీ చాలా అవసరం ఉన్నది ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూనే ఉంటాం. పక్క రాష్ట్రాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది సందర్భం కాదు, కానీ ర్యాగింగ్ అనేది పూర్తిగా కూడా నిషేధించబడింది. పిల్లల్లో అవేర్నెస్ తీసుకోవడానికి, అలాగే అధ్యాపకులకు వచ్చి దాని మీద వాళ్ళు దాన్ని ఎక్కడ సమాచార లోపం లేకుండా వాళ్ళు పర్యవేక్షించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంది. అటు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు కూడా ప్రతి దగ్గర కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెప్తున్నాము. కావాల్సిన వాల్ పోస్టర్స్ని, కావాల్సిన టీచర్లని, వాళ్ళ అవేర్నెస్ని ప్రతి వీక్ తీసుకుంటున్నాము. ఆ కార్యక్రమం ప్రభుత్వం పకడ్బందీగా చేస్తుంది. వాళ్ళ డిమాండ్స్ అడిగారు, ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉంది. ఎప్పుడు కూడా ఉద్యోగులకి ప్రభుత్వం వ్యక్తిగత కాదు, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రతి సమస్యను కూడా తీర్చే అవసరం ఉన్న ప్రతి అవసరాన్ని కూడా ప్రభుత్వం చేస్తూనే ఉంటుంది, చేస్తుంది కూడా. అది మా బాధ్యత. విత్తనం నుంచి పంట విక్రయం వరకు రైతులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరోసా కల్పిస్తోందని రాజ్యసభ సభ్యులు ఆళ్ల అయోధ్యరామిరెడ్డి అన్నారు. గుంటూరులో ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో రైతులు పంటలు పండించడంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారని, అయితే వైసీపీ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి వారికి భరోసా కల్పిస్తోందన్నారు. భవిష్యత్ తరాలకు రైతు భరోసా కేంద్రాల ఫలితాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయన్నారు. ఇదివరకు ఈ క్రాప్ చేయాలంటే మనకు సరైన స్టాఫ్ కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు. మనం చేసే వ్యవసాయంలో విత్తనాలు మనం మొక్కలు నాటేదాకా ఒకటి, అలాగే ఆ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ మొక్క పెరిగి మళ్ళా పంట చేతికొచ్చేదాకా, చేతికొచ్చిన పంటని మళ్ళా మనం ఏ విధంగా మనం ప్రాసెస్ చేసుకొని మనం అమ్ముకోగలగాలి. ఇంతకుముందు రైతుకు తోడు లేదు, భరోసా లేదు. ఆ భరోసా ఈరోజు వచ్చింది. ఖచ్చితంగా దీని పరిణామం ఖచ్చితంగా వచ్చే తరాలకి చాలా చక్కగా కనిపిస్తుంది, అందులో ఏం డౌట్ లేదు. ఒక వ్యవస్థలో ఒక మంచి మార్పు తెస్తుంది, వ్యవసాయం మీద ఒక ధైర్యం తీసుకొస్తుంది. అయినా కానీ ఆ రోజుల్లో భరోసా లేదు, ఈరోజు భరోసా వచ్చింది. భారత ప్రభుత్వం రైతు భరోసా కేంద్రాలని ఒక మోడల్గా క్రియేట్ చేసుకుంది, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినాయి. వివేకానంద హత్య కేసులో సీబీఐ నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు జరుపుతోందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు అన్నారు. తిరుపతిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ వివేకానందరెడ్డి కేసులో కేంద్రం ఎవరిని కాపాడదని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గాల్లో అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు తిరుపతిలో దొంగ ఓట్లను నమోదు చేయించారని పేర్కొన్నారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం సాధించి తీరుతుందని చెప్పారు. క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తుంది, ఎవరు దోషులు అనేది మన అందరికి కూడా అర్థం అవుతుంది. ఇందులో కేంద్రం జోక్యం ఉండదు అనేది స్పష్టంగా తేటతెల్లం అవుతుంది. కేంద్రం కాపాడే ప్రసక్తి లేదు. అభివృద్ధి లేకుండా గత 14 నుంచి ఇవాళ వరకు అవినీతి ధ్యేయంతో, అవినీతి ఏ తరంగా ఉందంటే ఏది కూడా అనర్హతమైనది లేదు రాష్ట్రంలో దోపిడీ చేయడానికి. ఈ వనరులన్నీ రాష్ట్రానికి వినియోగిస్తే అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉండేది, కానీ రాష్ట్రం అప్పుల పాలైపోతుంది. 60-40 గతంలో టీడీపీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి 60, వైసీపీకి 40, ఇప్పుడు 40-60-40.
అవినీతి కూడా ఆ రేంజ్ లోనే ఉంది. రాజకీయాలు ఎలా నడుపుతారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆపడం, ఆయన కుప్పం వస్తే ఆపడం, దాన్ని నడిపించడం, లేదు పాదయాత్ర చేస్తే జీవో ఇష్యూ చేయడం, దాన్ని నడిపించడం. మోడీ అభివృద్ధి గురించి ఎన్ని చెప్పినా 3 లక్షల కోట్లతో రోడ్లు వేస్తున్నాం, ఇవి ఎంతో కాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగవు. మరొక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. సిగ్గెందుకు పడుతున్నావు? గజ్జి తామర దురద అందరికీ వస్తాయి. జాలిం లోషన్ నాకు నానమిచ్చింది. చర్మ వ్యాధులకు అద్భుత పరిష్కారం అంది. జాలిం లోషన్ పురాతన యోధుడు, పురాతనమైంది మెరుగైంది. జాలిం లోషన్ ఫాస్టెస్ట్, ట్రస్టెడ్, టెస్టెడ్ తరతరాలుగా. జాలిం లోషన్. బ్యాక్ టు న్యూస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి ఎన్నికల్లో భాగంగా ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా స్థానిక సంస్థల నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్సీగా సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ మేరకు రిటర్నింగ్ అధికారి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ తెలిపారు. వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థిగా సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం 4 సెట్లు నామినేషన్లు, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా సి ధనంజయులు 2 సెట్లు నామినేషన్లు దాఖలు చేయగా, నామినేషన్ల పరిశీలన అనంతరం సి ధనంజయులు నామినేషన్లలో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తడంతో వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం ఏకగ్రీవం ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించిన రిటర్నింగ్ అధికారి డిక్లరేషన్ ఫారం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం మాట్లాడుతూ బీసీలకు రాజ్యాధికారం కల్పించిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి దక్కుతుందన్నారు. ఈరోజు ఒక చరిత్ర మర్చిపోలేని రోజు ఇవాళ. బీసీలకు 72 ఏళ్ల నుంచి పోరాడుతున్నాం. నెహ్రూ ప్రభుత్వం నుంచి మా గొంతులు బొంగిపోయినాయి. ఆ రోజు పోరాటం మేము అడిగింది అంటే దామాసా పగల 50% ఇవ్వండి అని అడిగాం. కానీ ఒకటేంటే జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రి గారు 3 ఏళ్లలో మాకు 61% ఇచ్చారు. అంటే ఇవ్వడం అనేది నిజంగా ఆశ్చర్యకరం. అంత ప్రేమ మాకు బీసీల మీద పంచిపెట్టిన మా జగనన్న గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని మేము తప్పకుండా మా హృదయాల్లో పెట్టిన ఈరోజు హృదయాలు ఉన్నారు జగనన్న గారు. తప్పకుండా అందరూ కలిసి ఇది ఒక ఉప్పెనలాగా ఇక్కడ విప్లవం ఉప్పెనలాగా సాగి తప్పకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇతర ప్రతిపక్షాలు కొట్టుకుపోవడం జరుగుతుంది. తప్పకుండా జగనన్న 157-170 సీట్లు సాధించుకుని అనుకుంటున్నాం. జై జగనన్న. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల గొంతును శాసన మండలిలో వినిపించేలా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని ఆ పార్టీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కళా వెంకట్రావు అన్నారు. రాజాంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఉత్తరాంధ్ర పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి డాక్టర్ వేపాడ చిరంజీవిరావును అన్ని వర్గాల గ్రాడ్యుయేట్ ఓటర్లు ఆదరించి గెలిపించాలన్నారు. రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిందని, వైసీపీ ప్రభుత్వం అభివృద్ధిలో రాష్ట్రాన్ని 30 ఏళ్లు వెనక్కి నెట్టిందన్నారు. గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎన్నికల్లో బలపరిచి అందరు గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఆయన గెలిపించాలి అని చెప్పి కోరుతున్నాం. ఆయన గెలుపు చాలా అవసరం. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో ఈ రోజు ఉత్తరాంధ్రలో ఉండేటటువంటి సమస్యల పరిష్కారానికి కానీ, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కానీ, అదే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతుండేటటువంటి అప్రజాస్వామిక పరిపాలన ఏదైతే ఉందో దానికి చరమగీతం పాడటానికి ప్రజలు, మేధావులు, ఉద్యోగులు, డిగ్రీ హోల్డర్స్ అందరూ కూడా నడువు కట్టారు అనే పరిస్థితి రావాలి. జగన్కు తెలియాలి తన అటవిక రాజ్యంలో తను ఉన్నాడు అనేటటువంటిది తనకి తెలియాలి అని అంటే ఈ ఎన్నికలో ఆబాల గోపాలం అందరూ ఏకమై అన్ని రకాల ప్రజలు, అదే విధంగా ముఖ్యంగా యువత ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, ప్రజల సంక్షేమం కోసం నియంతృత్వం కాదు సక్రమైనటువంటి పరిపాలన జరగాలి అనే పద్ధతిలో అందరూ రావాలి అని చెప్పి పేరు పేరున అందరినీ కోరుతున్నాం. నంద్యాల జిల్లా ఆర్ఏఆర్ఎస్ ఆడిటోరియంలో స్పందన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అంతకుముందు జిల్లా కలెక్టర్ మణిజీరి జిలానీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన ద్వారా ప్రజల నుంచి వినతి పత్రాలను స్వీకరించారు. ప్రజా సమస్యలను కలెక్టర్ అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ టి నిశాంతి, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి పుల్లయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కేంద్ర సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అవగాహన కార్యక్రమం ఈ రోజు తిరుపతిలో జరిగింది. సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు పెట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సబ్సిడీకి సంబంధించిన వివరాలపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువ పారిశ్రామికవేత్తలు, ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ అవగాహన సదస్సును శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ రాజారెడ్డి, ఎంఎస్ఎంఈ మంత్రిత్వ శాఖ విశాఖపట్నం సహాయ సంచాలకులు జీవీఆర్ నాయుడుతో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ యువతను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ తరహా కార్యక్రమాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయన్నారు. And SV University is a nodal agency of MSME. So therefore, we would like to invite all the people there to invest there in the incubations of SV University. And we would like to participate in this program. ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే ఎంఎస్ఎంఈ ప్రమోషనల్ మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ గురించి ఒక వెండర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. లైక్ సిపిఎస్, స్టీల్ ప్లాంట్, రైల్వేస్ 25% ప్రొక్యూర్మెంట్ కంపల్సరీ ఉంది వీళ్ళతో. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 25% 4% ఎస్టీఎస్సీ ఎంటర్ప్రినర్స్ కి, 3% ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ కి. ఆ అవేర్నెస్ తేడానికి, సెన్సిటైజ్ తేడానికి ఎంఎస్ఎంఈస్ వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు. స్టీల్ ప్లాంట్, రైల్వే వాళ్ళు సిపిఎస్ డిస్ప్లే చేస్తారు. ఈ 2 రోజుల ప్రోగ్రాము వాళ్ళ వెండర్ డెవలప్మెంట్ ఎలాగవుతుంది, వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఏంటి, బ్యాంక్ నుంచి ఎంఎస్ఎంఈ ఫైనాన్స్ ఎలాగవుతుంది, వాళ్ళ స్కీమ్స్ ఏంటి, ఎంఎస్ఎంఈ ఎలాగ బెనిఫిట్ అవ్వగలరు, ఇవన్నీ లోకల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ జిఎండిఐసి గారు ఉన్నారు, అదర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నారు. గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా ప్రోత్సాహన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, సబ్సిడీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ల్యాండ్ సబ్సిడీ నుంచి, జిఎస్టీ సబ్సిడీ నుంచి, మెషినరీ సబ్సిడీ నుంచి, సబ్సిడైజ్ రేట్ ఫైనాన్స్ నుంచి అన్ని చాలా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మేము ఈ 2 రోజులు చెప్తాం వాళ్ళకి. మహిళలకు మరింత సాధికారతను పెంచడానికి ఉత్తమ పద్ధతులను ఎలా అవలంబించాలో Women20 మార్గనిర్దేశం చేస్తుందని కేంద్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీ నగర్లో భారత్ G20 అధ్యక్ష బాధ్యతలు తీసుకున్న నేపథ్యంలో 2 రోజుల పాటు నిర్వహించనున్న Women20 సమావేశాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో G20 గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రెసిడెన్సీకి చెందిన అమితాబ్ కాంత్ పాల్గొన్నారు. మేఘాలయ, నాగాలాండ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. నాగాలాండ్లో 83.36% పోలింగ్ నమోదు కాగా మేఘాలయలో 75.84% పోలింగ్ నమోదైంది. మార్చి 2వ తేదీన ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ సాయంత్రం 4 గంటల వరకు కొనసాగింది. అయితే ఆ సమయానికి క్యూ లైన్లలో ఉన్న వారికి ఓటు హక్కు వినియోగించేందుకు అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. నాగాలాండ్లో మొత్తం 60 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను 1 ఏకగ్రీవం కాగా 59 స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. మొత్తం 183 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. ఇక మేఘాలయలోనూ పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఇక మద్యం కుంభకోణం కేసులో అరెస్టైన ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోదియాను 5 రోజులు సిబిఐ కస్టడీకి ఢిల్లీ కోర్టు అనుమతించింది. రేపటి నుంచి మార్చి 4 వరకు సిసోదియాను కస్టడీలోకి తీసుకుని సిబిఐ విచారించనుంది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఇప్పటికే సిసోదియాను సిబిఐ ప్రశ్నించగా సిసోదియా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పారని, తమ వద్ద ఉన్న ఆధారాలకు ఆయన చెబుతున్న సమాధానాలకు సరిపోలడం లేదని కోర్టు దృష్టికి సిబిఐ తీసుకెళ్లింది. సమాధానాన్ని దాటవేసే ధోరణిలో ఆయన మాట్లాడుతున్నారని కోర్టుకు వివరించింది. పూర్తిస్థాయి విచారణ చేపట్టేందుకు ఆయన్ని కస్టడీలోకి తీసుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం కస్టడీకి అనుమతిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీల్లో ఈ రోజు కూడా నష్టాల పరంపర కొనసాగింది. ఉదయమే ప్రతికూలంగా ట్రేడింగ్ ప్రారంభించిన సూచీలు రోజంతా అదే బాటలో పయనించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని ప్రతికూల సంకేతాలు మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపాయి. ఉదయం 59,331 వద్ద నష్టాలతో ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్ చివరకు 175 పాయింట్ల నష్టంతో 59,288 దగ్గర స్థిరపడింది. నిఫ్టీ 17,428 వద్ద ప్రారంభమై చివరకు 73 పాయింట్లు నష్టపోయి 17,392 వద్ద ముగిసింది. మార్కెట్లు ముగిసే సమయానికి డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ ₹82.81 వద్ద నిలిచింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.
डेजर्ट The events around me, I am not that mind. I am the soul. I am the eternal Atman. इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने इस अवसर के महत्व को बताया। सारे जो युद्ध हैं, सारे जो परेशानी है वो मानव के मन में शुरू होता है, और जब तक मानव मन अशांत है, जब तक मानव के मन में शांति नहीं है, तब तक ये जो मानव मन की जो अशांति है वो बाहरी रूप से ये युद्ध के रूप में व्यक्त होता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अगर हमें इस धरती से युद्ध को और आपसे मनमुटाव को ये सब हटाना है, तो सबसे पहले मन को शांत करने की आवश्यकता है। योग और ध्यान की आभा की ऊर्जा से सराबोर साधकों के लिए ये कभी ना भूलने वाला अनुभव था। वो नए संकल्पों के साथ अपने अपने घरों को रवाना हुए। योग और अध्यात्म के शाश्वत आनंद और संदेश को विश्व कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने में योगदान सत्संग सोसाइटी की भूमिका ऐतिहासिक रही है और आज भी यह सिलसिला लगातार पूरी ऊर्जा के साथ जारी है। नोएडा स्थित योगदान सत्संग शाखा आश्रम से मैं कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ सुनील जोशी, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। कुछ ही देर में हमारा उत्तर पूर्व के विधानसभा चुनाव पर खास कार्यक्रम जनादेश शुरू होने वाला है। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे मुद्दा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। आज पूर्वोत्तर के दो महत्वपूर्ण राज्य नागालैंड और मेघालय में मतदान संपन्न हो गया है। दोनों राज्यों में भारी तादाद में मतदाताओं ने उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। अब ये ईवीएम 2 मार्च को खुलेंगी और नागालैंड और मेघालय समेत त्रिपुरा के चुनावी नतीजे भी उस दिन सामने आ जाएंगे, जिसका सीधा और सबसे सटीक प्रसारण डीडी न्यूज पर किया जाएगा। लेकिन इसके पहले आज हम आपको बताएंगे कि नागालैंड और मेघालय में किस तरह का मतदान देखने को मिला और पूरे चुनाव के दौरान दोनों राज्यों में कौन कौन से चुनावी मुद्दे हावी रहे। सबसे पहले देखते हैं कि आज नागालैंड में किस तरह का मतदान का माहौल रहा। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। राज्य में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लोगों ने वोट डाले। हालांकि कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारों की वजह से अब भी कई मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। हिंसा की एकाध छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य की 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराया गया।
इसके साथ ही नागालैंड के चुनावी समर में किस्मत आजमा रही 4 महिलाओं समेत 183 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। राज्य की अकुलुतु विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार काजेतो कामिनी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 2291 मतदान केंद्रों में से 777 को संवेदनशील और 720 को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। सुचारू मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने 387 महिला मतदान केंद्र स्थापित किए थे। इनके अतिरिक्त 38 आदर्श, 7 युवा और दिव्यांगों के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध भी निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए थे। सुबह से हर आयु वर्ग के मतदाताओं, महिला और युवा मतदाताओं में वोटिंग को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के दिग्गज नेता एनडीपीपी के प्रत्याशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में अपना वोट डाला। नागालैंड में बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख तेमजेन इम्ना अलांग ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अलोनटकी में मतदान किया। नागालैंड में नेफ्यू रियो की एनडीपीपी और बीजेपी चुनाव पूर्व गठबंधन में दोनों गठबंधन में साथ में है। इनका मुकाबला नागा पीपल्स फ्रंट से है। नागालैंड में एनडीपीपी ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 20 सीटों पर मैदान में है। कांग्रेस 23 सीट और एनपीएफ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शाम 5 बजे तक नागालैंड में 84.23% मतदान दर्ज किया गया है। राज्य के चुमू कोडिमा जिले में सबसे कम 77.09, जबकि फुगोबोटो जिले में सर्वाधिक 92.11% वोट डाले गए हैं। नागालैंड में पिछले विधानसभा चुनाव में 86.8% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। अभी ये आखिरी आंकड़ा नहीं है, इस आंकड़े में थोड़ा सा सुधार और हो सकता है और माना जा रहा है कि करीब करीब पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो है मतदाताओं का और मतदान का जो प्रतिशत है करीब करीब वही निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। नागालैंड के दीमापुर में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना कि मतदाताओं के क्या है मुद्दे जिनके आधार पर उन्होंने वोट दिया है। इस समय हमारे साथ होक्तू जीबी हैं जो खुद वोट डाल के आए हैं और जैसा कि हम बता भी रहे थे कि नागालैंड के अंदर जो जीबी हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने वोट डाल लिया है? हम वोट डाल लिए, हम लोग आधार कार्ड शो करके डाल रहे हैं। अच्छा, दूसरा जब आप वोट डालने गए किस आधार पर आपने वोट डाला कि कैसी गवर्नमेंट बननी चाहिए, आप लोगों के लिए किस तरह के काम करे? हम लोग तो सेंट्रल में बीजेपी सरकार है, नागालैंड में भी तो सेंट्रल कहा गवर्नमेंट है, नागालैंड में भी वही सरकार में हम लोग मतलब कर रहे हैं। तो मतलब क्या पिछले 5 साल में कुछ बदलाव आपको देखने को मिला और आने वाले 5 साल में किस तरह का चेंज और देखना चाहते हैं आप लोग? नागालैंड में तो सेंट्रल में बहुत फैसिलिटी दिया है, इसलिए और 5 साल आगे में बहुत फैसिलिटी रिसीव करने के लिए हम लोग शामिल है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से अपने मत का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके साथ ही मैं अगर आप दिखाऊं कि लोकतंत्र के लिए लगने वाली ये लंबी लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है और ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ इश्यूज हैं और विकास के मुद्दों को लेकर ये लोग अपने मत का प्रयोग है वो कर रहे हैं और जब सरकार चुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर इन लोगों के मत का एक बड़ा योगदान रहेगा और ख़ास तौर से अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और एक रिकॉर्ड नागालैंड के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी तक एक भी महिला उम्मीदवार यहाँ से जीती नहीं है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि 4 में से 1 महिला उम्मीदवार जीतकर नागालैंड में इतिहास बनाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दीमापुर। नागालैंड में एक बार फिर बम्पर वोटिंग हुई है। इसके क्या है सियासी समीकरण, इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कोहिमा से मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, हमने देखा है कि नागालैंड में हमेशा से
बम्पर वोटिंग होती रही और इस बार भी नागालैंड ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा है। पिछली बार 86.8% करीब करीब मतदान हुआ था। इस बार जो भी 5 बजे तक का आंकड़ा है वो 84.23% का, इसमें करेक्शन होगा और ये अपने पिछले चुनाव के आंकड़े के ही करीब करीब पहुंच जाएगा। तो ये किस बात की तरफ, ये किस राजनीतिक समीकरण की तरफ ये इशारा कर रहा है? देखिए, राजनीतिक समीकरण की तरफ अगर हम प्रखर बात करें तो निश्चित तौर पर जो जनता है वो विकास के मुद्दे पर निकली है। और आप अगर देखें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीपी ने लगातार विकास के मुद्दे को लेकर इस चुनाव को लड़ा है और लगातार इस बात का जिक्र किया है कि नागालैंड के अंदर जो विकास की गति है वो लगातार होती रहनी चाहिए। आपने देखा भी था कि लोगों का भी ये मानना है कि पिछले 5 साल में बदलाव आया है और आने वाले 5 साल में वो नहीं चाहते हैं कि जो विकास की रफ्तार यहाँ शुरू हुई है उस विकास की रफ्तार में किसी तरह का ब्रेक लगे। यही कारण है, आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और अगर हम कहें कि पिछली बार 86% से ज्यादा था, तो हो सकता है कि क्योंकि अंतिम आंकड़े आने में टाइम है, हो सकता है कि 86% से ज्यादा जो मतदान है वो प्रखर हो सकता है। बिल्कुल। और ये बताता है कि इस मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रखर हिस्सेदारी ली है और जो ये सिद्ध करता है कि नागालैंड न केवल राजनीतिक रूप से जागरूक है बल्कि अपने वोट की कीमत को भी समझता है और घरों से निकलकर उन्होंने अपना वोट दिया है। और जो ये बताता है कि विकास के मुद्दे पर नीरज, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा, नीरज यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने विकास की बात की, जाहिर है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के मुद्दे पर नागालैंड में यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक मुद्दा और अहम रहा नागालैंड के लिए और ये रहा कि जो 5 साल में शांति वहां पर स्थापित हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल 2022 में एक भी जान उग्रवादी हमले में नागालैंड के अंदर नहीं गई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बार ये कितना बड़ा मुद्दा इन चुनावों में साबित हो सकता है? देखिए प्रखर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं ये कहूंगा कि अगर विकास से भी ऊपर इस मुद्दे को रखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नागालैंड के लोगों का ये मानना है कि नागालैंड के अंदर अगर शांति होती है तो विकास की न केवल गति लगातार बढ़ती है बल्कि जो उद्योग धंधे हैं, काम है, वो भी लगातार सुचारू रूप से चलते हैं। आपने प्रखर देखा होगा कि पिछले कुछ समय पहले किस तरह की स्थितियां नागालैंड के अंदर होती थी। कर्फ्यू तक लग जाता था, लोगों को जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, उसकी वजह से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो नागालैंड में जो शांति का मुद्दा है, क्योंकि आप अगर देखें पूर्वोत्तर में 75% से ज्यादा पिछले 9 सालों में जो हिंसा की वारदातें हैं उनमें कमी आई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है केंद्र सरकार का और जो स्थानीय सरकार है उनका। तो ये बताता है कि जो जनता है उसके दिलो दिमाग में नागा शांति का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बाकी दूसरे मुद्दे, क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बात की उनका ये कहना था कि हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जब पीस और शांति रहेगी तो विकास भी रहेगा, एजुकेशन भी बनाएंगे, दूसरी जो जरूरत की चीजें वो भी उपलब्ध होंगी और विकास की रफ्तार है वो भी आगे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से विकास से ऊपर मैं इस पीस के मुद्दे को रखता हूं और उसी के आधार पर जनता ने वोट भी किया है। प्रखर, नीरज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बताया कि किस तरह से विकास के मुद्दे पर और जो शांति स्थापित हुई है उसके मुद्दे पर नागालैंड में और खासकर देखा जाए तो पूरे ही जो मेघालय में भी इन्हीं मुद्दों पर वोट डाले गए हैं और उसका नतीजा क्या होगा ये तो हमें 2 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। धन्यवाद इस जानकारी के लिए नीरज। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मेघालय और बताएंगे कि वहां आज मतदान का क्या माहौल रहा। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 7 बजे से वोट डाले गए। मेघालय के पूर्व मंत्री और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार HDR लिंगदो के निधन के कारण
सोहियोंग विधानसभा सीट में मतदान टल गया। राज्य में सुबह से ही वोटिंग को लेकर मतदाताओं का जोश देखने को मिला। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हर उम्र और हर वर्ग के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला। राज्य के दिग्गज नेताओं ने भी अपने अपने इलाकों में लोकतंत्र के इस जश्न में अपनी अपनी भागीदारी निभाई। राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गारो हिल्स के तुरा में बालकगरे मतदान केंद्र पर वोट डाला। अम्पाती से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व सीएम मुकुल सांगमा की बेटी मियानी डिशीरा ने आज मेघालय चुनाव के लिए अपना वोट डाला। उधर मेघालय बीजेपी चीफ और पश्चिम शिलोंग विधानसभा सीट से प्रत्याशी अर्नेस्ट मावरी ने अपना वोट डाला। वोटिंग के लिए राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 3,419 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मेघालय के रण में 36 महिलाओं समेत कुल 369 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 4 राष्ट्रीय दलों सहित 14 राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके लिए मेघालय में सशस्त्र बलों की 179 कंपनियों को तैनात किया गया था। मेघालय विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले 5 मतदाताओं को चुनाव आयोग ने स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। मेघालय में इस बार बीजेपी ने चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं किया है। पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर कांग्रेस भी सभी सीटों पर मुकाबले में है। एनपीपी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने राज्य में 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेघालय में शाम 5 बजे तक कुल मतदान 76.66% दर्ज किया गया। राज्य के ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स जिले में सबसे अधिक 90.86% मतदान दर्ज किया गया, जबकि ईस्ट गारो हिल्स जिले में सबसे कम 70.12% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। राज्य की पिछले विधानसभा चुनावों में 86.77% मतदान रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। मतों की गिनती अब 2 मार्च को होगी। मेघालय में विधानसभा की 60 में से 59 सीटों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक था। मतदान समाप्ति के बाद भी लंबी लंबी कतारें वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार वोटर्स करते हुए देखे गए। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के तुरा में एक ऐसे ही पोलिंग बूथ में लोगों के उत्साह का जायजा लिया डीडी न्यूज की संवाददाता रमा त्यागी ने। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स के तुरा में हम मौजूद हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। मतदान का समय यहां पर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी लोगों की, मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं और ये सुबह मतदान के समय से ही यहां पर इसी तरह का आलम है, इसी तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। गर्मी है यहां पर। जब ज्यादा गर्मी थी तब भी मतदाता यहां पर अम्ब्रेला लेकर, छतरी लेकर यहां पर खड़े थे, लेकिन लगातार जो मतदाताओं की कतारें हैं वो लंबी हैं। क्या चाहते हैं सरकार? ज्यादातर डेवलपमेंट चाहता हूँ, वही डेवलपमेंट चाहता हूँ। यूथ यहाँ पे है, आप युवा हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी यूथ यहाँ पर चाहता है? अपॉर्चुनिटी तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। डेवलपमेंट लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। बहुत सारा अच्छा मेडिकल कॉलेज ये सब लेके आना चाहिए। और अभी तो रोड भी इतना अच्छा नहीं हुआ है, ये सब डेवलपमेंट होना चाहिए, रास्ता वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि युवाओं में यहाँ पर अवेयरनेस है कि हर वोट की कीमत होती है और वोट को कितने सोच समझ कर देना चाहिए और कोई भी वोट मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने विकास की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, नए अवसरों की बात की है, निवेश की बात की है और इसके साथ ही नए भविष्य की ओर यहाँ का युवा आगे बढ़ना चाहता है। प्रोग्रेसिव होने चाहिए। हम लोग ज़्यादा देर वो we don't think much about when we are voting. We just want to cast a vote. But I think it's important that we see which government is most progressive, because we are all the youth will take over at some point, and I think the ideologies of the government should match with the youth. This is what I believe. कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जो थीम आधारित थे। बेहद खूबसूरत सजावट के बीच में चुनाव आयोग की जो सक्रियता और मतदाताओं का आह्वान की ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आए, वो यहाँ पर सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनावी लड़ाई की अगर बात करते हैं तो बहुकोणीय चुनावी लड़ाई यहाँ इस बार दिखाई दे रही है। पूरे मेघालय में ही इस तरह की लड़ाई है हर सीट पर और सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतारे हैं।
जो पूर्व के सहयोगी थे वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कई ऐसे दल हैं जो कि दूसरे दल से आने वाले लोगों यानी कि पाला बदलने वाले दलों के बल पर यहां पर अपनी नई एंट्री कर रहे हैं। तो बेहद रोचक, बेहद अहम चुनावी समीकरण इस बारे में है और यहां पर जो लोगों के मुद्दे हैं वो भी अलग अलग हैं। क्षेत्रवार तो मुद्दे हैं ही, लेकिन मुख्य मुद्दा यहां लोगों के जहन में विकास का है। सभी दलों ने अपने अपने वादे किए हैं, अपने अपने दावे किए हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए और मतदाताओं ने भी अपना निर्णय ईवीएम में लॉक कर दिया है। चुनाव 2 मार्च को आएंगे, लेकिन जो भी दल जीते, सबसे बड़ी जीत यहां पर लोकतंत्र की दिखाई दे रही है क्योंकि मतदाता बड़ी संख्या में यहां पर अपने घरों से निकल कर आए हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कि क्या कह रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने तुरा में अपना वोट डाला। यहां उन्होंने आम लोगों की तरह लाइन में खड़े होकर वोट डाला। दूरदर्शन समाचार से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेघालय में पार्टी ने बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में जितना काम हुआ है वह 45 वर्षों में नहीं हो पाया है। हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री ने अपना वोट दे दिया है, लाइन में लगकर आम आदमी की तरह इन्होंने अपना वोट दिया है। इनसे जान लेते हैं किस तरह की संभावनाएं ये देख रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं। इस बार की चुनावी लड़ाई किस तरह से अलग आपको दिखाई देती है? नहीं, इलेक्शन तो इलेक्शन है, तो हर इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हर इलेक्शन में हम लोग कभी भी कोई भी इजीली हम लोग उसको नहीं देखते। तो हमने पूरा काम किया है। पिछले 5 सालों में भी हमारी सरकार ने काम की है। हम एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आए, हमने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, हमने एक तरीके से शांति, हम लोग जो इंसर्जेंसी रिलेटेड इश्यूज में हम शांति लेके आए। तो मुझे विश्वास है कि इस बार लोग जरूर हमारा काम देख के हमें एक बार फिर हमें चांस दें। बीजेपी आपकी सहयोगी रही है, आप कह रहे हैं कि आपने विकास कराया है। बीजेपी ने विकास बनाम भ्रष्टाचार का ही मुद्दा बनाया है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं नहीं है, यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह का डेवलपमेंट और कैसे विश्वास करते हैं कि लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं? तो 2 चीजें हैं। नंबर 1, पिछले 5 सालों में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 45 साल में नहीं हुआ। जितने पीने के पानी के पाइप्स लगे हैं जो पिछले 45 साल में थे वो सिर्फ 4000 थे पहले। आज हमारे सरकार के समय 3 लाख पाइप लगे हैं, पानी के टैप कनेक्शंस गए हैं। हमारे अलग अलग रास्तों में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो पिछले 20 सालों में रास्ते नहीं बने थे, हम लोगों ने 5 साल में हम लोग रास्ते बना के दिए हैं। टीकाकरण में अगर देखेंगे तो हम लोग सबसे बॉटम पोजीशन में, आज हम लोग टॉप पोजीशन में हैं। ऐसे कर करके बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे भारत सरकार के रैंकिंग में ही मेघालय का रैंकिंग बहुत हाई है कि मेघालय ने अच्छा काम किया है। तो नंबर्स क्लियर कि हमारा जो सेंटर के साथ आपका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो इसलिए अगर कोई बोले कि अब इलेक्शन में, तो लोग बोलेंगे इलेक्शन में तो अलग अलग इश्यूज लाएंगे, ये तो नॉर्मल इलेक्शन एजेंडा में होता है, इलेक्शन में तो स्पीच देना पड़ता है। तो इस मामले में स्पीच दिया होगा, लेकिन हमारे नंबर्स, डेवलपमेंट के जो इंडेक्सेस हैं और जिस तरह के काम हुआ है वो साफ आ गए हैं। इस बार टीएमसी भी कड़ी चुनौती दे रही है, आपको लगता है?
हर अपोनेंट हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट अपोनेंट है। हम लोग ने कभी भी किसी को इजीली नहीं लिया। तो मैं मानता हूं कि अगर हम लोग माइंडसेट में सोचेंगे कोई आसान है तो फिर मेरे ख्याल से वो गलत होगा। तो इसलिए हम लोगों ने हरदम सबको इम्पोर्टेंस दिया है। तो टीएमसी को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो एक स्ट्रांग अपोजिशन है और हमें बिल्कुल स्ट्रांग काम करना पड़ेगा। तो उसी लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का जो रिस्पांस अभी ग्रास रूट में है, टीएमसी का ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल अभी नहीं है, नई पार्टी है और उनका जो जिस तरीके के वो सोच रहे कि उनका इम्पैक्ट होगा वो नहीं होगा। मुख्य चुनौती कौन से दल से आप मानते हैं? डिपेंड्स ऑन द एरिया। कहीं कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं पे टीएमसी के साथ हो सकता है लड़ाई, कहीं पे बीजेपी के साथ, कहीं पे यूडीपी के साथ। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग वो है। आपको लगता है कि यहाँ पर इस बार एक बार बस अभी तक यहाँ पर जो है मिलीजुली सरकार आई है, आपको लगता है कि इस बार एक स्थिर और एक पार्टी की सरकार आएगी? हमारी कोशिश तो यही है और जिस तरीके से लोगों की जो रिस्पांस हमें मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि हम लोग शायद उस लाइन पे जाएंगे। तो मेघालय के मुख्यमंत्री जिन्होंने वोट अपना दिया है, इनका कहना है, उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार जो है इनको बहुमत मिलेगा और ये उससे सरकार बनाएंगे। हालांकि इन्होंने पोस्ट पोल अलायंस से भी इनकार नहीं किया है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। मेघालय में सभी 59 सीटों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। वोटर्स को प्रोत्साहित करने के मकसद से चुनाव आयोग ने पहले 5 वोटर्स को मेडल और सर्टिफिकेट दिया है। आईटीआई शिलांग में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ मेडल विनर्स से बातचीत की। पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग सुबह सुबह यहाँ पर जमा हो गए थे और पहले 5 वोट डालने वालों को मिला है ये इनाम, मेडल और ये सुवेनियर। आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कितना एक्साइटमेंट हो रहा है आपको मेडल मिला? वेरी एक्साइटेड। आपको मालूम था मेडल मिलेगा अगर आप जल्दी वोट डालोगे? हमको मालूम नहीं, मेडल मिलेगा बोल के मालूम नहीं हमको। आपके दिमाग में क्या इश्यूज थे? व्हाट वर द इश्यूज? व्हाट यू वांट फॉर मेघालय? आई वांट टू चेंज दिस गवर्नमेंट हैव टू चेंज दिस ईयर। व्हाई? Why? Because the government, those 5 years, it is not good. What do you want from the next government? Next government, I think we want peace. जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये बदलाव चाहती हैं, ये चाहती हैं कि मेघालय में शांति कायम हो और ऐसी सरकार आए जो खास तौर से बुजुर्गों का ख्याल रखे। कैमरामैन सेंथिल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, शिलांग। जनादेश में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड। अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। कोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो। कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए। चिंगारी भड़क चुकी आलम पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? हिंदुस्तान अब हमारा है। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी राज्य को सौगातें, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।
8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी। नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी हुआ उद्घाटन। बताएंगे विमानन क्षेत्र में भारत कैसे बन रहा है बड़ी ताकत। नागालैंड और मेघालय में कैसा रहा मतदान। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी है सियासी घमासान। G20 बैठकों का दौर जारी। होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक गिरोह। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो, जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक को दी है कई सौगात, जिसके बारे में बताएंगे हम आपको। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई के 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तमाम दिन की और खबरें भी हैं साथ में, लेकिन साथ ही साथ आपको हम एक्सप्लेनर्स के जरिए ये भी बताएंगे कि कैसे देश में उड्डयन क्षेत्र को लेकर 2014 के बाद से तस्वीर बदली है। और साथ ही जब आज प्रधानमंत्री ने बजट के बाद की वेबिनार्स को संबोधित किया तो उसमें उन्होंने लास्ट माइल यानी आखिरी पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएं और क्या क्या सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, ये जो तस्वीर सामने रखी उसे भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कैसे जल जीवन मिशन की बात करें, आवास की बात करें, वंचित आदिवासी वंचित लोगों की बात करें, या फिर हम आकांक्षी जिलों की बात करें, कैसे हर मोर्चे पर सरकार ये सुनिश्चित कर रही है
की आखिरी पंक्ति पर खड़े इंसान, व्यक्ति, नागरिक तक भी तमाम सुविधाएं पहुंची। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने शिवमोगा में कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। शिवमोगा हवाई अड्डे का भी किया उद्घाटन। 2 रेलवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने बेलगावी में पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को किया समर्पित। जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए काम कर रहा है। पीएम मोदी ने 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की जारी। डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में गई 16,000 करोड़ रुपए की राशि। कहा 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा। बेलगावी में पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बेलगावी की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना। कहा रायपुर अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ हुआ उससे हुआ दुख। पूरे देश ने देखा किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। कांग्रेस नेताओं की विवादित टिप्पणी पर बोले पीएम। कहा कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मगर देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी है सियासी घमासान। आम आदमी पार्टी ने कई जगह पर किया प्रदर्शन। बीजेपी ने किया करारा वार। कहा ईमानदारी के नाम पर सरकार बनाई, आज बने सबसे बेईमान। प्रदर्शन को बताया नौटंकी। कहा जांच एजेंसियों के काम में बाधा डाल रही आप। नागालैंड और मेघालय में मतदान का काम पूरा। दोनों जगह पर हुआ भारी मतदान। मतदान केंद्रों पर महिला, युवा और बुजुर्गों की रही लंबी कतारें। चुनाव आयोग ने किए थे व्यापक इंतजाम। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एक साथ होगी मतगणना। पीएम मोदी ने रीचिंग द लास्ट माइल पर बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा हम सुशासन पर जितना बल देंगे, अंतिम छोर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य उतने ही आसानी से होगा पूरा। अंतिम छोर तक पहुंचने की दृष्टि और सैचुरेशन पॉलिसी को बताया एक दूसरे का पूरक। कहा हर एक के पास पहुंचने के लक्ष्य से भेदभाव और भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है खत्म। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हुई वुमेन 20 की बैठक। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व समेत तमाम मसलों पर हुई बात। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। आइए देखते खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के कर्नाटक दौरे से। कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलगावी पहुंचे, जहां 9 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो हुआ। इस दौरान वहां सड़कों के किनारे हजारों के हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी की तथा अन्य विकास योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के सपूत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर भी उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। बेलगावी का चप्पा चप्पा, गली मोहल्ला मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा।
विकास की सौगात देने दक्षिणी राज्य कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बदसलूकी को याद दिलाना नहीं भूले और नाम न लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर गए। जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। बात करें सौगात की तो पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त जारी की। इससे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच गई। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही पीएम ने लोंडा बेलगावी घाट प्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। उन्होंने दशकों तक छोटे किसानों को नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वर्ग भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। पीएम मोदी ने कृषि को आधुनिकता से जोड़े जाने को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि साल 2014 में भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस बार कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक के शिवमोग्गा में 3600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने शिवमोग्गा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। संपर्क और आवागमन को सुखद बनाती हवाई सेवा लोगों के लिए काफी अहम है।
इस सुविधा को साकार करता शिवमोगा हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया। यह लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दशा बदली है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। 950 करोड़ रुपए की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। पीएम ने गौतमपुरा और अन्य 127 गांव के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने सड़क विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा राणेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल हैं। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। वहीं सड़क परियोजना की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। यह 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह भारत का अमृतकाल है, विकसित भारत बनाने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा अवसर दस्तक दे रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका शिवमोगा की जनसभा में विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हल देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी ने उनके विधानसभा में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए इसे सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने जनसभा में मौजूद अपार जनसमूह से मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाकर येदियुरप्पा को सम्मानित करने की अपील की। आज कर्नाटका के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। येदियुरप्पा जी ने कर्नाटका असेंबली में जो भाषण दिया है
वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा है। सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी किस तरह व्यवहार में विनम्रता बनी रहनी चाहिए, ये हम जैसे हर किसी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी येडियुरप्पा जी का ये भाषण, उनका जीवन हमेशा हमेशा प्रेरणा देने वाला है। मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येडियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। तो आज शिवमोगा को मिला एयरपोर्ट, और ऐसे में जब हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से अमृत काल में हमें 2047 तक विकसित भारत की जो तस्वीर पूरी करनी है, उसका सफर 2014 में जिस रफ्तार से शुरू हुआ, इन पिछले सालों में इसने और रफ्तार पकड़ी है। यही उड्डयन क्षेत्र का विकास भी इसी रफ्तार की एक बानगी प्रस्तुत करता है, जिसकी तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत में उड्डयन क्षेत्र का विकास हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपके सामने पहली तस्वीर पेश करें, जिसमें हम आपके सामने एयरपोर्ट्स का आंकड़ा रखना चाहेंगे, तो ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से 2014 में जहां देश में थे मात्र 74 ही एयरपोर्ट्स, तो वहीं अगले सालों में देखें तो बढ़कर ये हो गए हैं 2023, यानी अब तक 147 हो चुके हैं। और सरकार का लक्ष्य है कि 2024-25 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 220 कर दिया जाए, यानी 2014 से 2023 तक लगभग दुगना आंकड़ा हो गया, लेकिन अब इसको और बढ़ाकर 2020 करने का लक्ष्य है। और जब शिवमोगा एयरपोर्ट जिस तरीके से तैयार हुआ है, यही जिस रफ्तार से काम हो रहा है दिखाता है कि इस लक्ष्य को सरकार पूरा कर सकती है। ऐसे में उड्डयन क्षेत्र का ही एक और पहलू है एयरक्राफ्ट्स, यानी कितने एयरक्राफ्ट थे हमारे पास और कितने अब हो गए हैं। 2013-14 में देखें तो मात्र 400 थे हमारे पास 2013-14 की बात करें तो, लेकिन तब से अब तक 2023 तक आते आते ये आंकड़ा 400 से बढ़कर 700 हो चुका है। वही एक बात जिससे हर कोई जिससे सहमत होता है वो ये कि हवाई यात्रियों की बढ़ती तादाद भारत में बहुत तेज रफ्तार से दिख रही है। 2014 में मात्र 6 करोड़ हवाई यात्रियों का आंकड़ा था, तो वही 2020 कोविड से पहले 2020 तक आते आते ये 14 करोड़ 30 लाख के पार हो गया। हालांकि उसके बाद में देखा कि कोविड आया, जिसकी वजह से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन अब भी ये 90% से ज्यादा, आंकड़े कहते हैं लगभग 98% तक ये आंकड़ा पहुंच गया है, जिसका मतलब ये है और दुनिया भर में ये बात की चर्चा भी है कि कैसे भारत एक बड़ी मार्केट है जब हम बात करते हैं एयर पैसेंजर्स की। और साथ ही साथ यहां पर महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने और पेश कर दें कि सरकार ने अपने इस तस्वीर को सामने कि एक आम नागरिक भी एयरक्राफ्ट हवाई उड़ान ले सके, उसके लिए सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की, यानी उड़े देश का आम नागरिक। और ये उड़ान 2016 में लॉन्च की गई और इसका लक्ष्य एक ही था, क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना। सिर्फ बड़े शहरों तक ही संपर्क नहीं हो, हवाई संपर्क छोटे 2 टियर 3 टियर सिटीज तक भी ये पहुंच होनी चाहिए। इसके तहत 461 रूट शुरू किए गए, मार्गों पर परिचालन, हवाई परिचालन शुरू हो गया, 73 हवाई अड्डों का संचालन भी शुरू हो गया और अब तक आंकड़े दिखाते हैं कि 113 लाख से अधिक यात्रियों ने उड़ान योजना के तहत यात्रा की। और ये तस्वीर हम लोग के सामने आती रहती है कि कैसे छोटे छोटे क्षेत्रों के लोग भी हवाई यात्रा कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो कैसे क्षेत्रीय संपर्क इससे बड़ा है, तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ही 58 मार्ग शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 73 मार्ग हैं, हवाई मार्ग जिन पर परिचालन शुरू हो चुका है। कर्नाटक में 98 ऐसे हवाई मार्ग हैं जिन पर परिचालन चल रहा है। ऐसे ही देश के अन्य हिस्सों तक भी ये परिचालन, ये मार्ग आगे विस्तार इनका हो रहा है। वहीं उड्डयन क्षेत्र के और भविष्य में क्या विस्तार की सरकार की योजना है, तो वो आपके सामने रखना चाहेंगे। 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 10 विकसित हो चुके हैं, संचालित भी हो रहे हैं। और वहीं सरकार का यह लक्ष्य है कि 2025 तक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए 98,000 करोड़ रुपए का कैपिटल लेआउट प्लान किया गया है। 2024 तक ये प्लान है कि 100 जो कम विकसित एयरपोर्ट्स हैं उनका विकास किया जाए 2024 यानी अगले साल तक। और वहीं उड़ान योजना के तहत
1000 नए मार्ग चालू करना, यह भी सरकार का लक्ष्य है, जिसका मतलब है कि उड़ान योजना के तहत 100 ऐसे एयरपोर्ट्स जो अभी अनसर्व्ड हैं या अंडर सर्व्ड हैं, इनको भी आगे लेकर आना और साथ ही नए मार्ग, जिसका मतलब है कि पूरे देश में, भारत एक बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक तौर पर भी जिस तरीके का विस्तार है भारत का, उसको देखते हुए ये क्षेत्रीय संपर्क बनाना बेहद जरूरी है। तो सरकार एक बड़ी तस्वीर उड्डयन क्षेत्र के विकास की देख रही है और उसी पर लक्षित सोच के साथ काम भी करती नजर आ रही है। फिलहाल अन्य खबरें भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। और ब्रेक के बाद बात चुनाव की। नागालैंड और मेघालय में आज लोकतंत्र का जश्न मनाया गया। इन दोनों राज्यों में मतदान का काम पूरा हो गया है। दोनों जगहों पर भारी मतदान हुआ। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एक साथ मतगणना होगी। महापर्व में आज नागालैंड और मेघालय के लोगों ने जमकर हिस्सा लिया और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें थीं। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। राज्य में 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए थे। एनडीपीपी उम्मीदवार और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा जिले में वोट डाला। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भारी भीड़ जुटने लगी थी। कि लोकतंत्र के लिए लगने वाली ये लंबी लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता अपने भाग्य की बागडोर अपने जनप्रतिनिधियों को सौंपने जा रही है। और ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ इश्यूज हैं और विकास के मुद्दों को लेकर ये लोग अपने मत का प्रयोग है वो कर रहे हैं। वहीं मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा की 59 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। यूडीपी उम्मीदवार HDR लिंगदो के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहियोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया। राज्य के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 3419 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 359 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। सुचारू मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सशस्त्र बलों की 119 कंपनियों को तैनात किया गया था। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने काफी इंतजाम किए थे। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में नोंगस्टोइन में महिला मतदान केंद्र बनाया गया।
वहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पिंक बूथ होने के कारण इस मतदान केंद्र को महिलाओं द्वारा ही संचालित किया गया। वहीं माउथेंगकुट में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुबह से ही मतदाताओं ने मतदान में भागीदारी निभाई। मेघालय का पहला अस्थायी मतदान केंद्र विशेष रूप से कुष्ठ रोगियों के लिए राज्य के नोंगपोह में स्थापित किया गया था। राज्य के लोग समय से पहले ही कतारों में लगे हुए थे। इन चुनावों में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और हर आयु वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? ज़्यादातर डेवलपमेंट चाहता हूँ। डेवलपमेंट चाहिए हम लोग के लिए, वही है। और डेवलपमेंट लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने तुरा में मतदान किया। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में भाजपा विधायक अलेक्जेंडर लालू हेक ने मतदान किया। मेघालय बीजेपी प्रमुख और पश्चिम शिलांग विधानसभा सीट से प्रत्याशी अर्नेस्ट मावरी ने अपना वोट डाला। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तहत त्रिपुरा के बाद मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतगणना 2 मार्च को होगी और तभी जनता का आदेश सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि यहां आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण सिक्किम राज्य के 4 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिमी सिक्किम में पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया आवंटन सफल है। India and Denmark both have rich legacies in historic craft and design. Our nations have different silver traditions, but the love for silver is shared. So I will like to extend my gratitude to you, Honourable Minister of State for External Affairs and Culture, Minashi Lekki, for your personal commitment to the development of our bilateral cultural relations. आइए अब नजर डाल लेते हैं बिजनेस की कुछ खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारतीय एयरटेल ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जम्मू, कटरा, अनंतनाग, बारामूला और राजौरी में अपनी हाई स्पीड 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के अब कुल 13 शहरों में इंटरनेट की हाई स्पीड सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले 10 महीने में 16% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंच गया। एस्सार समूह ने ब्रिटेन और भारत में कम कार्बन उत्सर्जन की ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं में अगले 5 साल के दौरान $3.6 अरब के निवेश की घोषणा की है। शेयर बाजार में आज लगातार 7वें दिन गिरावट जारी रही। सेंसेक्स जहां 175 अंक लुढ़ककर 59,288.35 अंक पर बंद हुआ, वहीं एनएसई के निफ्टी में 73 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और वो 17,392 के स्तर पर ये लगातार 7वां कारोबारी दिन है जब सेंसेक्स लाल निशान के साथ बंद हुआ। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्बेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया के साथ विस्तारा के एकीकरण की प्रक्रिया जारी है और अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी का इंतजार है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई।
चिंता मत कर मेरे भाई, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के। 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। प्रधानमंत्री ने आज बजट वेबिनार को संबोधित किया, जिसका शीर्षक था रीचिंग द लास्ट माइल। उन्होंने कहा कि सुशासन पर जितना बल देंगे, अंतिम छोर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य उतनी ही आसानी से पूरा होगा। पीएम ने अंतिम छोर तक पहुंचने की दृष्टि और सैचुरेशन पॉलिसी, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया और कहा कि जब हर एक के पास पहुंचने का लक्ष्य हो तो भेदभाव और भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित तमाम पहलों और योजनाओं को तेजी और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं। इस क्रम में सोमवार को चौथे वेबिनार में पीएम मोदी ने रीचिंग द लास्ट माइल पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम छोर तक योजनाओं की पहुंच और कोई भी नागरिक पीछे न छूटे की नीति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस दिन हम ठान लेंगे हर मूलभूत सुविधा हर क्षेत्र में हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाकर ही रहेंगे, तो देखिएगा कितना बड़ा परिवर्तन स्थानीय स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हमारी कार्य संस्कृति में बदलाव नजर आएगा। सैचुरेशन की नीति के पीछे यही भावना है। जब हमारा लक्ष्य हरेक के पास पहुंचने का होगा, हर हितधारक के पास पहुंचने का होगा, तो फिर किसी के साथ भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजेवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी और तभी रीचिंग द लास्ट माइल का लक्ष्य भी आप पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां आखिरी छोर तक के मंत्र को ले जाने की जरूरत है। इस साल के बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही जल जीवन मिशन के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल आता था। अब इनकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए घर पर बात की और बताया कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने गरीबों के घर के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे हैं। हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हाउसिंग को टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ें, कम खर्च में ज्यादा टिकाऊ और मजबूत घर कैसे बने, ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर पावर का फायदा कैसे हो, ग्रुप हाउसिंग के नए मॉडल गांव और शहरों में भी स्वीकार्य हो, ये कैसे हो सकता है, इस पर ठोस चर्चा की जरूरत है। आपके अनुभव का निचोड़ उसमें निकलना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश के ट्राइबल समाज की क्षमता के सही इस्तेमाल के लिए पहली बार
देश में इतने विशाल स्तर पर काम हो रहा है। इस बार के बजट में भी ट्राइबल डेवलपमेंट को प्रमुखता दी गई है। पहली बार आदिवासियों में भी जो सबसे वंचित है उनके लिए एक विशेष मिशन हम शुरू कर रहे हैं। देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों में ट्राइबल साथियों तक हमें तेजी से सुविधाएं पहुंचानी है। वैसा ही हमारे लघुमती समाज में, खास करके मुसलमान समाज में पसमानदा समाज है, वहां तक लाभ कैसे पहुंचे जो आज भी आजादी के इतने साल के बाद भी बहुत पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिलों पर बात की और कहा कि रीचिंग द लास्ट माइल के लिहाज से ये एक सक्सेस मॉडल बनकर उभरा है। अब देश के 50 ब्लॉक्स में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सरकार ने बजट बनाने से पहले भी और बजट के बाद भी सभी स्टेक होल्डर्स से गहन मंथन की नई परंपरा शुरू की है। ये बजट को सही और समय से लागू करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सरकार का यही प्रयास है कि जितनी योजनाएं सरकार चला रही है वो पूरी तरह से सैचुरेशन हो जाए, यानी कि हर व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिस तक ये जो लाभार्थी हो सकता है उस तक ये जरूर पहुंचे और अंतिम छोर तक जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी पहुंचे। रीचिंग द लास्ट माइल, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने आज वेबिनार में 4 प्रमुख मुद्दों पर बात की है। उन्हीं की क्या तस्वीर विकास की सरकार के सामने है वो हम आपके सामने रखते हैं कि जो सरकार काम कर रही है उसके मद्देनजर कैसे रीचिंग द लास्ट माइल के लक्ष्य को सरकार हासिल करने के लिए काम कर रही है। जल जीवन मिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन, और इसको लेकर अगर आप देखें तो जहां 2019 तक 3 करोड़ घरों में ही जल था, क्योंकि नल से जल, हर घर नल से जल ये लक्ष्य है, तो वही हम देख रहे हैं कि आज 27 फरवरी 2023 की बात करें तो 11 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नल से जल आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो ग्रामीण परिवारों की अगर हम बात करते हैं और हम पाते हैं कि 2019 में जहां 3.25 करोड़ परिवार ही थे, यानी लगभग 16.69% केवल इतने ही परिवार थे, इतने। वहीं पर अगर हम देखें तो 2023 तक आते आते ये लगभग 11.25 करोड़ से भी ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो दिखाता है कि किस रफ्तार से सरकार का ये प्रयास है कि नल से जल योजना साकार हो, हर घर में जल पहुंच सके। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो हम वैसे इस बात पर, आंकड़े पर ध्यान देना जरूरी है कि 19 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं जहां तक पहुंचने का लक्ष्य है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो अमृत सरोवर, ये सोच जो प्रधानमंत्री ने सामने रखी, जिसके तहत उनका ये प्रयास है कि हर जिले में 75 वाटर बॉडीज बनाए जा सके। उसके मद्देनजर जो अमृत सरोवर है, अगर हम हजारों में देखते हैं तो पाते हैं कि जो चयनित स्थल है, 97,000 से ज्यादा चयनित स्थल जहां ये बनने हैं, जिनमें से जो कार्य आरंभ हो चुका है वो 61,000 से ज्यादा में काम शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं 34,000 है उनसे ज्यादा का आंकड़ा जहां पर काम पूरा भी हो चुका है। यानी अमृत सरोवर देश में बनाने का काम, ताकि जल संरक्षण और जल संचयन, इन दोनों लक्ष्यों को हम हासिल कर सकें। वहीं अगर हम देखें तो पाते हैं कि जल जीवन मिशन को लेकर सरकार का एक पारदर्शी व्यवस्था सरकार ने दी है, जिसमें सरकार के जल जीवन मिशन का जो पोर्टल है उसमें डैशबोर्ड पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये तस्वीर स्पष्ट नजर आती है, जिसमें यह दिखता है कि नल से जल हर घर तक पहुंचाने का, हर राज्य के हर ब्लॉक के हर गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। तो वहीं 100% जिन राज्यों के पास नल से जल पहुंच चुका है वो ये फहरिस्त आपके सामने है। लेकिन वहीं ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से जहां गहरा नीला रंग है वहां 100% आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन वही नीले रंग के अलग अलग जो रंग है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रयास यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच जाए नल से जल, और इसीलिए इस पर तेज रफ्तार तरीके से काम भी किया जा रहा है। और इसी की एक झलक हमें बजट में भी देखने को मिली है। और अगर बजट के ऊपर नजर डालें तो पाते हैं कि अगर आप 1000 करोड़ में इन आंकड़ों को देखें तो आप पाते हैं कि 2018-19 से लेकर अब तक बजट में जल जीवन मिशन को जो आवंटन दिया गया उसमें 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए कि जहां 5,500 करोड़ था तो वही अब बढ़कर लगभग 70,000 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। और साल दर साल जिस तरीके से बढ़ रहा है वो ये दिखाता है कि जल जीवन मिशन को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने आज रीचिंग द लास्ट माइल में एक और मुद्दा उठाया, वो था आवास का। सबके सर पर हो छत, इस लक्ष्य के साथ जब सरकार काम कर रही है तो 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जब इसको नए स्वरूप में शुरू किया गया था तो लक्ष्य यही था कि 2024 मार्च 2024 अगले साल तक लगभग 2 करोड़ 95 लाख यानी लगभग 3 करोड़ पक्के मकान देश में बनाए जाएं।
अब अगर हम आवास बनने की रफ्तार को ही देखें तो हम पाते हैं कि यह आंकड़ा दिखाता है कि आवास बनने की रफ्तार कितनी ज्यादा है। ऐसे में आप देख सकते हैं 17-18 में लगभग 38 लाख, उसके बाद 44 लाख से ज्यादा, 21 लाख, 33 लाख, लगभग 44 लाख, 42 लाख, 34 लाख, इस सबका अगर आप हिसाब लगाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 2,15,00,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। और ये रफ्तार दिखाता है कि किस रफ्तार से सरकार आवास बनाने के काम को आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर हम बजट के ऊपर भी नजर डालते हैं तो आवास योजना को लेकर अब तक बजट में 280% की वृद्धि अगर आप 2016-17 से तुलना करते हैं तो ये देखी जा सकती है। और ये डायग्राम आपके सामने इस बात को स्पष्ट करता है कि खासकर 2022 की अगर हम बात करें, पिछले बजट की 48,000 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन वहीं पर अब 2023 में आप देखें तो लगभग 79,000 करोड़ से ज्यादा। तो देखा जाए तो ये जिस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं दिखाते हैं कि सरकार रीचिंग द लास्ट माइल को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। और वहीं पे अगर हम आकांक्षी जिलों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि कैसे आकांक्षी जिलों को लेकर भी सरकार काम कर रही है। 26 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश में 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें 5 क्षेत्रों में 49 संकेतकों पर क्या प्रदर्शन हो रहा है इसके आधार पर रैंकिंग दी जा रही है, यानी पूरी निगरानी की जा रही है। और इस बजट में जैसे वित्त मंत्री ने बताया था कि 500 ब्लॉक्स में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम अब शुरू किया गया है। जिले के बाद ब्लॉक तक कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन पर काम किया जाएगा? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे का विकास। तो ये बड़े बड़े 5 क्षेत्र हैं जिन पर इन सभी आकांक्षी ब्लॉक्स में विकास के आयाम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल खबरें और भी हैं, लेकिन हम आपके सामने हाजिर होंगे इन खबरों के साथ। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में कहा था कि आबकारी घोटाले में अभी सिसोदिया से पूछताछ करनी है और इस मामले में और ज्यादा जानकारी चाहिए। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष सीबीआई जज MK नागपाल के सामने पेश किया गया था। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया, इसलिए कम से कम 5 दिन की रिमांड की जाए। सीबीआई की दलील थी कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बदलाव कर शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाया। होलसेल में प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। उधर मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि जिस शराब नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं उसे खुद उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में LG ही शिकायतकर्ता बन गए। अदालत ने रिमांड की याचिका स्वीकार करते हुए सिसोदिया को 4 मार्च दोपहर 2 बजे फिर से पेश करने का आदेश दिया है। उधर सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राजनीतिक रस्साकशी भी जारी है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल है।
और अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में ही एक नहीं अलग अलग विभागों में जो लूट दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुई है। वो भ्रष्टाचारी नेता जो केवल कानून तोड़ना जानते हैं, चाहे वो शराब घोटाले में ऐसी नीति लाना कि अरविंद केजरीवाल की तिजोरी जनता के रुपए से भरे। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। उधर आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गलत बता रही है। पार्टी ने इसके खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। ध्यान रहे कि सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार करने से पहले कई घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय सुर्खियों में आया था, जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। इस मामले में जिन 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें मनीष सिसोदिया भी हैं। प्राथमिकी में इन लोगों पर आबकारी नीति के नियमों और प्रक्रियाओं में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेल जगत से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं स्पोर्ट्स रैप। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वेलिंगटन टेस्ट में फॉलो ऑन खेलते हुए न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 258 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। केन विलियमसन ने शानदार 132 रन की पारी खेली। विलियमसन न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने महिला 4 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला तिकड़ी ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। महिला युगल और पुरुष युगल में भी भारत को रजत पदक हासिल हुए। स्ट्रैंडजा मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 पदक अपने नाम किए। 3 भारतीय मुक्केबाजों ने रजत और 5 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने EFL कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। देर रात खेले गए खिताबी मुकाबले में मैन्यू ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहें न्यूज नाइट। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में वुमेन 20 की बैठक शुरू हुई है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व समेत 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वीमेन 20 या W20 इंसेप्शन मीटिंग सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुरू हुई। इस 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कृष्ण राव कराड़ और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की मौजूदगी में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. We need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? We all know each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. इस बीच भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना दुनिया विकसित और समृद्ध हो ही नहीं सकती। The Prime Minister, Mr. Narendra Modi was very clear in his mind that all these crises, if we have to overcome them and if we have to push for greater growth and prosperity, women-led development has to be the key focus of India's presidency. If you look at the World Economic Forum study, which says that it will take another 132 years to close the gender gap worldwide. The world cannot grow, it cannot prosper, and it will not be able to bring in inclusive, resilient and sustainable growth without women. बैठक के पहले दिन 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इनमें पहला नैनो, माइक्रो और स्टार्टअप उद्यमों में महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन में चेंज मेकर्स के रूप में महिलाओं की भूमिका, तीसरा जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, चौथा डिजिटल खाई को पाटना और पांचवा महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास शामिल है। इसके अलावा पथ प्रदर्शक कहानियों और महिलाओं की यात्रा पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। बैठक में शामिल प्रतिनिधि एलोरा की शानदार गुफाओं का भी दौरा करेंगे। इनके लिए बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है। छत्रपति संभाजीनगर से श्रेया उपाध्याय और श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और न्यूज राइट में आज बस इतना ही, लेकिन अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देखिए ये फास्ट न्यूज और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज किया। हाईकोर्ट ने सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा कि योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में सोमवार को 6500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 7 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिहार की राजधानी पटना महज 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने सोमवार दोपहर मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अरबाज धूमनगंज क्षेत्र के नेहरू पार्क इलाके के आसपास है। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने पहले तो अरबाज को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में अरबाज को पुलिस की 3 गोलियां लगी।